ऐसे में कृषि उत्पादन एवं प्रमुख चुनौती है। अतः उसमें आर्थिक समरूपता बनाए रखने के लिए किसान पशुधन पर निर्भर रहता है। पशुधन न केवल दूध, ऊन, मांस एवं भू परिष्करण कार्यों के में योगदान देते हैं, अपितु इनके अपशिष्ट भी जैविक खाद के रूप में किसानों के लिए आमदनी का माध्यम है। इस पशुधन को शुष्क जलवायु परिस्थितियों में जीवित रखना अपने आप में एक चुनौती है। पशु उत्पादन की कुल लागत में चारा एवं बाट का हिस्सा लगभग 70% है। पशु चारे की उपलब्धता बढ़ाने के सतत प्रयासों के लिए गोचर भूमि एवं चरागाह विकास के साथ साथ हरे चारे के क्षेत्रफल को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज देश में कुल काश्त क्षेत्र के मात्र 4.4% भाग पर ही चारा फसलें उत्पादित हो रही हैं। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या की भोजन एवं पोषण आवश्यकताओं के मद्देनजर चारा फसलों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी की संभावनाएं क्षीण है। वैज्ञानिक निरंतर नई चारा फसलों की किस्मों एवं उनके उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों पर अनुसंधान कर रहे हैं और इन तकनीकों को किसानों तक ले जाने के लिए आज जैसे वेबिनार मददगार साबित होंगे। नई तकनीकों में चारे से साइलेज बनाकर अकाल एवं अभाव के समय में उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास जारी हैं। क्योंकि चारा परिवहन आसान नहीं होता है, अतः चारे के ब्लॉक बनाकर उन्हें परिवहन करना आसान एवं सुरक्षित तकनीकी में है। सूखे भूसे की मशीनों द्वारा कटाई कर और उनके बंडल बनाकर परिवहन करने की तकनीक आज लोकप्रिय हो रही है। इससे दूर दराज के स्थानों पर चारा पहुंचाना आसान हो सका है। राजस्थान की प्रमुख चारा फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, जई, रिजका, बरसीम, नेपियर बाजरा एवं घासें जैसे सेवन, धामन आदि के कुशल प्रबंधन से इनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे पशुओं को हरा व सूखा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। इस वेबिनार में प्रमुख वक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यान, जो कि वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता, चारागाह विकास एवं प्रबंधन, हरे चारे के संरक्षण आदि विषयों पर केंद्रित किए गए हैं, निसंदेह प्रतिभागियों के लिए उपयोगी साबित होंगे। मैं इस आयोजन के लिए आयोजन समिति को बधाई देता हूं एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you very much for your opening remark and blessing words. Now, I would like to invite and introduce our chief guest, Professor A.K. Srivastava. Friends, Professor Srivastava is a very dynamic and top-class academician in the field of veterinary and animal science. He started his career from university services and served several positions there, including head at PAU, Ludhiana, and dean and directors at Sher-e-Kashmir, University of Agricultural Sciences and Technology, Jammu, and director come honorable vice chancellor of one of the most prestigious institute of the country, that is National Dairy Research Institute, Karnal. Presently, he is decorating Agricultural Scientist Recruitment Board as honorable member. Friends, Professor Srivastava has also led ASRB as honorable chairman for a couple of years. Dr. Srivastava is the fellow of more than 10 scientific societies. He is the vice president of National Academy of Agricultural Sciences. He is president, National Academy of Dairy Sciences,
He is a patron of Indian Dairy Association, and he has been honored with the degree of Doctor of Science by Veterinary University Mathura and Veterinary University Jabalpur. He has more than 300 publications to his credit, and he has guided 30 PG and PhD students of veterinary and animal sciences. Friends, looking to the outstanding contribution of Professor Srivastava to the science and society, he has been honored and awarded several times at various platforms, including ICAR Jawaharlal Nehru Award, which is a very prestigious award, International NOCIL Award, Lifetime Achievement Award, and many more. Sir, we are honored to have you here as chief guest. Over to you. Thank you. Thank you, Dr. Sharma. Thank you very much. Well, friends, very good morning to all of you. Dr. R.P. Singh, Honorable Vice Chancellor of this distinguished university, Swami Keshwanand, Rajasthan Agriculture University, Dr. Sharma, who is organizer of this program, my all senior colleagues, friends sitting in this webinar, Dr. Roy, Dr. R.K. Sawal, Dr. Sunil Kumar Tiwari, Dr. Yadav, and many all participants from ICAR institutions, agriculture university, veterinary universities, and I see a lot of students. So I'm very happy that many students have joined. Dear students, very good morning to all of you. At the outset, my sincere appreciation to Professor R.P. Singh and Dr. N.K. Sharma for initiating this very important webinar on a theme which is the need of the day. Although I have in this panel, I can see a lot of experts from the forage, fodder, animal nutrition. They will be talking about the subject matter specialization issues. I will take 30 minutes has been given to me. So in this 30 minutes, I will make clear the overall scenario of the livestock sector in the country, more particularly the dairy sector, importance of the feed and fodder in the dairy sector, why dairy sector has become so important, and what should be our future roadmap. Many of you must have attended one brainstorming session which was organized by us in TAS under umbrella of Trust for Advancement of Agriculture Research, where we have formulated a guidelines that what should be the best land use policy so that there is no shortage of feed and fodder. As far as dairy sector is concerned, many myths are circulating in our society. When Dr. N.K. Sharma was saying that despite all development, we could not meet the requirement of milk in the country, that is also a myth. India is at #1 in the world in the milk production, and we are meeting the requirement. So I will talk such issues and will make a platform. I will flag up the issues that what is the need, why it is so important, feed and fodder, and in which direction we should prepare our future roadmap. Give me just a minute, I will load my slide. Is it visible? Slide is visible? Yes, sir. And I'm audible, okay? Yes, sir. Okay. Well, friends, so I will be talking about the sustainable livestock production. And in this sustainability, to keep this sustainability in livestock production, feed and fodder are prerequisites. Feed and fodder are prerequisites. That will be my topic. Now, first thing is that why livestock sector has become so important all of a sudden in India. Everyone talks about the livestock now. There are 6 reasons. This 6 reason is most. I can understand that majority of the participants are having the background of this crop sector. Now it has been realized that it will be difficult for crop sector to provide the food and nutritional security to 1.44 billion population today, which will be 1.62 billion by 2050. Why?
more than 87% farmers are marginal. They are having marginal or small. They are having up to 2 hectares of the land. And out of these 87% farmers, 40% of them are most vulnerable, marginalized, and food insecure. And these 40% are holder of the livestock in this country. I repeat it, 87% farmers are marginal and small. Out of that, 40% are most vulnerable for food. They are marginalized for nutrition, and these 40% are mainly livestock holder. The agriculture farm is diverse and unorganized. We all know that despite our all effort, about 60% land is still rain fed. If there is a rain, then there will be agriculture. If no rain, no agriculture. Water table is depleting. By 2023, when we will be requiring 20% more water, our water table will be decreased to the tune of 23%. Poor soil health. We all know that soil health has deteriorated either in terms of micronutrients or in terms of macronutrients. Poor input use efficiency, fertilizer use efficiency, pesticide use efficiency, water use efficiency ranges between 30 to 35%. That's all. Every year there are new package of the pest and infection. So these are the challenges which we are facing in our crop food production system. Per capita land is decreasing year by year. This is the hectare land per capita. For example, in 1971, 2.41 hectare land was available per capita, arable land, which has reduced to 1.18 hectare in 2011. And we have calculated that in 2050, the per capita land availability would be 0.09 hectare only. So which type of crop production system we will apply in 0.09 hectare per capita so that we can keep food and nutritional security? It is the second challenge. Next challenge, if climate continue to change as we are predicting, the maximum adverse effect would be in India, in Indian agricultural system, 25% reduction in production as well as productivity, followed by Australia. This challenge we have to face by 2050. Most important, from 93 to 2016-17, we have analyzed the data. The consumption pattern is changing among consumers. This is the percentage of total investment on their food. In 93, 44 rupees was spent on the food grains, now which has reduced to 31.7 rupees in 2015 and 16. But you see the livestock products, milk products, egg, fish, meat, it is increasing. In 93, only 15 out of 100 was spent for the food of the livestock produce, but now it is 28 rupees. So this is the change in consumption pattern. Similar picture is in egg, fish, and meat, fruits and vegetable. So consumption pattern of consumers are changing. This is the reason that livestock sector, most prominently dairy sector, is very important for the Indian food production system to keep food and nutritional security to the population. Among total livestock produce, for which we will be talking, about 67 to 68% come from the milk group only. That's why dairy sector is more important. 21% comes from the meat, and then 3% from eggs and other hides, and 8%. Most important for the rain-fed region, for arid region, some arid region. What I said in the first slide, that out of 75% who are small farmer, marginal farmer, 40% are holder of the livestock. This is the recent data that more milch animals are in arid, sub-arid, and drought-prone region, and Rajasthan is one of them. For example, if we see here, today we are having 486 lakhs buffalo in milk. I'm talking in milk, not total population. So we are getting 486.41 lakhs buffalo in milk. And out of this 486 milch buffalo, 380 lakhs are in sub-arid and arid and drought-prone region. Similarly, if we see the crossbred, out of 114 lakhs milch crossbred, 91 are in drought-prone. Out of 480 indigenous cattle who are giving milk today, 340 lakhs are in drought-prone region. So this is very clear picture that more and more
animals who are giving milk today are in sub-arid, arid and drought-prone region where there is a shortage of feed and fodder. So we have to give more emphasis on this issue. This is the clear-cut reason that why Rajasthan should give more emphasis on feed and fodder. I will talk in roadmap that what are the issues which we should take on priority. So here we can say that livestock is a backbone. Dairy sector is contributing more. So if we improve the dairy sector, food and nutritional security of the farmers will be improved. Today, we are having around 147 million Indian household, and out of that 70 million household, they are directly dependent on livestock and dairy for their livelihood security. And out of that 70%, 75%, they are small, marginal, landless milk producer with a herd size of only 2 to 8 animals. We have to address this issue. Address the issues of a small farmer having animal to the range of 2 to 8 and contributing in the milk production. There is sustainability, another issue. For country, livestock hold the best because there is a strength, there is sustainability. Constant and sustainable development till date we have seen despite limited investment from public and private sector. No investment from public sector. I will give here one thing that livestock sector contributed 31.1% in agricultural GDP, and we invested 1.3% of agricultural GDP on livestock sector. So there is no much investment either from public or from private sector. Mega biodiversity with largest bovine population. India is only country which is having 50 recognized breed of cattle, 17 recognized breed of buffalo, 34 recognized breed of goat, and 44 recognized breed of the sheep. Largest bovine population, 199 million of the cattle and 109 million of the buffalo only India is having. Highest milk production with high growth rate. 198, 200 million ton milk today on date I was checking, I was calculating 200 million ton today India has produced with very high growth rate. Low production cost still. World largest and leading buffalo germplasm. Murrah is the best breed of the buffalo and India is holder of this germplasm. When I was director at NDRI, 120 countries has demanded the Murrah germplasm, Murrah semen. India is still having all three production system. We don't feed anything, but we get some milk. Low input, moderate output. Our majority of the livestock system is going with this one. We give very less quantity of the feed and fodder, but still we get moderate products. But now we are shifting to intensive input and high output, and here we require calculated quantity of feed and fodder. As I said, 31.1 to 31.6% livestock contributed in agricultural GDP. Again, always we talk about that there should be more equitable development. Milch animal holding has more equitable distribution than land resources. Example, as I said that 77% of agricultural farm holder, they are marginal, they are small, and they hold only 41% of the total agricultural land. But this 75% of a small landholder, they hold 63 to 64% of the total livestock population. Now, if we want equitable distribution, equitable development, no other sector than livestock sector will be equitable, will be helping equitable distribution and equitable development. I will not talk about the data, but still if we see the 20th livestock census, a general perception came, general issue has come that there was an increase in crossbred and indigenous female cattle. So female cattle has increased. When female cattle was increased, so milch animal has also increased. Crossbred female has increased to the tune of 39%. Indigenous cattle has increased to the tune of 10%. Total milch animal increased to the tune of 6%. But indigenous cattle, if we see the 50 recognized breeds and non-descript breed, it has decreased. I had said that India is having treasure of 50 cattle breeds, 17 cattle breeds, which have been selected over more than 100 years. So they have been adopted with this environment. This was the cattle. Where more feed and fodder is required,
Why not? It is not only cattle and buffalo. If we see the potential of small ruminants, sheep and goat, for which Rajasthan is famous, we all know that sheep and goat population constitute around 42% of the total livestock population. 42%, and I will show that out of these 42% of small ruminants, majority of the small ruminants are in Rajasthan. And both sheep and goat are reared in extensive management. Extensive management means we don't go for stall feeding. They will go for the community land, community range land. They will be nomadic. They will be transhumant, sedentary household, and all these things. So there is a need to develop the community range land also, grass land also, pasture land also. In India, goat population is highest after China. This is the second in the world. Important thing is that the population of goat is increasing 3.5% annually for the last 12-13 years, despite that 56% of total population is slaughtered every year for meat purposes. So if we see that which is the most inclusive species for poor farmers of sub-arid region, it is the goat. Goat has become the most inclusive species for the livestock, and 34 registered breed of goats are available in India. If we see the sheep population, there was increase of 14% of the sheep population in the last census as compared to the previous census, and we have around 44 breeds, registered breed with NBAGR. Sheep milk production, goat, means now time has come that people are talking development of goat, sheep and camel, not only for the meat and not only for the draught purposes, but also as a milk. Because goat milk production means it is the third in the world as far as their contribution in milk is concerned. And India is first in the world in goat milk production. And the total milk which is coming from the goat is 3% of the total milk of the India. Not only this, goat is also contributing 13% of the meat of the country. Here you see that if we see the 5 states, Rajasthan tops at number 1, who are producing more goat milk, followed by UP, MP, Gujarat, Maharashtra. These 5 states are contributing 80% of the total goat milk. And out of this 80%, more than 50% is coming only from the Rajasthan. So in addition to making feed and fodder available for dairy animals, Rajasthan sub-arid zone may also think a special policy to provide feed and fodder for sheep and goat. Camel, another issue for the Rajasthan. Rajasthan had the highest camel population, 213,000, followed by Gujarat, nowhere distant, only 28,000, Haryana 5,000. But if you see the population of Rajasthan, the population of camel in Rajasthan, the present population is lowest in the last 70 years. Where we stand as far as camel population is. Rajasthan has to play a major role in enhancing the population of the camel. The population of camel has decreased from 4 lakh to 2.5 lakhs in just 6-7 years. Non-availability of feed and fodder, and means not proper use of camel is reason. Now we are talking about the milk of camel, milk of sheep, milk of goat, which has several nutritional and therapeutic attributes. I know the camel, sheep, goat milk is being used as a medicine. And with full confidence, I can say that in coming 10 years, there will be a big competition between pharma industry and milk industry for getting the milk of these 3 species. So now it is the right time that we should provide right feed and fodder to these 3 species to extract the full potential of these small ruminants as well as cattle. Coming to the little bit to dairy animals. This is the trend in different census of the country. The indigenous population is decreasing from 93 million to 73 million. The crossbred female population has increased from 7 million to 26.5 million. So this was the latest census, which says that indigenous cattle population has decreased, crossbred population has increased. Dr. N.K. Sharma ji, this is the story of
white revolution, success story of white revolution, milking, increasing the milk production. 1966-61, in 60s, the milk production was only 20 million ton. 17 million ton in 1951. This is the success journey from 17 million ton to 198 million ton, and today it is 200 million ton. Here I will like to say that along with green revolution, white revolution also came, but white revolution was less noticed, less talked, less glamorized. When we started bringing green revolution in 50s, 60s, rice production was 39 million ton. And today we are producing 610 million ton of the rice. At that time, milk production was not even half of the rice. And today we are producing double of the rice, 200 million ton of the rice. The recommended per capita milk availability in India, what Medical Council of India says, that Indians should consume 280 gram milk per day. Per capita milk availability in India is 394 gram, much higher than the minimum recommendation. It is a different issue that there is a lot of variation between the states. Punjab, Haryana, they are having more than a liter per person per day. Northeastern, eastern states, they are having small per capita availability. Average per capita availability in the world is less than the India, 229 gram per day. Niti Aayog says that by 2033-34, India will be producing 330 million ton of the milk. India is at number 1 in the milk production. We produce 22% of the total world milk. Everybody thinks it is a perception that India is at number 1 in the milk production because we are having the largest livestock population also. But it is not true. The enhancement in milk production was technology-led, not number-led. Here I have tried to make clear. Cattle, this 1951 was the first census. 2019 was the last census of the country. Cattle population has increased from first to last census to the tune of 24%. It was 155 million and now it is 192 million. Buffalo population has increased from 43 million to 109 million, that is the 153%. Milk production has increased from 17 million to 198.4 million. So 24% increase in cattle population, 153% increase in buffalo population led the milk production to the tune of 1,167%. It cannot be number driven, it is the technology driven. And in this technology-driven enhancement of milk production, ICAR, national institutes, agricultural universities, cooperatives, boards, they have played major role. From where milk come? What I want to say, that why I want to say this slide, out of 198 million ton of milk, 50%, 49 to 50% milk is coming from the buffalo only. Still, we don't have any provision to collect buffalo milk separately. 27% is coming from crossbred. 21% is coming from our local indigenous breed. And 3% is coming from goat and camel. My request that now time has come that let us do some exercise so that milk, 50% of the milk should be collected separately. It should give a good entrepreneurship to young agricultural veterinary graduates to venture the dairy business, international dairy business with the buffalo milk, if we are collecting separately. This is the supply and demand. Blue one is the supply, what milk has supplied, and red one was the demand. For example, in 2021, demand is of 182 million ton. By the end of 2021, country will be producing at least 203 million ton of the milk. So we are meeting the demand. What is the demanded? The supply is more than the demand. The problem of adulteration, the problem of synthetic milk, it is not because of something is shortage. It is something is polluted in the mind, in our mind, by earning the money, doing the wrong things. It is nothing to do with the production. It is nothing to do with the shortage of the production of the milk. The fact, if you see, here livestock and means your crop production system or your fodder production system. If you see that, what is the fact?
half of the growth in milk production has come from productivity enhancement. Your breed improvement, feed and fodder has played a role here. The growth in milk productivity has particularly increased in our local indigenous cow. What it means? It means that our indigenous local Indian cow can produce the milk even if we are having poor quality of feed and fodder, because they are having better feed conversion efficiency. They are resistant to more of the diseases of the tropical region. There is no thalaria, there is no babesia, there is less trypanosomiasis, there is less incidence of mastitis, there is less incidence of other reproductive disorders. They require less feed and fodder. They require, all the requirement is less. Buffalo is good, but in the last 2 decades, the growth in milk yield has been slower. I mean, productivity is slower than enhancement in the number of animal in milk. So more animal came under milk category. So productivity has, production has increased. In crossbred, growth in productivity was negligible. What increase in milk production in crossbred animal we are getting, that is because of the number of increase in the number. So what I want to emphasize, that our indigenous animal which require less feed and fodder is future for country. They are more climate resilient than crossbred. This is the per capita availability of the milk in the country. As I said, that Punjab and Haryana crossed 1 kg per person per day. Rajasthan, very close to Haryana and Punjab, going to touch 1 kg per person per day, 870 grams. Followed by Gujarat, Andhra Pradesh, Himachal, Madhya Pradesh, Uttarakhand, J&K, UP, Kerala. These are the Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. They are having lesser per capita availability as compared to the India, which is the 394. But these are the major states where there is per capita availability is sufficient. Glorious journey of dairy sector. Dairy sector is the fastest growing subsector of the agriculture. By 2026, this sector is predicted to produce more than half of the GDP in agricultural output. Half of the agricultural output will come from the crops, from the livestock sector. In 2018 and 19, the world growth rate of milk production was only 1.3%, but India, the growth rate of milk production was 4.2%. In early 70s, India was producing 1/3 of the US milk and 1/8 of the European countries. Today, India is producing twice of the US milk and 25% of more than European Union. Glorious journey. This is the most important two-line item. In milk is India's largest agricultural commodity. When I said that why livestock sector is most important in agricultural food production system, milk is India's largest agricultural commodities. The value of milk, not of the livestock, the value of milk is more than the total value of all grains, pulses, and sugarcane put together. Data of Government of India 2019 and 20. The value of only milk was more than 8 lakhs crore as compared to only 4.5 lakh crores of all grains and pulses. That's why time has come that we have to provide feed, fodder to the livestock so that they can contribute in food and nutritional security and there could be sustainable growth. Today, white revolution surpasses the impact of green revolution. Every 4th rupees which we are generating through agricultural food production system is coming only from milk. Every 3rd rupees is coming from livestock sector. Not only in production, friends, if we see the glorious journey of Indian dairy sector in processing, it is remarkable. During lockdown, during COVID-19 from March 2019, unlike most of the other items, both producers and consumers prices of the milk and milk products remained stable despite significant fall in the demand, which was very sharp in the beginning. And now Government of India has also identified that animal husbandry and dairy sector will be
a sector which can provide the livelihood millions and millions of households. Because this is the calculation that has been calculated by us, that if we are collecting 1 lakh liter of the milk, then it can provide opportunity to, means about 5,000 farmers and 1,000 other youth who are engaged in the collection, processing, and transporting. I will not talk, I will enlist the challenges because there are many scientists from the livestock sector, but I will be concentrating myself on the shortage of feed and fodder. Major challenge in Indian livestock sector is, first one, most important, shortage of feed and fodder. High non-descript population. 59% of the total cattle population we have not categorized. They are having very low productivity. There are reproductive diseases, disorders. Farmers are not able to detect the stress, the heat in animals. Late sexual maturity, only due to non-availability of good feed and fodder. 32 to 36 month puberty age of Murrah heifer. Indiscriminate breeding is going on in the field. There is a lot of infertility in crossbred bulls. Poor status of animal health. There is a problem of mastitis, FMD, brucellosis, shortage of vaccine and diagnostic, microbial contamination of food, zoonotic diseases, tuberculosis in cattle and buffalo is also spreading in human being. Brucellosis in cattle and buffalo is responsible for brucellosis in human being. So these are the few major challenges which we have to address. There is a wide gap between availability and demand of semen and bulls. Our AI trainers are almost untrained or very marginally trained. There is inadequate cold chain facility. Despite success story of cooperative, the total milk which is being handled by cooperative is 19 to 20% only. More of the milk is in unorganized market. There is a low processing in the organized sector. At present, most of the milk processing plants are very old and requires immediate modernization. Lack of assured remunerative prices to the producers. Poor linkages between dairy farmers, academicians. So these are the major challenges. And out of that, productivity is the one issue which is because of non-availability of good feed and fodder. And this is the biggest challenge in our livestock production system. If we want sustainable livestock, then productivity per animal has to be increased. Here I have compared that what is the productivity of milk in India. Average productivity is 1,698 liters per year per animal, as compared to, now you can see the data of USA, UK, Germany, France, and Australia. If we see this breed-wise, again, now here I want to say that we always prefer crossbred, but that they are high producing. But see the data of buffalo and crossbred per animal productivity, per day per animal. The national average of buffalo per animal per day is 6.19 liter. In crossbred, it is 7.61 liter. Crossbred require more feed fodder, more health care, more drugs. Buffalo are having better feed conversion efficiency. They are resistant to most of the diseases. The productivity is at par. If we give good feed fodder to the buffalo, they can produce as milk as by crossbred animals. Two issues. High puberty age only because of poor feed and fodder. No farmer will feed a buffalo of Murrah for 3 months, 33 years, not 3 months, 33 months, 3 years without any advantage. And that's why you must be reading in newspaper that best germplasm of Murrah is going to the slaughterhouses, because no one wants to feed for 3 years. We have to reduce by giving good feed and fodder. And in NDRI, a lot of research we have done, and we found that this puberty age can be reduced to 22 to 21 months by providing calculated quantity of superior quality of feed and fodder. After discussing all this production system, if we see that where feed and fodder stands, feed and fodder stands at number 1 for sustainable livestock development. Let us realize it. The sustainability in livestock development depends on sufficient availability
of fodder resources as at affordable cost. That is more important. As has been said by Dr. Sharma and Dr. Singh also, that 60 to 70% of the total expenditure in animal production system is towards the nutrition only. As such, feed and fodder of high nutritive value. Number one, better digestibility. We have to select fodder which is having better digestibility, because we have seen the result that if we are increasing the digestibility, the milk production has also increased. But we should remember that India is having only 2.3% of total global land. And with this 2.3% of the global land, we know that in 1951, the arable land was only 140 plus minus 2 million hectare. And today also, the cultivable arable land is the same, 140 plus minus 2 million hectare. And with this 2.3 million total global land, India is supporting 10% of the world livestock, 740 million of the poultry, plus 104 billion of the human population. Critical issue. We have to plan very carefully as far as land use for fodder production is concerned. We all know that these are the three resources from where we can get fodder: crop residue, which contributes 54%, cultivated fodder, which is presently contributing 28%, and 18% is coming from forest, from common property resources like forest, permanent pasture, grazing land. And we all know the status of this grazing land and permanent pasture, the way it is degraded, the way it is being captured for other purposes. So what will be our driving force for feed and fodder requirement? It would be productivity enhancement. And in future, the driving force would be when we will shift our livestock production system from present low input, low output to semi-intensive, or to commercial production system, or to high input and high output system. At NDRI, we have calculated by 2050 in livestock production system, the herd size will be very large, at least 250 animals per farm. So number of animals per farm will increase, but number of total farm will decrease. So it will require a very planned development of fodder production system. We all know, as has been said by my previous speaker also, that problem of feed and fodder, the problem of scarcity is more acute in arid and sub-arid region where crop failure is very frequent. There are different data that what is the available, what is the shortage of feed, dry fodder, green fodder, concentrate. NDRI is having one, NDDB is having one, NINP is having another, Government of India is having another. This presentation I'm giving of the NDRI, and I feel that this is the most realistic calculation. However, these are the another estimates. Dry fodder, there is 39% of the dry fodder. Reason, we have taken the fodder which is really available, dry fodder, not which is being produced, because we all know that issues of the burning of the dry fodder. So there is shortage of 39% of the dry fodder, more than green fodder or equal than green fodder. 143 million ton green fodder is available, and we are requiring 220 million ton. Then similarly, 57% shortage of the concentrate. Government of India has also calculated in the same way, but there are little bit, some 33, 34% they have shown the dry fodder. Whatever may be, whatever data you take, but one thing is sure, that there is shortage of dry fodder, there is shortage of green fodder, and there is shortage of concentrate also, on one hand. On other hand, if we see what is the status of fodder production, area under fodder cultivation is only 4%, as has been said by Dr. Sharma also. So out of 142 million hectare land, 7.8 million hectare land is being used for fodder production. You will surprised to know that I saw this data, 4% of total arable land was used in 70s also for fodder production. From 70 to 2022-21, the livestock population has just doubled, and area under fodder cultivation remained the same. Very challenging issues. Common grazing land, which comprise 3% of total geographical area in India,
No doubt it is very important source, but we all know that this common grazing land is vanishing. I don't rely on this data also at present, but this will be a good source for feed and for fodder to the small and landless animal. Between 80s to 2008 and 19, in the last 25 years, the area under pasture has declined to the tune of 14%. In India, still we are having 69 million hectare land under forest. And even today in hill, some are used to grow the grasses, shrubs and tree, which can augment or which is augmenting the fodder requirement. So this is the important issue of the status of the fodder production. The fodder crop production management and improvement have not received much attention. Let us realize the reason is that there is a lack of synergy, or there is no synergy at all between Department of Agriculture, Department of Animal Husbandry at both levels, at central government as well as at state level, at ICAR level also. Jhansi is the best example. Our institute at Jhansi is the best example. Why there is a huge gap between demand and availability of fodder? First point, absolutely, there is a limitation. We cannot increase the land under fodder production because we require more and more land for food production. So there is a less area under fodder production. Not only that, there is a less coverage under high yielding improved variety of the fodder crops. Out of 4%, there is very less coverage. Every year cropping pattern we are changing, but this cropping pattern is shifting towards production of more food and cash crop. Fodder production. Whatever dry fodder we are producing, like paddy and wheat straw, they are of poor quality. We all know that basmati paddy straw is not palatable by lactating animals, creating a lot of problems. Low priority accorded to investment at the fodder production. We can see that there is no agency which are agreeing to invest the money on fodder production. Whatever fodder is being produced, because of lack of post-harvest management, surplus fodder is not being managed properly. There is no proper management of grazing pasture land. There is an inadequate manpower, inadequate finance, inadequate resources to support the research and extension. In our total NAR system, with full confidence, I can say that if you are working in agronomy, in plant, in breeding, in pathology related to the crop fodder, list prioritized. No, you will not be considered as a good agronomist. You will not be considered as a good breeder. You will not be considered a good pathologist, good entomologist, if you are restricting your research area on fodder crops. List prioritized, treated as a non-prioritized area at the NAS. We are accepting it. Other challenges, if we are see, there are experts from our institute, Jhansi and other institutes. There is non-availability of quality seed of high-yielding varieties of the fodder crops, which is a serious concern. At present, if we see the seed replacement rate in fodder crop, it is less than 10%. Dr. Sunil Tiwari can correct me. It is less than 10%. There is urgent need to enhance the production of seed. What we have recommended that there is a need of fodder seed bank. Grassland in arid, sub-arid, semi-arid and hilly region is continuously degrading. We have seen the situation. Burning grassland, you know the situation. You will rarely find any grass. The rehabilitation of degraded grassland and also utilizing the wasteland with improved range grasses and legumes is need of the day. Now, if we compare about the availability of pasture and grassland, we are having only 12.3 million hectare pasture and grassland as compared to 41% in US. 41% of the total available land for the animals. You know, success story of Gir in Brazil, we always talk, but we never talk that this success, the same breed is giving a success story in Brazil. The reason is that they are having more grazing land per animal.
396 times more grazing land per animal in Brazil than what we have in India. Friends, there is a need to establish the National Grassland Development Authority, which can deal the management, protection, and improvement of the grassland. We have recommended in one of our recommendation when we had the land utilization brainstorming session. 3 slides and way forward, what could be the recommendations? Yes, it has been talked earlier also, and we have done some research in collaboration with the DWR in Karnal. Dual purpose crop grown for grain as well as fodder should get the priority. As has been said, that let us first use as a crop, then as a grain. Time has come that a fodder atlas for the country should be developed, and we should have a correct estimation that what fodder is being produced and what is the demand. We have made the National Livestock Mission, but in this National Livestock Mission, there is no point of the feed and fodder. So this National Livestock Mission should strategically include the land use planning for livestock intensification through fodder production. As I said, that there is a disconnect. So disconnect between livestock experts, fodder seed producing agency, which is a long-standing concern, must be resolved. We found that private sector and NGOs, they can play major role to commercialize the seed production of high-yielding varieties of fodder crops so that it reaches to the users at the large scale. They should be roped in seed production chain of the fodder crop. Last slide then, for scientists, which in addition to enhancement in fodder production, what is the future science for fodder, feed and fodder management, for good science? Newer technology for development of, for manufacturing the silage and hay. Technology for decomposition of lignocellulose material. And the decomposition of lignocellulose material holds great promise in animal nutrition, because we did the research and we found that if we increase the 1% digestibility, then there is enhancement of milk production to the tune of 6 to 8%. Science for precision feeding. The technology for protected protein, protected fat has to be developed. Ration balancing. There is a need for ration balancing. Area-specific mineral mixtures, nutrient balancing technology, or this newer technology is the future science. I go one step ahead, not only genomic selection for the good genes, but the genomic selection, selecting the genes based on fodder use efficiency. We will select a marker which helps in enhancing the fodder use efficiency. Human microbial biodata has not been studied completely. So human microbial biodiversity and their manipulation for digestion and metabolism of the fodder is need of the day. We have to ensure the delivery of micronutrients. Feed and fodder is one issue, but how it is reaching to the target is another issue. So we have to develop the technology to make sure that whatever is being fed, it reaching where it should go. Hydroponics and preparation of good quality leaf meal, feed blocks, etc. is need of the day. And in extension program also we found that only 4 to 5% dairy farmers are having knowledge of the extension. Thank you very much. In the last, but these two messages, that despite all these challenges which I addressed, we always feel proud to our agriculture scientists, livestock scientists, that we, along with Green Revolution, we brought White Revolution. And this White Revolution is certainly because of the rich animal biodiversity, rich institutional and infrastructural support, competent human resource development, beside policies and linking the small farmers to the markets. This we don't encourage. 2014, it is of the Rajasthan. It is not very old. You can see Naker is of 2014, but we don't encourage because of the zoonotic diseases which is coming from animal to human being. But this is a compulsion way, under compulsion, food security, nutritional security. Thank you very much, friends, for your patience hearing. I took little bit more time, so I regret for that. Thank you very much
for patient sharing. Back to you. Thank you. Sir, thank you very much for accepting our invitation and giving this wonderful talk. It's a wonderful talk. And though this is a national webinar, but this is a world-class talk by one of the most dynamic leader or one of the most dynamic academician of the this country. Sir, thank you very much, sir. Thank We you, are sir. blessed. We are now, if there is a question by any participant, they can write down in the chat box, and we will refer to the concerned scientist, and we will reply later on. Now, I have another meeting, Mrs. Saab, so I will leave, but I will join after probably 40 minutes. I will join you back. So if there is any question, I will just discuss that. Okay? thank you, sir. Thank you very much, sir. I will join you back. Thank you. Yes, sir. Friends, our next speaker is Professor A.K. Roy. Dr. Roy is the special guest for this webinar, and he is keynote speaker. Friends, I would like to introduce Dr. Roy. Dr. Roy has started his career as ICAR scientist of genetics at Indian Grassland and Fodder Research Institute, Jhansi, and throughout his career, he served IGFRI in various capacities as scientist, senior scientist, principal scientist, division head, and now he is leading and coordinating the forage research at national level as project coordinator, All India Coordinated Research Project on Forage Crops. Friends, Dr. Roy is a dedicated researcher, and he has significantly contributed to forage science. He has been involved in the development of several high-yielding varieties of forage crops, pasture grasses, and legumes developed by IGFRI Jhansi. Dr. Roy is a top-class academician, and he has visited several countries, including UK, China, Argentina, Australia, and many more. He is decorating several academic societies, including one of the most prestigious society of the country, that is National Academy of Agricultural Sciences. Looking to his outstanding contribution to the science and society, Dr. Roy has been honored and awarded several times at various platforms, including one of the most prestigious award of ICAR, that is ICAR Team Award for outstanding multidisciplinary research work as team leader. Sir, we are honored to have you here as a special guest and keynote speaker of this national webinar. Friends, I would like to inform you that Dr. Roy has very important meeting, but despite of all limitations, he has spared his valuable time for us. Sir, we are very grateful to you, and now over to you. Dr. Roy, please. Thank you, Dr. Sharma. Am I audible? Yes, sir. Please go ahead. And then slides are visible? Yes, sir. Yes, sir. Slides are visible? Yes, sir. Okay, sir. Okay. So, Honorable Professor R.P. Singh, Honorable Vice Chancellor SKRAU Bikaner, Dr. A.K. Srivastava, member ASRB, who has given just a wonderful talk now, Dr. N.K. Sharma, organizer, and all the delegates coming from across the country. And this today on the occasion of Guru Purnima, I bow my head to all the gurus and this, and then with the permission, now I'm thankful
to the organizer for giving me this opportunity. And today I have kept my topic as the forest crop scenario and strategies for increasing livestock productivity. Although a lot has been dealt in detail with very convincing theories by Dr. Srivastava. So I have divided my lecture into 5 parts: introduction, fodder scenario, livestock scenario, possible effect of climate change, forage crop improvement, issues, strategy, and policy perspectives. So one thing I would like to say, whether it will be comfortable with English or should I talk in Hindi, because slides are in English, but if the organizers want, I can talk in Hindi. So सर अगर हिंदी में कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान भी जुड़े हुए हैं। ये स्लाइड्स इंग्लिश में है, मैं उसे हिंदी में बोल सकता हूँ। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सो जो पहली बात आती है कि देश में जो फीड एंड फॉडर सिनेरियो क्या है, एंड डॉक्टर श्रीवास्तव ने काफी डिटेल में बताया। इसकी समरी ये है कि उन्होंने कहा 2.3% हमारा लैंड एरिया है, जिसमें 11% विश्व की जो लाइव स्टॉक है वो हम, और 17% जो मनुष्य आबादी है वो हम कर रहे हैं, और जो 75% हमारे किसान है वो स्मॉल और मार्जिनल होल्डर है, और जो कि मेन जो पशुधन है हमारा उसको वो पालते हैं। तो तब जब हम पशुधन की बात करते हैं, जब हम फीड एंड फॉडर की बात करते हैं, तो ये जो हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, जो हमारे छोटे किसान है, वो जो सीमांत किसान है, उन पर ही बहुत ज्यादा बात आती है, उनके फायदे की बात होती है। और ये बात भी कही गई कि केवल 4 से 5% जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसको हम चारा उत्पादन में लेते हैं। और इसमें सौरगम यानी ज्वार जो है वो खरीफ में लगभग 26 लाख हेक्टेयर एरिया, और बरसीम जो रबी में है लगभग 19 लाख हेक्टेयर एरिया, या ये एरिया लगभग है जो कि मेन हमारा सोर्स है। इसके सिवा जो हमारी चरागाह भूमि है, जो हमारे पास्चर लैंड है, जो हमारे ग्रास लैंड है, वो भी एक सोर्स है। और ये भी डॉक्टर श्रीवास्तव ने बता दिया कि क्रॉप रेजिड्यू जो हमारे जो फसल के अवशेष भूसा है, चाहे कड़वी है, या ये हमारे मुख्यतः हमारे चारा के 54% जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन ये इनकी न्यूट्रिटिव एबिलिटी, या हम कहते हैं पोषकता, बहुत कम है। ये बात हम सभी जानते हैं। और लगभग 28% जो है जो हम हरा चारा उत्पादन करते हैं, जो कि पोषकता में अच्छा होता है, वो केवल 28% ही डिमांड है। तो अब हमारे पास उपाय क्या है? हमारे पास उपाय, जो डिमांड गैप एंड सप्लाई की डिमांड है, हम सभी जानते हैं, वो लोकल लेवल पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हम चारे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम है, और उसमें बहुत ज़्यादा ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ये परिवहन कॉस्ट आती है। तो हमें क्या करना है कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम हमें इंटेंसिफाई करना है, बढ़ाना है, या फिर हमें कुछ ऐसे फीड फॉडर रिसोर्स जिसका अभी तक हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हमें उपयोग में लेना है। तब जैसा कि पहले ही बताया कि वैदिक काल से ही अगर हम कहें, तो जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, हमारे जो पुराण और वेदों में भी हम पाते हैं कि मिक्स फार्मिंग सिस्टम, यानी खेती के साथ पशुधन, दोनों हमारे ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। और जब लोग बात करते हैं चारे की, चारे को कहते हैं जानवरों के लिए है, मेरा विचार उनसे बिल्कुल अलग है। चारा जानवरों के लिए नहीं है, चारा मनुष्य के लिए ही है, और ये एक हमारा जो फूड चेन है उसका बेस है। और हम इसी चारे के थ्रू हम अपने लिए प्रोटीन या फैट या अनाज पाते हैं, जहां हम एक इंटरमीडिएट है, वो एक बीच का हमारा एक कड़ी है, जो गाय, बैल, भैंस, पशु, बकरियां ये है। तो इसीलिए चारा पशुओं के लिए नहीं, मुख्यतः हमारे लिए भी है। और जब हम उसको उतना जब हम पशुओं को उतना देंगे, तो हमें उतना ही बेहतर दूध मिलेगा, हमें उतना ही बेहतर मीट मिलेगा, हमें उतना ही बेहतर एग मिलेगा। अब जो चारे की समस्या आती है, तो समस्या विकास में क्यों नहीं आती है? डॉक्टर श्रीवास्तव ने डिटेल बताया, चारे की बहुत समस्या है। समस्याएं क्यों हैं? एक तो हमारे पास
चारा फसलें बहुत है। हर अब विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं कि अलग अलग सीजन में अलग अलग चारा फसलें हैं। तो इन पे जो कंसंट्रेटेड, जो हम फोकस्ड रिसर्च करते हैं वो हो नहीं पा रहे, क्योंकि चारे में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है और वैज्ञानिकों की संख्या बहुत ही कम। डिग्रेडेड मार्जिनल लैंड जो बताया गया कि जो सबसे खराब भूमि होती है, वही सामान्यतः किसान अपने चारा फसलों के लिए दे देता है, और उसमें कोई भी इनपुट जैसे फर्टिलाइजर या इरिगेशन, सिंचाई, फसल कुछ भी नहीं डालता है। तो इसके बाद आता है जब हम ग्रेजिंग बेस्ड लाइव स्टॉक हस्बेंड्री की बात करते हैं, यानी जो चरा कर जो हमारी जो पशुधन आधारित है, लगभग 50% हमारे एनिमल जो है वो चराई पर ही आधारित है। और ये 50% जो आधारित है वो राजस्थान जैसे एरिड जोन में या पहाड़ी इलाकों में ये बहुत ज्यादा है। वहां की संख्या बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पशुओं को चराना ही मुख्य रूप से पशु उत्पादन का आधार है। और हम जानते हैं कि हमारी जो चराई भूमि है वो काफी घट चुकी है, और जो बची भी है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उत्पादकता बहुत ही कम हो चुकी है। और जो हमारे पास्चर लैंड है वो केवल वर्षा आधारित है। मॉनसून के महीनों में वो 3 से 4 महीने, अधिक से अधिक 5 महीने वो हरा चारा दे पाते हैं, और वहाँ जो पेड़ और झाड़ियाँ हैं उससे बहुत होता है तो 1 आध महीने मिलता है। तो इस प्रकार हमारे जो जानवर हैं, जो हमारे पशुधन है, वो उसको जितना चारा चाहिए वो मिल नहीं पाता। और जब हम इसकी बात करते हैं ग्रेजिंग इंटेंसिटी, यानी कितनी चराई होनी चाहिए, तो जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि जो विकसित देश है वहाँ 1 हेक्टेयर में एक से कम जानवर चलता है, और हमारे यहाँ लगभग 13 जानवर एक हेक्टेयर में चलते हैं। तो आप इसे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा कितना कम चराई के लिए जमीन उपलब्ध है हमारे जानवरों के लिए। अब इसके बाद आता है जो हमारे घुमंतू, जो हमारे पास्टोरलिस्ट हैं, जो हमारे जनजातियां हैं कई, जो कि चराई का काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये करते हैं। और लगभग 30 ऐसी कम्युनिटी हैं, ऐसे हैं जो कि एरिड और सेमी एरिड में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हैं, जो हमारे मुख्यतः उत्तरी और पश्चिमी भारत में है। और लगभग इसी तरह 20 घुमंतू जनजातियां हैं जो कि पहाड़ों पर रहती हैं, और ये मुख्यतः चराई युक्त पशुधन ही पालन करती हैं। और ये अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जहाँ चारा मिलता है उसमें मूवमेंट करते रहते हैं, और ये चराई भूमि का मैक्सिमम उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह की ये जो हमारे जो हमारी घुमंतू जनजातियां, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें। लाइव स्टॉक सिनेरियो के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बहुत ही इसको विस्तार में बताया। लेकिन हम देखेंगे तो जो हमारे स्मॉल रूमिनेंट है, जैसे बकरी है, भेड़ है, इनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। और जो हमारे क्रॉस ब्रेड कैटल है, भैंस है, उनके मेल पॉपुलेशन में कमी आई है, लेकिन उनकी जो फीमेल पॉपुलेशन है उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो एक है कि, और जो दुधारू गाय हैं, दुधारू भैंसे हैं, उनमें भी काफी बढ़ोतरी आई है। तो अब हम ट्रेंड की स्टडी करें कि 2012 का जो पशुधन सेंसस था, लाइव स्टॉक सेंसस, 2019 में क्या अंतर है। जो अंतर हमें बताता है कि हम भविष्य में किस तरह से हमारी डिमांड बढ़ेगी या बढ़ेगी। तो ये जो ट्रेंड है कि शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट और चॉइस में हो रहा है कि अब जब मेल एनिमल की संख्या घट रही है, फीमेल की बढ़ रही है, स्मॉल रूमिनेंट घट रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हमें क्वालिटी चारा और एक जगह का चारा, ज्यादा अच्छा चारा हो, वो हमें चाहिए, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी, वो जो एक हमारा मुद्दा है। और जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे जानवर विदेशों की तुलना में प्रति लैक्टेशन उनकी उत्पादकता बहुत कम है। और क्यों है, क्योंकि मेजर कारण 2 हैं। एक तो हमारा नॉन ट्रांसक्रिप्ट जो ब्रीड एनिमल का, और दूसरा क्वालिटी फॉडर जो है उसकी उपलब्धता नहीं है।
तो हमें एक डेयरी को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि दूध के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव में नहीं मिल रहा है, तो हमें दूध की जो उत्पादक कॉस्ट है जो है उसको हमें कम करना होगा, लागत को, उत्पादकता लागत को। और वो करने के लिए चूंकि चारा और फीड एंड फॉडर जो है वो 70% है हमारे टोटल कॉस्ट का, इसीलिए उसको कैसे हम सस्ता कर सकते हैं ये विचार आता है। एक जलवायु परिवर्तन की भी बात आती है। जलवायु परिवर्तन से क्या संभव हो सकता है? जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो कई फैक्टर उसमें हैं, और उस फैक्टर के साथ देखते हैं क्या बदल रहा है एग्रीकल्चर में। हमारी आबादी बढ़ रही है, पशुधन आबादी भी बढ़ रही है, मनुष्य की आबादी भी बढ़ रही है। इसके साथ ही हमारी जो गुणवत्ता युक्त खाना और चारे की डिमांड बढ़ रही है उनकी, और हमारा जो रिसोर्स है, लेकिन जिस पर हम काम कर, हमारी जमीन की होल्डिंग कम हो रही है, इनपुट कम हो रहा है, और ये जो पानी और लैंड और क्वालिटी घट रही है। तो इसके घटने के साथ ही जब क्लाइमेट बदलेगा तो क्या असर पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि कुछ C4 स्पीसीज होते हैं, कुछ C3 स्पीसीज होते हैं, उनमें टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर CO2 लेवल इंक्रीज करेगा तो C3 लेवल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और फीड क्रॉप्स जो है, जो डुअल पर्पस क्रॉप्स है, जैसे बाजरा है, सोरगम है, मक्का है, ज्वार, इन सब में जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो बदलेगा, क्योंकि ग्रेन और जो दाना मिल रहा है हमें और जो हमें सूखी कड़वी मिल रही है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो बदलेगा, और वो बदलने के कारण जो माने चारे की कड़वी की गुणवत्ता होगी वो कम होगी। और जब हम ग्रासलैंड की बात करते हैं तो जैसे ये जलवायु परिवर्तन होगा तो हमारी स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है, उसका कॉम्पोजिशन बदलेगा। तो इन चीज़ों को बदलने के साथ ही अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिग्नोसेल्यूलोजिक कंपोनेंट जो है बढ़ेंगे, और उससे जो डाइजेस्टिबिलिटी है, वो जो सुपाच्य वो कम रहेंगे और उनकी डाइजेस्टिबिलिटी घटेगी। और डॉक्टर श्रीवास्तव ने जैसे बताया कि डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके साथ ही जो हमारी मिट्टी है, जो मिट्टी के अंदर जो हमारा माइक्रोब ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे प्लांट प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, उनका भी बैलेंस बिगड़ेगा। और वो जो बैलेंस बिगड़ेगा तो ये न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग जो होगी, जो हमारे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी बदलेगा। तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि हम प्लांट की प्रोडक्टिविटी, चारे की उत्पादकता बढ़ा सकें। जब आता है फॉरेस्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट की, जो हम बात करते हैं, तो मुख्यतः डॉक्टर शर्मा ने कहा था कि मुख्यतः आपका टॉक फॉरेस्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट पर ही हो, कि कैसे हम चारे की उत्पत्ति को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं चारे की एक विकसित किस्म की, तो चारे की एक विकसित किस्म में जब हम किसी फसल की विकसित किस्म की बात करते हैं, उससे थोड़ा अलग होता है, इसलिए कि हमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें ग्रेन नहीं चाहिए, बल्कि हमें बायोमास चाहिए। कितनी पत्तियां हो रही, कितना स्टेम हो रहा, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी पैलेटेबिलिटी क्या है, और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी क्या है। यह चीज जब हम राइस और व्हीट के लिए हम वैरायटी तैयार करते हैं तो इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम चारे की वैरायटी तैयार करते हैं तो ये मुख्य आधार बन जाता है कि हमें यील्ड भी चाहिए, हमें सीड भी चाहिए, हमें क्वालिटी भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए, हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, हमें डाइजेस्टिबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए, और ये चाहिए। तो हम इन चीज़ों की जब बात करते हैं तो तब हम जब हम एक वैरायटी डेवलप करने कोशिश करते हैं तो हमें क्या चाहिए। पहली चीज़ होती है कि हरा और शुष्क चारा की उत्पादकता बढ़े, और वो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़े, प्रोटीन बढ़े, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़े, और जो एंटी क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं जो वो कम हो, और वो विभिन्न बीमारियों और उनसे लड़ने की क्षमता बेहतर हो। और जब हम कहते हैं कि चारा सामान्यतः किसान अपनी सबसे खराब भूमि पर लगाता है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसी वैरायटी डेवलप करें जो कि इन खराब भूमि पर और वो हो पर भी अच्छी उत्पादकता दे।
इसके बाद जब जब ये भी कहा जाता है किसान केवल चारे के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होता, तो हम स्पेसिफिक क्रॉपिंग सीक्वेंस की बात करते हैं कि जैसे वो अगर अपनी फसलों को ले रहा है ग्रेन के लिए, उसके बीच में जो समय बचता है उस समय के बीच में वो इसका उपयोग कर ले और ये कैसे कर ले, यही हमारे टारगेट होते हैं और इसी के लिए हम वैरायटी डेवलप करते हैं। जब हम ग्रास ब्रीडिंग की बात करते हैं तो मुख्य जो हमारी समस्या है नॉन सिंक्रोनस फ्लावरिंग है, एंथेसिस स्पाइकलेट है। इसके कारण हम ग्रासेस में कि जब हम सीड की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे फॉल्स सीड होते हैं, क्योंकि उसमें एपोमिक्सिस से लेके स्टेराइल ब्लूम तक की समस्याएं बहुत होती है और एपोमिक्टिक नेचर जो ज़्यादातर ग्रासेस का है, जिसके कारण हम जीन ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर नहीं कर पाते हैं। और ये ज़्यादातर हम जेनेटिकली बात करें, मोस्ट ऑफ द ग्रासेस आर polyploid with complicated inheritance of traits which has not been studied much and very few genes are characterized or mapped. और इसमें जो CMS सिस्टम है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, इज स्टिल नॉट वेल डेवलप्ड। एंड देन जब हम चारे और बीज दोनों की बात करते हैं तो दोनों में एक उल्टा रिलेशनशिप होता है कि चारा बढ़ता है तो बीज उत्पादन घटता है, बीज उत्पादन बढ़ता है तो चारा उत्पादन घटता है। ये हमारी समस्या होती है। इसी तरह जब हम लेग्यूमिनस फॉरेज की बात करें, जो हम दलहनी चारा फसलों की बात करते हैं, तब भी हमारी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमें एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सिंग टाइप चाहिए और हाई फॉस्फेट रिस्पॉन्सिव टाइप्स खोजते हैं, so that we can get better quality order as well as high yield। और एंटी क्वालिटी फैक्टर की जो हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही समस्या इनमें है कुछ लेग्यूम्स में। सो उस एंटी क्वालिटी, जैसे हम ल्यूसिना की बात करते हैं तो माइमोसिन है और इसी तरह कई फैक्टर्स है जो कैसे कम। और ये दलहनी फसलों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है सिंक्रोनस फ्लावरिंग। जैसे कि अगर हम काउपी की बात करें, लोबिया जो सबसे कॉमन है, या राइस बीन, कॉन्टिन्यूस फ्लावरिंग होती रहती है। तो कॉन्टिन्यूस फ्लावरिंग होने से सीड कलेक्शन प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण हम वैरायटी डेवलप करते हैं जो कि सिंक्रोनस फ्लावरिंग हो, ताकि एक ही समय हम सीड कलेक्ट कर सके और लेबर कॉस्ट हमारा कम हो सके। ये हमारी मुख्य आवृत्ति होती है। और ये अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट क्रॉप्स ट्री क्या है। स्पेसिफिकली अगर हम राजस्थान के लिए ही बात करें या हम शुष्क क्षेत्रों में बात करें, तो कल्टिवेटेड क्रॉप जो है जो हम उगाते हैं उसमें बाजरा, ग्वार, जई, ओट, बरसीम, सौरगम, ज्वार, लूसन यानी सिजका, नेपियर बाजरा हाइब्रिड, मक्का, ये सब मुख्य फसल है। जब पाश्चर रेंज ग्रास की बात करते हैं तो राजस्थान के एरिड जोन के लिए लेजुरस और सेंट्रस सबसे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए डाइकेंथियम, सेहिमा, गिनी ग्रास, दीनानाथ ग्रास, स्टाइलोसेंथिस, डिटेस्मेंथस, क्लाइटोरिया, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। और जब हम फॉडर ट्री की बात करते हैं तो कई हैं, जैसे मोरंगा, सेल्वाडोरा, जिजाइफस, डिक्लोस्टेकिस, कोलोफॉस्पनम, नीम, प्रोसोपिस साइनेरिया, खेजरी, एकासिया, आइलैंथस सुबबुल, ये सब कई इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो कि राजस्थान के लिए या अन्य शुष्क और शुष्क एरिड एंड सेमी एरिड क्षेत्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आता है कुछ सुटेबल वेराइटीज है। ये सुटेबल वेराइटीज है जो पिछले कई सालों में ICAR के इंस्टीट्यूट्स और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए, जो मैन सिस्टम है। तो यह माने सारी जो हम डिफरेंट वेराइटीज की बात कर रहे हैं, सौरगम जैसे ज्वार में है सिंगल कट सिस्टम भी उपलब्ध है, मल्टी कट भी उपलब्ध है, डुअल पर्पज भी है। और 2 वेराइटियां डेवलप हुई हैं जो कि पेरिनियल सौरगम है, बहुवर्षीय ज्वार, जिसे कि आप एक साल में 5 से 7 बार काट सकते हैं और एक बार लगाने के बाद ये 5 साल तक आपको भरपूर हरा चारा देती है। उसमें 2 वेराइटी आई हैं, कोएफएस29 और कोएफएस31। इसी तरह मक्का में मुख्यतः चारा मक्का में चार वेराइटियां, अफ्रीकन टॉल, J1006, प्रताप मक्का चरी 6, जो कि उदयपुर में राजस्थान के उदयपुर इंस्टीट्यूट MPUAT ने डेवलप की है। और TATS FM 15-6, ये वेराइटी 1 साल पहले ही नोटिफाई हुई है साउथ इंडिया के लिए।
बाजरा की बात करते हैं, कई कई वैरायटियां हैं बाजरा में, ऊँट में, चाय में, डुअल पर्पस बार्ले में, बीएन हाइब्रिड जो है, बीएन हाइब्रिड इस समय देश में सबसे पॉपुलर चारा फसल होती जा रही है। और को BN6 और BNH11, BNH14, ये कुछ वैरायटी हैं जो कि पिछले साल ही नोटिफाई हुई हैं और इनकी काफ़ी अच्छी गुणवत्ता है। इसमें कुछ गलतियां भी है, मेरे ख्याल से TNCN वगैरह ये वैरायटी गलत आ गई है, कोई बात नहीं। उसमें इधर गिनिया ग्रास की वैरायटी है जो है। इसी तरह सेंक्रस सीलियरिस की भी काफ़ी वैरायटी आई हैं। काजरी के द्वारा राहुरी यूनिवर्सिटी एमपी के भी राहुरी, IGFRI काजरी, इन लोगों ने काफ़ी वैरायटियाँ डेवलप की। सेंक्रस सीलियरिस और सेंक्रस सेटिजेरस जो अंजन और धामन घास है, अंजन और धामन घास खास करके राजस्थान के लिए काफ़ी उपयोगी है। और जो लेजुरस इंडिकस यानी सेवान ग्रास जो कि मुख्यतः राजस्थान के एरिड जोन की मुख्य घास है, इसमें भी दो वैरायटियां आई हैं। एक जैसलमेरी सेवान जो कि SKRAU बीकानेर ने ही डेवलप की है, और दूसरी काजरी सेवान 1 जो कि काजरी ने डेवलप की है। इस मार्वल ग्रास की वैरायटियां हैं। और अगर हम लेग्यूमिनस क्रॉप की बात करें, दलहनी फसलों की, तो काउपी की वैरायटी है, बरसीन में एक वैरायटी का मैं जिक्र खास करके करूंगा, JBSC1, यानी जो सिंगल कट बरसीन है। ये एक सिंगल कट है जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। ये आपको 60 से 70 दिन में आपको 200 से 250 क्विंटल हरा चारा विद 20% ड्राई मैटर एंड 20% क्रूड प्रोटीन ये आपको दे सकती है। तो जब भी आपका खरीफ फसल के बाद जो समय खाली हो, आप इस वैरायटी का उपयोग खास करके कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कट में आपको सफिशिएंट चारा दे देती है, जिसको आप सुखा के हे भी बना सकते हैं, क्योंकि ड्राई मैटर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। उसी तरह लूसन की हम बात करें तो एक वर्षीय लूसन है, पेरिनियल है, और राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर भी है। एक वैरायटी RRB 007-1 जो कृष्णा के नाम से SKRAU बीकानेर ने ही डेवलप की है, खास राजस्थान के लिए। ग्वार की वैरायटियां हैं जो राजस्थान के लिए काफ़ी सुटेबल है। बुंदेल ग्वार 1, 2, 3 IGFRI ने डेवलप की 3 वैरायटी। इस तरह स्टाइलोसैंथ्रिस की है, स्कैब्रा और हमाटा की वैरायटियां वहाँ ग्रो हो सकती हैं। क्लाइटोरिया की भी एक वैरायटी है जो कि चरागाह भूमि में काफ़ी अच्छी हो सकती है, IGFRI ने डेवलप की है। लूसन की जो मैं कृष्णा वैरायटी की बात कर रहा था, ये SKRAU बीकानेर ने ही डेवलप की है, और इसमें 72% डाइजेस्टिबिलिटी और 20% प्रोटीन है। आनंद की भी एक वैरायटी उस जोन के लिए उपयोगी है। अंजन ग्रास की वैरायटी, ये खास ये वैरायटियाँ राजस्थान के लिए ज़्यादा उपयोगी है। काजरी अंजन 358, काजरी अंजन 2178, फूले मद्रास अंजन, बीकानेरी धामन, ये सब वैरायटियाँ राजस्थान के ग्रासलैंड के लिए काफ़ी उपयोगी है। सेवन ग्रास की 2 वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ, काजरी ने डेवलप की है और SKRAU बीकानेर ने डेवलप की है। इसके साथ ही मार्वल ग्रास, अंजन ग्रास, धामन ग्रास की 2 वैरायटी IGFRI ने डेवलप की है, और ये राजस्थान के लिए काफ़ी सुटेबल है, बुंदेल अंजन 4 एंड बुंदेल धामन 1। इसी तरह बरसीन की वैरायटी जो मैं सिंगल कट बरसीन की बात कर रहा था, JBSC1, और क्लाइटोरिया की वैरायटी सिंगल कट ओट की वैरायटी। गिनी ग्रास की कई वैरायटियाँ हैं जो वहाँ उपयोगी है। फॉरेज बाजरा की वैरायटी RBB1 SKRAU बीकानेर ने ही डेवलप की है, और ये है आनंद फॉरेज भी उस एरिया के लिए सुटेबल है। BN हाइब्रिड की 2 वैरायटियाँ उस जोन के लिए काफ़ी अच्छी होंगी, राजस्थान के लिए जो लगा रहे थे, BN5 और BNH10। इसके साथ ही जो सोरगम की वैरायटियाँ हैं, मीठी सुडान, पूसा चेरी और कुछ हाइब्रिड्स आए हैं भी, ये भी काफ़ी डेवलप वैरायटी है। MP चेरी SC308 पुरानी वैरायटी है, लेकिन आज भी ये पॉपुलर है, और इनको आज भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो ओट की वैरायटियाँ हैं कई, जई में आप उपयोग करना चाहिए। BN हाइब्रिड की वैरायटियाँ, ये सारी वैरायटियाँ राजस्थान और डिफरेंट जोन के लिए भी उपयोगी है। काउपी की 3 नई वैरायटियाँ अभी डेवलप हुई हैं, 49, विजया और TN। ये कुछ वैरायटी जो पिछले 5 सालों में डेवलप की गई हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लिए।
लूसन की वैरायटी O3 L4 और ECO2 है, जो कि पेरिनियल सिस्टम में काफ़ी अच्छी है। और बाजरा की वैरायटियाँ भी मैं बात कर रहा था कुछ उत्तर प्रदेश के लिए, और नॉर्थ ईस्ट मोती बाजरा या आनंद बाजरा खास करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए सीरीज है, और ये माने काफ़ी अच्छी 400 से 500 क्विंटल यील्ड है इसकी। और जब हम चरू घास की बात करते हैं ग्रासलैंड के लिए, तो धवलू घास की एक वैरायटी है जो क्राइसोपोगन फल्वस IGFRI ने डेवलप की है। बुंदेलखंड ग्रास IGFRI की डेवलप की वैरायटी है। ये माने जो आपका ग्रेजिंग लैंड है उसके लिए में उपयुक्त वैरायटी है। बुंदेलगिनिया है। सेंकर सीलियरिस की वैरायटी की मैं बात करता हूँ, फोटोग्राफ और उनके डिटेल समेत है। और जो मल्टीकट बहु वर्षीय जो ज्वार की बात हो रही है, जैसे FS29 है, ये पेरिनियल सिस्टम है। 6 से 7 हार्वेस्ट आप एक साल में ले सकते हैं, 6 से 7 बार काट सकते हैं, और 170 टन तक इसमें हरा चारा उत्पादन पर हेक्टेयर आप पा सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रेटेजी पॉलिसी पर्सपेक्टिव में। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हम बात करेंगे कि जब हम क्रॉप, लाइव स्टॉक और ह्यूमन, तीन जो मुख्य कड़ियाँ हैं हमारी, जो फसल, पशुधन और मानव, इन तीनों के बीच में एक समन्वय है। और वो समन्वय जो है खास करके हिल और एरिड जोन में काफ़ी देखा जाता है। और ये तीनों एक समन्वय के साथ अभी तक चल रहे थे, लेकिन अब ये चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो चराई भूमि है वो कम हो गई है, हमारा चारा कम हो गया है, उसकी उत्पादकता कम हो गई है। और ये जो हमारा सिस्टम था, ये अभी तक कॉमर्शियली ओरिएंटेड नहीं था, बिजनेस में नहीं था, बल्कि ये एक जीवन का अंग था जो कि हमें चल रहा था। तो जब हम चारा उत्पादन में कांस्टेंट की बात करेंगे, तो अभी तक जैसे हमारा जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और ग्रेजिंग और फॉडर शॉर्टेज पे ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी सुबह बताया था यही बात। इसे और एडुकेट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फॉडर एंड फीड रहा। जो हमारे क्रॉप रेजिड्यू, जो फसल अवशेष हैं, वो काफ़ी उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है। इन चीज़ों को सुबह भी चर्चा की गई, ज़्यादा करने का मतलब नहीं है। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल जो हमें है वो हमें टाइमली नहीं मिलते हैं। और जो हमारे डिफरेंट एजेंसी है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और स्टेटिस्टिक्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि कहाँ पे कितना चारा कम है या क्या ज़्यादा है। इन सब चीज़ों का कारण हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। जो हमारे फसल अवशेष जलाए जा रहे हैं या दूसरे उपयोग में लिए जा रहे हैं, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग है। और इन चीज़ों के कारण हमारी जो है, और जो सीप, गोट और कैटल जो है, ये ज़्यादातर हमारी चराई भूमि पर ही हम इसे मेंटेन करते हैं, जिसके कारण इनकी उत्पादकता कम है। और मार्केटिंग फैसिलिटी और बैंकों द्वारा क्रेडिट और ये जो सपोर्ट है, ये हमें नहीं मिल रहा है। गुड क्वालिटी सीड की जो बात होती है, कल्टीवेटेड फॉडर में केवल 25 से 30% हमारे पास सीड उपलब्ध है। और ये चराई घासों में तो जो रेंज ग्रास लगे हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कारण ये, जैसे हम देखते हैं कि किसान अक्सर सीड के लिए अपनी फसल को छोड़ने को तैयार नहीं होता, और वो चाहता है कि हम ग्रीन फॉडर ले लें। बरसीम के में या जई में हम देखते हैं किसान उसको चाहता है हम अंत तक काट के हरा चारा ले लें, और वो बीज उत्पादन के लिए फसल छोड़ता नहीं है। ये भी एक कारण है। और यह जो हमारे जो ग्रासलैंड की प्रॉब्लम क्या है, ग्रासलैंड में जो अनपेलेटेबल एंड अंडर न्यूट्रिशियस श्रब है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे बन्नी ग्रासलैंड में कहते हैं प्रोसोपिस जूली फ्लोरा बहुत तेजी से फैल गया है, और उसने ग्रासलैंड को खराब कर दिया है। और पुअर ग्रेजिंग सिस्टम और मैनेजमेंट है, ग्रेजिंग काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज ग्रेजिंग पॉपुलेशन है, और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो हमारी जो सूटेबल टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है हमारे इंस्टीट्यूट में, कल्टीवेटेड फॉरेस्ट को फीड फॉडर क्रॉपिंग सीक्वेंस पर, राउंड द ईयर फॉडर कल्टीवेशन पर, ग्रासलैंड को डेवलप करने के लिए हॉर्टिकल्चर सिल्वीकल्चर टेक्निक है, फॉरेज ऑन बंड है, ये सब टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, मशीनरी है, फीडिंग है। लेकिन इनको लेकर अब जानने की जरूरत है कि कैसे हम इसको डेवलप करें। A lot of significant work has been done, technology has been developed and tested, but emphasis is now required in coordinated manner involving multiple stakeholders
to implement process and activity to rehabilitate grassland. इसकी जरूरत है, ये अभी हम नहीं कर पाए। और ग्रासलैंड को रिप्रेजेंट एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है, सुटेबल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी, जैसे नेशनल ग्रासलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात है, एंड मैपिंग एंड एमेल्यूरेशन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव ग्रासलैंड। ये कैसे किया जाए, इसके लिए फंड की जरूरत है, पॉलिसी की जरूरत है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम मैं आगे बता चुका हूँ कि कैसे डेवलप करना है। हमें कंजर्वेशन, इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर मैनेजमेंट भी देखना है, और बायोफिजिकल सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैरेक्टराइज करना है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रोसेस। और दूसरे नॉन कन्वेंशनल यूज हमें करना, फॉरेज एंड बंड, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर सिस्टम, नॉन फॉडर, हाइड्रोपोनिक्स, ये सब चीजें हमें देखनी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉडर मिशन हमें जरूरत है, एक नेशनल ग्रेजिंग पॉलिसी की जरूरत है, सुटेबल ग्रासलैंड पास्चरलैंड इनिशिएटिव, फॉडर बैंक एंड रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसके लिए नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना होगा, एलोकेशन बढ़ाना होगा, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, फोकस रिसर्च, मैकेनाइजेशन, सीड रिसर्च एंड इंसेंटिव देना होगा डेयरी एंड फॉरेज इंडस्ट्री। तो मैंने गवर्नमेंट की मैंने सबको सपोर्ट चाहिए डिफरेंट एरिया में, कॉमन जो आगे भी बात हो चुकी है। ये कुछ नॉन कन्वेंशनल फॉरेज के एग्जांपल हैं, जैसे थॉर्नलेस कैक्टस है, कांटा रहित कैक्टस काफी पॉपुलर हो चुका है, फॉडर बीट है, अजोला है, फॉडर शुगर केन है, वेच यादिसिया है, थाइरस है, ये सब नॉन कन्वेंशनल फॉरेज को बढ़ावा देते। कुछ जिनको वैरायटी के बारे में ज्यादा जानना है, ये वैरायटी डाटाबेस ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप वैरायटी 2020 में डेवलप हुई में, और इसमें सारी 362 वैरायटियों का पूरा डिटेल है, आप लोग चाहें तो इससे ले सकते हैं। और जो रिसर्च में काम कर रहे हैं उसके लिए 48 फॉरेस्ट क्रॉप का 29 सीरियल 19 लेग्यूम का हम लोगों ने एक मिनिमल डिस्क्रिप्टर तैयार किया है, ताकि वो किसी भी जर्म प्लांट पे इवेल्यूएट कर सकें। जो फॉरेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन, अगर फॉरेस्ट में कोई बीमारियां आती है तो फोटो सहित इस बुलेटिन में सब कुछ उपलब्ध है। इंडियन फॉडर सिनारियो हम लोगों ने डेवलप किया है, कहाँ कितनी अवेलेबिलिटी है। तो और हमारे एक मोबाइल ऐप भी है, फॉरेज इंडिया ICR, जो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें सारी जानकारियां हैं, और ये हमारी वेबसाइट है जहाँ ये सारी किताबें सब कुछ फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पे जाएंगे तो आपको सारी ये जानकारियां मिल जाएंगी एक ही जगह पे। और ये कुछ साइट है, कुछ मोबाइल ऐप है, जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको बाकी जानकारियां भी उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा सर। Thank you, sir. Thank you very much for accepting our invitation and giving this wonderful talk. We know today you are very busy and you are, you are having a very high-level meeting at your institute. But despite of all limitations, you have spared your valuable time and giving this one for this wonderful talk. Sir, thank you very much. We are grateful to you, sir. Friends, as per list, our next speaker is Dr. Sunil Kumar, but he is also from IGFRI, and they are having a very high-level meeting. So we will take him little late. And now I would like to invite our next speaker, Dr. Andy Yadav. Friends, I would like to introduce Dr. Andy Yadav Sahib. Dr. Andy Yadav is a principal scientist agronomy and head काजरी रीजनल रिसर्च स्टेशन बीकानेर। और डॉक्टर यादव साहब ने जो आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैजाबाद में, वहाँ से आपने PG और PhD की डिग्री हासिल करने के बाद में जो ICR साइंटिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया है। और आपका जो एकेडमिक लाइफ है वो टोटली एरिड जोन के लिए ही आपने डेडिकेट किया हुआ है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही इज सर्विंग एट बीकानेर एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ने कई तरह की कई टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र के लिए इजाद की है, जो वर्षा आधारित फसल प्रबंधन कैसे किया जाए और चरागाह प्रबंधन पर मुख्य रूप से आपने कार्य किया है। डॉक्टर यादव साहब के
120 से भी ज्यादा शोध पत्र आपने लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं, टेक्निकल बुलेटिन्स लिखे हैं, पॉपुलर आर्टिकल्स लिखे हैं। यहाँ नहीं, विदेशों में भी आप कई देशों में आपने विजिट किया है, जिसमें लोगान है, तंजानिया है, इकार्डा सीरिया है, जॉर्डन है, यहाँ आप भ्रमण कर चुके हैं। और जब आपसे रिक्वेस्ट की, आज आपको भी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आपने हमारे लिए समय निकाला है। सर, हम आपके आभारी हैं। और अभी मैं प्रोफेसर एंडी यादव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन देने का कष्ट करें। और जो डॉक्टर एंडी यादव साहब का जो प्रेजेंटेशन है वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेंजलैंड एंड पास्चर ग्रासेस फॉर फॉरेज प्रोडक्शन, इस पर डॉक्टर एंडी यादव साहब बात करेंगे। सर, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Sharma Sahab. I think I am audible. Yes, sir. Can I share my slides? Yes, sir. Actually, ये share screen option is there at bottom. Okay, thank you again, Dr. Sharma Sahab. Respected Honorable Professor Apisi, Vice Chancellor Agriculture Member ASRB New Delhi, Dr. A.K. Roy Sahab, Dr. A.K. Nagda, Dr. Rakesh Hawal, professors, students, and scientists of the SKRAU and other universities, AICRP, scientists, and friends. Today, I have been allotted to discuss on the technology interventions for the management of rangeland and pastures for forest production. I will talk especially in context with the arid zone, Western Rajasthan, especially this site we have to take it. And actually, we have to think about the rangelands and grasslands, which are very, very dominant in the country, in the different parts from the Himalayas to the arid zone of this India's desert. We have to think of it. What about think about the rangelands? The rangelands are the land on which the native vegetation, which is generally natural vegetation, have a natural potential also, is predominantly the grasses. Grass-like plants, forbs, shrubs, fodder trees suitable for the grazing or browsing uses. If they are present, in the first photo we can see here, these are the rangelands, which are not sown, not cultivated, naturally grown, but management is done by the society or community. The uncultivated area, they support the natural vegetation, seeded herbaceous with or without the scattered trees. It is the self-seeding system of the nature, and it is a large area which is dominantly found in Rajasthan, Madhya Pradesh, we can say, and not in other areas. Grasslands, the grasslands are characterized by the lands dominated by the grass rather than the large shrubs and trees. They are very large shrubs and large trees, which is not browsable. They can be used for cut and carry system. In the country, about 40% at surface, you can say, it is covered by the grasslands. Why, where it is found? Actually, in the arid zone, we cannot think of grasslands. We have rangelands, we have pastures, we have orans, which has been left for the community, by the community. They are managed by the people's participation mode.
But in case of the grassland, these grasslands are found generally in humid areas where rainfall is very dominant. We have more than 1000 millimeter rainfall, or in India, it is generally found in hills areas where the temperature is low, and generally in the world, it is found in grasslands are found in the temperate region, where daily minimum rainfall 5 to 20 millimeters is attacked. It is naturally managed grassland and used for the grazing. So this is the basic difference. Why I am telling it? Because we have to know that grassland and rangeland. Generally, we say the rangelands as a grassland. Grassland are best choice of these species cultivated in the very systematic manner, where the natural rainfall is high and it is sufficient to sustain the life of the grasses. If we come into the Indian arid zone of Western Rajasthan, our president has told regarding the scarcity, regarding the surplus, regarding the availability of the land of this zone. I have to talk only 2 or 3 things. First thing, the area. Rangelands are a very big lands which are just naturally managed for the grazing of the cattle or sheep and goats. In case of hot arid zone, which is very dominant, 1.7 million hectare, which is found in the 4 states. Rajasthan has a maximum area of 19.6 million hectare, and it is only due to this, because agriculture or cultivation is very less, that's why population is less, that's why we are getting a more area under the rangelands. In case of Gujarat, we have some rangelands. Haryana, 0.75 million hectares, South Peninsula, 3.5. Also, 7 hectare, where there is no any rangeland, there is lands. Because there are the snowfall beans, we are getting the winter rains and we are getting the summer rains. Both the rains are wicked, that's why we are having the grasslands. And those grasslands, if you count here, that is going to be turned at the rangeland. Some environmental trends in rainfall, as we know. Poor rainfall is not very dangerous, but erratic rainfall is very dangerous, because whatever the rainfall, we are going to sow anything that may be grass, crops, anything. If we are having the erratic rainfall, due to long dry spell, you can say the whole crop is going to be damaged. Then extreme temperatures, which is the characteristics of the arid zone. This extreme temperature always create a surface dry, and without moisture, the soil or the sand with the high wind velocity, it is very prone to soil erosion, or you can see a wind erosion. High annual evapotranspiration, 1400 to 1500 millimeter. It is very high, whereas the precipitation is only 253 millimeter annual, it is average. We can think of the moisture status of this area. And our rangelands are nearly found in such a climatic situation. Then what will be the growth of that grasses and how much cattle we can sustain on that? We can think of this climatic situation of this region. But we are fortunate that we have the loose sandy soil with poor organic matter content, although it is not very nutritive. It is not sufficient. It has no sufficient quantity of the nutrients we can supply to the grasses, but it has one of the very unique characteristics. It has a very low and poor water holding capacity. Then whatever the moisture or rainfall coming to the soil, it is 100% available to the crops, trees, and whatever it is. It is not having with this. Whatever the moisture is sustained after leaching, it is available to the plants. That's why after one rain, we are getting our crop very green. And whatever the rangelands, the grasses are maintained here, this is only the reason for that.
This is the sandy soils only, because it has no capacity to retain the moisture for this. All these situations are creating the drought and soil erosion. And drought and soil erosion, it is a yearly phenomena. Every year we are getting that may be mild or very strong. When it is very strong, we are going to, it is diverted to the famine. And you can know that in famine, what is the situation for the animals as well as the human beings. The second thing is the landforms. We have sandy plains, intradonal plains, and sand dunes. Sand dunes have no use because there is no any grasses. They are having only trees, and that has been planted by human beings. But in case of sandy plains, we are getting the crops, we are getting the rangelands on those areas, and in the intradonal plains, the farmers are cultivating their crops. This is the situation of the landforms. Rocky, gravelly, and undulating topography. It is also one of the beneficial for the making the rangelands a vast area for that. The status. What is the status of our rangelands? You can see in the figure. It is the rainy season where the so many acacia population is there. Jujubas population is there at the lower side. It is heavily grazed rangeland, which is very much dominant in the orange, and whatever the area is maintained by the, you can say charaga, जो charaga यहाँ बोलते हैं, that is maintained by the people's participation and left to a particular community for its management. In grassland area in India, we, as many people has told about the area, production, problems about the grassland as India level. But I am going to talk about the arid zone only. That is 80 million hectare in India, which is the 17% of the total land area of the country, and carrying capacity is less than one adult cattle unit. You can think of how many cattle units just we have got through the animal science. Dr. Srivastava Sahab has given a detail on the animal status in the country as well as in the Rajasthan. And our carrying capacity of the rangelands is only 1 ACU, adult cattle unit. Forest area is 7.6 lakhs kilometer square, which is 2% of the total geographical area of the world. And in India, it is supporting for 20% of the world's livestock. Means we have a very large area, a large numbers of livestock. Dr. A.K. Srivastava has given the total population of different cattle and sheep and goat. 16% of the cattle population is maintained on these grasslands, and 15% of the world buffalo population is also maintained here on the rangeland and the grassland of the country, and 20% goat and 5% sheep population. We are maintaining about 80% of the total livestock population on these grasslands. You can say 20%, which is the exotic breeds and some dairy and some other type of facilities given for the dairy farming, that is maintained on the stocked food material and feed material. This is the situation of this rangelands and grassland, especially in the western Rajasthan, when only 3 months the fodder is available. After that, the lower slide you can see here, picture, the rangelands are like this. There is no grass actually for grazing. Only browsing species are standing here for sheep and goat. What are the main challenges? We have to think of it before going to maintain or going to manage the rangelands. Unstable grazing practices. This is one of the biggest management issue in the arid zone as well as in whole country. Whatever the land is available, a large of animal population is going to be grazed on that particular area. And due to the lack of rainfall, the species are not going to sprout again and again within 3 months, and it is going to be harvested by the animals all over the fodder and grasses. Damaging the fire regimes, you are just knowing that in the forest all over the world it is a problem. During the summer season, when the grasses are going to be dried, fire position is the very, very dangerous for that, and large of
large area in the rangelands, it is going to be damaged. And apart from this, not only surface vegetation, the fodder trees are going to be damaged, which are perennial in nature. And again, to just regenerate it, it will take time. Invasive plant species. If the population of grazing animal has very selective type of grazing, whatever the digestible material or fodder or grasses species are there, that has been grazed by the animals. Again and again it is grazed. Then what is the situation of these rangelands? Invasive plant species which are not used for grazing, which are not palatable, that are coming in the rangelands. And due to that, the total grass population is decreasing day by day. And it to be decreased at such a level that it is non-economical, and it cannot be say at the rangeland or grasslands. So we have to think of the invasive plant species, which is going to be coming out, and grass population or fodder production in that areas, it is decreasing day by day. We have to take care of that. Global climate change. Climate change is one of the major issue. If the temperature is rising, and with the rising in the temperature, everything is going to be changed. The species earlier, which we are getting, the good production nowadays due to the change in the temperature, increase in the temperature, everything is going to be, first of all, the moisture is going to be lost, and that is not available even in the rainy season for the grass species to their survival and the growth. Human development. Lot of, you have just gone through the newspapers in the Rajasthan, what I have just read it, that large of the rangelands, pasture lands, gochard lands are just going to be dominated by the non-fruitful activities, just like development of roads, encroachments, development of buildings, colonies. That's why they are sinking. And the another side, our population of the animals, it is growing day by day. And it is going to be hungry every time because the area is going to be less. These are the things where we have to think of it. And you can say, once upon a time, when big storms were there, and after every storms, we were having a little rainfall. That was the lifeline of that rangelands. And in those rangelands, such type of grasses, even the animals are unable to graze it, and it is going to be dry. And nowadays, a single stem is coming green that is grazed by the animals. You will not find such type of the rangelands today, now in the western Rajasthan, which were very dominant and for the cows and lamb. One thing I want to just share it here, that the major challenges for the animal is in the rangelands or the grasslands of the western Rajasthan is feed and fodder for the livestock. Productivity has gone down up to a very greater extent. And if the productivity of the rangelands has been decreased, then I think it is directly affecting the animal health and population growth. This is only due to the limited precipitations, which is restricting the growth of the grasses and shrubs. I am just talking due to the climatic change. And heavily grazed rangeland and pasture have progressive reduction in productivity because number of animals are more and production are, you can say, the productivity of the rangeland and grasses. But I think the perennial grasses have been disappeared. Just like Lesurus indicus and Sanchrus ciliaris, who are very dominating in those areas, these grasses has been disappeared, and due to less rainfall and what you can see the precipitation, the growth of these grasses has not been gone very, very vigorously, and can regeneration capacity of these potential native range species has been gone down. In the third is healthy tradition of preserving the village grazing lands called gochars and green woodlands called orans. These two areas, gochars and orans, are now safe because it has a very high level of people participation, and these lands have been allotted to the societies and the village people, panchayats. They are maintaining this, and they are even up to some level it is safe. But now
these areas are also under the encroachment. First thing. Second thing, the productivity is very, very down, and nobody, no any society is doing something for the regeneration of the grasses or the trees or fodder trees, whatever grazing species are there. Nobody is taking care of, not even the government, nor the society of the villages or people of the villages. They are only just allowing their animals to graze there for walking only, because for grazing there is no stubbles for that. So they are going to walk there and again damaging the gochas and green woodlands called orans. Highly nutritive fodder grasses, which were popular and which were very much dominating in those areas like Lesurus indicus. You can say Sevan grass, which is the queen of the all desert grasses. We can say is queen of all the desert grasses and having the very high protein level, more than 12% and to 20%. And Synchronous ciliaris requiring less water, Synchronous setigerus and Simbocon jorancusa. These grasses are well adapted and naturally they were growing in these rangelands. But due to heavy grazing and human interventions and very less precipitations, these grasses are going to disappear, which is, I think, is a very challenging and very serious thing for this maintaining these rangelands of this region. Why these grasses are going to disappear? Kadri have studies for a long time, about 30 to 35 years, on the succession of these grasses in the rangelands, because rangelands and grasslands are undisturbed soil areas or land areas where we can study the succession of the grasses. And in case of succession, when one grass is going to be disappear or one grass is not sufficient to grow, the another grass is going to be dominated in these areas. And in the ancient era, due to succession of these grasses only, the pastures and rangelands were maintained naturally. In Indian arid zone, especially in western Rajasthan, the most dominating grass cover is the Dichanthium, Synchronous, and Lesurus. These are three grasses which are very, very dominating, and they are depending, or they are growing, and they are appearing in these rangelands on the basis of rainfall of that particular year. If the 2 years it is disappear, you will get only Lesurus indicus, and if more than 3 years, if very poor rainfall is there, you will find Dichanthium only, the annual grass. It is just creeping to hybrid type of the grass on this. So on this basis, we can go only Dichanthium, Synchronous, and Lesurus indicus grasses. This is the grass cover of our rangeland and grassland in the west of Rajasthan. I have to discuss only two things. What are the grasslands and what are the types of ecosystem in the western Rajasthan? The types of ecosystem in western Rajasthan only is, it is sand dunes and sandy plains ecosystem is there. And well-drained sandy alluvial soils are also found in another part of Jaisalmer and Badmer areas. Sandy clay loam to clay loam soils are also found in these rangelands. Hilly and predominant regions in Jaisalmer and some hilly tract of the Jodhpur area, you will find the hilly tracts, stony areas, and there are also a different type of grass cover in those areas. But they are green and they are sufficient to yield better for and available to the animals, grazing animals of that areas. Low-lying heavy saline soils. These are the not very, very much available in the west of Rajasthan, but onset of these canal irrigation and some low-lying areas, in case of the Badmer area, Sanchor and all these areas, you will find, but they are not available in the, you can say in rangelands of the western Rajasthan. Here in the lower area, you can see it, the good growth of the Lesurus indicus, naturally grown Lesurus indicus, along with some other species. You will find browsing species, Numularia, Acacia. These are the just companion crops of the rangeland of this western Rajasthan, and they help to each other.
for their growth. Types of grassland all over India, you will see 16 grassland of Nilgiris, 7 grasslands of Bikaner, Jodhpur and Jaisalmer. This is only the dominant grassland, and you can say these grasses are dominant in rangeland also. Semi-arid grassland of Deccan and all other the Bunny grassland of the Gujarat, you can see there is no grass actually, but we can say is the grassland because it is heavily grazed and in that particular area. And in Himalaya region, you will find the grassland actually. There are no rangeland type of grasslands. Third thing, we have to study the carrying capacity of the grassland and rangelands. And in case of carrying capacity, it is very important for any rangeland. If you are going to take the management activities, you are going to regenerate the grasses and stuff of that particular rangeland, you have to just first study what is the carrying capacity of this. In the beginning, I have just told one adult cattle unit is sufficient for these rangelands. Capacity is very poor. So carrying capacity is the maximum number of animals usually expressed as a standardized livestock unit, which weight is 250 kg, that an area, and that land can support on the sustainable basis for the animals to produce, to lead their life on that particular grassland and rangeland for the whole year. And this is the formula everybody can calculate. Why I have just given here? Because if you are going to, I have given a task to how to manage the rangelands. So you have to calculate what will be the carrying capacity at present and how you can increase this carrying capacity up to a maximum level in that particular ecosystem. Second is the livestock required daily dry matter intake, 2.5% of their daily body weight. 2.5% of their body weight is the daily intake requirement in terms of dry matter. So you can think how much dry matter from that rangeland we have to take it. We have to just produce it. In Rajasthan, grazing pastures, adult cattle units, 7.68 ACU per hectare. It is in better rangelands or grassland which are well managed by the suitable grasses of this particular region. While existing carrying capacity is only 0.68 adult cattle unit per hectare, you can think of how degradation has been occurred in these rangelands. Only 0.68 adult cattle unit. Mean one cattle is not sufficient to lead his life for whole year on that cattle per hectare, 1 hectare area. So we have think the severity of the degradation of these land, and keeping in these things, we have to just go for the management of these land. In third digit, relative grazing capacity, which is estimated for this sandy, because we have different type of soils in these areas: sandy loam, clayey, stony, and different types of land we have. So what we have to think in sandy soils, 4.5 sheep per hectare. It is estimated. It is the relative grazing capacity of this existing rangelands of this area. In Sankara ciliaris, 2.5 for the Sankara ciliaris. If the pasture having this Sankara Dhaman, if Dhaman grass is there, 4.5 sheep per hectare we can maintain. 2.5 sheep per hectare Setigerus, it is the sister grass of this ciliaris, and 4.1 sheep per hectare Penicum antidotal, whereas 6.9 sheep per hectare for Lesurus indicus. I have given this thing here because if you are going to take a management issue, what type of grass you will try to just plant in your rangeland or grasslands. So this is I think Lesurus indicus is the better option. It has perennial in nature and it leads up to 10 and more than 10 years if planted once. So we can select these species as per our choice. What are the main indicators of degradation of the rangelands? The main indicators are elimination of preferred species, shift in species composition. यदि आपने लेसुरस इंडिका और सैंक्रा सिलेरिस का लगाया है और वहां पर एंटीडोटल आ गई,
या दूसरी जो है डाइकेंथियम आ गई, means your range land is going to be deteriorated. It is in the steps of the degradation. Reduction in plant cover and biomass production. It is just a visual issue. We can see it. Biodiversity. What type of biodiversity was at that time in the beginning? Because if biodiversity is there, they can just make insurance against the complete failure of fodder production. It is insurance. If one thing is fails due to the drought, the another species will produce something for the cattle. So if reduction, if biodiversity is going to be changed drastically, you have to think that our rangeland is going to be degraded. Reduction is fodder production. Increase in soil erosion. If surface vegetation has been just washed away, then wind erosion will take place. If erosion is there, some hammocks are going to be take place. Some dunes are going to, small dunes are going to be formulate in their area, in the rangeland area. Means degradation process has taken a speed up. There is a speed up of degradation process. Runoff of rainwater means compaction is more and there is no retention or water holding capacity has been just compressed due to compaction, and little or no infiltration, which is increase the runoff of the rainwater. Means it is not going to be inside infiltrated, so that the perennial component of that particular rangeland is going to be drier in coming future. How we can go for rehabilitation? It is a very it is a matter of first rehabilitation of degraded land improves the health of rangelands. Offers a potential opportunity to sequester carbon. Means it has a additive effect to the environment. Modify land use practices can influence rate of change in soil organic matter. It is an indirect approach to increase the life of our rangelands. If organic matter is going to be increased, if health of soil is going to increase, we are going to increase the production from your rangelands. And good soil management practices, which is generally in the Oran and Gochar, what rangelands are available in the Western Rajasthan, they don't allow actually. You cannot cultivate, you cannot plant, you cannot do any activity, you cannot cut a invasive species of that particular area, then it is a problem. But now the people have been convinced that it is not a gochar, it is a walking area of the animal, because not a single blade of grass is there. If so degradation is where we have to develop the grasses, we have to develop the fodder trees. And now the gochars and Oran, what rangelands has been here, they have just agreed that we have to go for soil activities and we have to go for planting the grasses and the fodder trees in these areas. This is the arrangement. I don't like to go for it is ecological system and managing the environment, plant and animals, and for a very favorable habitat for production of animals. Dr. Srivastava and somebody has just told it. We are not producing, Dr. Roy has told it, we are not producing the fodder from the rangeland and grassland. We are producing the food for human. Just like a milk, it is changing the milk. What type of vegetation you are having in your rangelands, the quality of milk you will produce. That type of quality you will produce. So it is very important what type of things we have to put in the in our rangelands. This is the system of the pasture, degraded grassland and good grassland. We have to do how much woody perennials, how much annuals we have to allow in our grassland. This is a very biodiversity and economic value aspect has been taken on this. This is only the best system for managing the land of this area. We have to think of 4 things. When we are going to manage the rangeland, the 4 principles: correct kind of animals. You have to choose out what type of animals. If you are going to allow mixed grazing, you have to be very careful regarding the natural resources,
what are the available. Because if grass is taken by the animal, cattle, they have grazed, then if you allow the sheep in those areas, they will just uproot all the grasses. And very lower portion of that particular rangeland has been grazed, grasses has been grazed. Means degradation will start very fast. So you have to be very correct kind of animal in your preference, correct number of animals, because number is only a problem. Somewhere it is less and somewhere it is high. In India, in Western Rajasthan, the number is always high. And much more number of animals which is grazing on these land, that is out of carrying capacity of these grassland area. So we have to correct the animals, and for these we have to do something different type of activities, because we cannot just stop the animals. We can just maintain a scientific way how we can save our rangelands and grasslands. Correct number of grazing, how much time you will allow to graze, you will allow animal in those areas. Proper distribution of livestock, water facility, fencing, short leak placement, constructing tracks. These are the measures you can divert your animals to a different portions to reduce the intensity at one place for having grazing. And second is the grazing system. We have to think in 1 or 2 minutes. These are the different type of grazing system to maintain our rangelands or grasslands for maintaining the production of the grasses in those areas. And some fertilization, range burning, other activities. If you want to make alive your rangeland, you have to do all these activities. The tradition we have to change to maintain them. Otherwise, they will be denuded and degraded in future also. This is the management problem, what we found in the regeneration of the rangelands. First is the productivity management, and it is influenced by the past points what we have, number of animals, number of grazing times allowed, and what are type of the species you are having, and what is the natural resource. If 20 millimeter rainfall is only there, only grass is just greening on the surface, and if you allow the cattle and sheep, it will damage again. Then we have to maintain the timing for that. Ultimately, the productivity management is the foremost activity which we have to manage for that. Range management factors. We have to think in mind, this is only the technical issue. That's why we are unable to maintain, because it is managed by the people of the villagers and they are not technically sound. That's why after the much more efforts also, they are not going to maintain a good productivity of this rangeland. Just biological, physical, social, whatever the activities are there, they should be combined together in a scientific manner. And regeneration of grass species. I was working before 20 years back in the rangelands of the Western Rajasthan. The people were saying, "This, what are you saying, sir? सेवन और धामन घास कोई बोई जाती है क्या? लगाई नहीं जाती, बोया तो बाजरा जाता है." मतलब they were not knowing even कि if we are going to sow the seeds of these Cankerous celeris or Lesulis indicus in those pastures or rangelands or orans, they will germinate it. It was the position of that particular area. So we have to do the regeneration grass species, how we have to make the regeneration, because at that time seed viability is a very problem in case of savan grass. Collection of savan grass seed is a very problem. It has a very poor seed generation, and whatever the spike is, it is going to mature, it is fell down due to the heavy winds, and we are getting nothing. So viability of grass seed, first thing we have to take in mind, pattern of seed dispersal. If it is there, it's okay. If not, we have to just go for plowing in those areas, so that whatever the seed has been fallen by these species, they have to go inside the soil and can germinate. Seed bank dynamics is very, very important. I have seen for more continuously 5 years. If one seed germinated this year, next year you will find the next
dominating population in the lands. Even perennials are dominating year by year. Same year, you will not find the same dominating population in the rangelands. This is only the seed bank of this soil. This soil is very high seed bank. It is in it, and every year it is just going to use on the basis of the rainfall. So regeneration of grass species we have to take care. Perennial grasses we have to go, because you have not every time to go for sowing, and Lesser indicas and Synchronous ciliaris, Dichanthium, we can go for sowing of these grasses only. Precipitation, it includes the development and production of the grasses in these areas. If precipitation is good, two things we have to take in mind. Don't allow to flow of the water from the rangelands to outside. It will help you for survival of the grass annual as well as the perennial vegetation of that particular area. So these points I have to take, and these problems are existing for management of aspects of these grasses. First, Dr. Roy had told about the grasses and their varieties. We can go for this. First is the Synchronous ciliaris, Synchronous setigerus, Lesser indica, Dichanthium undulatum. Kazri has developed so many varieties, and we can go for planting or sowing of these. Edaphic characters, on the basis of edaphic characters, you have to choose the grasses. If less than 200 millimeter rainfall, you have to go for Lesser indicus only in the sandy soils. If we are having the rainfall of 300 millimeter, we can go for Synchronous species, Synchronous setigerus, Synchronous ciliaris species we can take in the well-drained soils. In case of 400 millimeter rainfall and above, we can go for Dichanthium undulatum. So on the basis of rainfall pattern of particular region, we can choose the species for sowing in rangeland for their rehabilitation. Reseeding process increase the forage yield 30 to 122% in poor class soil also. Means reseeding is very important. Self-seeding is another matter. When the grasses are going to mature, the seeds are filled down and then they are germinating. It is very poor in the nature. But if you are reseeding by the help of this soil manipulation, we can go for increase 122% of the fodder production. And in case of fair class soils, you can go for 29 to 107% forage yield increase. Second thing we have observed also, pre-monsoon sowing. If we are going to sow the grasses in dry pre-monsoon, 36% higher forage production yield over the monsoon sowing. Because if pre-monsoon sowing you have done in dry, as and when the moisture is coming, rainfall is coming, immediately it is going to be germinated. But if you are going to say after the monsoon, so many annual species are going to germinate and they are going to dominate because they have already been in the soil seed bank. So pre-monsoon sowing has been found better if it is possible. Fertilizer application, if 20 to 25 kg nitrogen, if you can add per hectare in these rangeland and grassland, it will increase up to 70% of the production of these grassland. Nobody use it, but we should use. When the grasses are poor in nature, when we have very less production, we can use for this. And this is only the activity for rehabilitation and management of the rangelands. In the rangelands only, not for the, I'm not talking for the grasslands, but in the rangelands, only system is predominating, that is the alternate system, silvipasture system. In the rangelands, if we have not having the fodder trees, perennial fodder trees, then we cannot say it is a complete rangeland, because it gives shelter as well as fodder.
by their leaves. So what traditional practice in the arid zone is this? Growing trees are Prosperous cereraria, जिसको हम खजड़ी कहते हैं, Tecumella undulata, Acacia nilotica, and Jujubus numularia. Jujubus numularia is a browsing tree, but they can harvest and put the leaves for feeding the cattle and sheep and goats. And along with this, a very good combination in these rangelands are Sankara celeris, Setigeras, Dichanthium, and Penicum antidotal and Lesser sandicas. These are the grasses which have been found very, very high compatible, has no side effect. They can grow simultaneously to each other and they have no any antagonic effect on these yields and they survive together. And these are only the beauty of the rangeland of this area is so much poor rainfall, high temperature. We are maintaining and getting the good fodder from these areas if it is not overgrazed. So we have to, when rehabilitation is there, we have to go for silvipasture system, growing the trees and grasses together. And again, I am to just tell you, annual rainfall 250 millimeter and below, we have to go for Lesser because giving 4 quintal per hectare yield on the sandy soils in very, very limited rainfall situation also. If it is 300, then both other grasses we can go for that. Silvipasture system, why we are converting in this? Dadri as an institute and from this center also, we are just advocating that in orans or in the grassland, what you can say, orans and bochers, you have to plant only fodder trees, just like Prosperous cereraria, Albigia alivia, Tecumella undulata, Acacia senegal. These are the plants which are well survived and no need of irrigation. And along with this, we are getting the good forage production of the grasses in these. That's why the silvipasture system is very important. When animals are grazing, they can take the rest, they can take the shelter also, and they can give the leaves for the fodder to the animals. This is the management of the grazing. You have, if you can manage, because in the gochers, orans, and rangelands, it is very difficult to maintain the grazing activity, grazing management. But we have done, and in the international level also, so many researches has been done that if we are going the continuous deferred grazing or continuous rotational grazing or continuous deferred grazing both, and last is the mixed grazing. But we have to maintain our area in such a way. One portion should be rest. In the night, no animal should be allowed for grazing and they should be put in a particular corner. And in case of daytime, we can just, because we have the rangeland has 25,000 hectare and 50,000 hectare, 10,000 hectare, not hectare in bighas, 10,000 bighas. So these big land can be divided in different portions, and these portions should be as per the availability of the animals. How much animals we are getting, we have to just divide it, and we have to allow for 2 days, 3 days, one portion, leave it for regeneration, especially in the rainy season when rainfall is available. So what we take in deferred grading, it is the keeping of the livestock away from the range until major grasses have produced the seed. We have to stop the grazing when the major species or grasses comes to the seeding stage, then we have to allow to the animals for grazing. That's why they can get the sufficient food, sufficient fodder up to a longer period. And rotational grazing, this is the rotational grazing, we have to divide it. And from the beginning up to a grand growth period of that particular grass, we have to allow the animals, and we have to change the animals after 2-3 days to another paddock, just like shown in that. And deferred rotational grazing means grazing at 2 to 4 month interval. We have to manage this 1 month or 2 months, we have to in one paddock, and up to a 4 month, according to availability of the fodder, you can just increase it.
and it can go for whole year round, but rainfall should be more than 500 millimeter annual rainfall should be there, or there should be every 3 days. These are so many hilly areas. Every 3 days we are getting the rains. Means everything is going to regenerate. So in those areas, we can go for deferred versus rotational grazing. Mixed grazing, which is very, very popular in the western Rajasthan. First, cows, cattle are just grazing. Along with this, sheep are also grazing. Means they are just getting the at different portions of that particular species. They are grazing as per choice of the animals. And most of the dominating Lesuras, Simbopogan, Aristida rangelands, which are dominating in below 250 millimeter rainfall. And this type of grazing is very, very popular. We had to change it if we want to maintain our rangelands in a very productive way. We have to change it, different paddocks, and allow for rotational grazing. It should be done by the people of that particular village or society or association who is managing that particular oran or gochar land in this Western Rajasthan. At last, whatever the activities, what are the thinking that we say mechanical and technical and just some social, whatever we have discussed here, we found some future thrust. How we can go for sustainable management of these rangelands for the future. First thing, what I have pointed out, you maybe differ from my views, and I think I will be very happy if you suggest something for maintaining these gochars and orans under a very high productive manner. Although it is managed, but production is very, very low. First point I have just keep in mind, productivity of fodder trees species, exotic or indigenous, need to be assessed for grass production and find out better silvopasture system. If we put good silvopasture system in these areas, we can increase the productivity, which is not going to be a very, people are planting in those areas, but not fodder trees. So many type of trees which are not used for fodder, and there are so many trees which are just destroying the grasses. Under these trees, no grass can germinate, but people are planting the trees, and this should be a serious issue in future. And urgent need to introduce suitable fodder trees in raised management areas for not only increasing fodder production, but also the quality of the production. We have to increase the quality fodder also. Need of long-term grazing studies, which is the scientific and technical rangeland for primary productivity and secondary productivity. Both things should be studied in these areas so that the importance of these rangeland should be created, and it can be more beneficial for the population of surrounding population or villages. Rehabilitation of rangelands with better technique and application of fertilizers for increasing grass position must be studied, although it has been studied in a partial way, in some very little way, because nobody is going to be used, and this practice should be used. The better techniques should be used for rehabilitation, grass seeding, and interculture operations should be there to increase the productivity. And last, it is the introduction of genetically superior strains of grasses, which is a continuous process. We are doing our best to get the good strains of the Lesuras indicus perennial grasses and Sancharacularis along with the legumes, because this is a very, very problem. In the western Rajasthan, in ranges, there are a very few natural legumes which are palatable to the cows, cattle, and sheep and goat. We have to think, we have to introduce a large number of legumes in these rangelands for increasing the level of production as well as quality production we can get in those areas. I think this is all about the future thrust, and what I think about the maintaining the rangeland and how we can make the better production and we can increase the productivity of these rangeland by the introduction of some good crop species, grass species, according to the rainfall pattern of this region. Thank you very much. If any questions and suggestions, especially, it is invited. Thank you, sir. Sir, thank you very much for accepting our invitation and giving this wonderful talk.
rangeland and pastures are very important when we talk about forage resources in arid zone. And you have covered each and every aspect in a very detail, right from the rehabilitation to the development, to the management, to the utilization of these pasture lands for the benefit of the society. And we know you have done a lot for the development of these pasture lands during your academic career, and that is why we selected you as a resource person to deliver this important talk. Sir, thank you very much for accepting our invitation and giving this wonderful. Thank you. Now, I would like to invite our next speaker, and our next speaker is Professor R.K. Nagda. He is head Department of Animal Genetics and Breeding at College of Veterinary and Animal Science, Navania, Udaipur. Friends, डॉक्टर नवानिया बहुत ही डायनेमिक एकेडमिशियन है और आपने पूर्व में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं विश्वविद्यालय में। आप 7 बरस आप उस कॉलेज के डीन रहे हैं और जो हमारा लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन है वल्लभ नगर में, आप वहां के हेड भी रहे हैं और आपने केवी के चित्तौड़गढ़ में भी अपनी सर्विसेज दी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो मेन काम है वो हमारे स्मॉल ल्यूमिनेंट्स के ऊपर है, जो एरिड जोन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल है, भेड़ और बकरी। उसी पे आपने बहुत डिटेल में काम किया है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर नागदा है बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर वर्कर हैं, और इसीलिए उनकी सिंसियरिटी को, डेडिकेशन को और उनके कंडक्ट को देखते हुए आपको विश्वविद्यालय ने 6 बार सम्मानित किया है। डॉक्टर नागदा रिसर्च, एक्सटेंशन और टीचिंग तीनों से जुड़े हुए हैं और आपने करीब 75 से भी ज्यादा आपके पब्लिकेशंस हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नागदा साहब से कि वो अपना प्रेजेंटेशन के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर नागदा साहब, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सर। माय वॉइस इज ऑडिबल सर? यस सर, प्लीज गो अहेड। एंड स्क्रीन इज शेयर सर? यस यस यस, प्लीज। ओके, नाउ यू कैन ब्रिंग इट ऑन इस प्रेजेंटेशन मोड में। आप थोड़ा सा उसको ले आइए। यस सर, ये स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ, स्क्रीन हो रही है सर। उसको नीचे कप शेप का होगा, उससे वो प्रेजेंटेशन बोर्ड में आ जाएगा। ओके ओके सर। नाउ रेस्पेक्टेड डॉक्टर आरपी सिंह, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ SKRAU, डॉक्टर श्रीवास्तव सर, डॉक्टर राय सर, डॉक्टर यादव सर, डॉक्टर सावल सर and Dr. S. Godara sir, respected all the faculty members of the SKRAU, students and farmers who are attending this webinar. Now, as Dr. Sharma introduced me, but my introduction is I am a first student of this university. In 1987, I entered when the SKRAU is established. So, आज गुरु पूर्णिमा पे मैं सारे टीचर्स को प्रणाम करता हूँ। और टीचर्स के अगर आप देखें तो एक किसी भी रिसर्चर का, किसी भी जो टेक्निकल प्रोफेशनल है, उसका सबसे बड़ा टीचर होता है फार्मर, क्योंकि फार्मर ही एक रास्ता दिखाता है। उसकी प्रॉब्लम्स हम लेके आते हैं, उसके हिसाब से हम रिसर्च के थ्रू उसका समाधान करते हैं। तो आज जो भी वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं फार्मर्स, मैं उन सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमन करता हूं, उनके आशीर्वाद लेता हूं। नाउ माय टॉपिक इज ऑफ द प्रेजेंटेशन इज ग्रीन फॉडर कंजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजीज। मोस्टली आई गिव माय मोर एम्फेसिस ऑन दिस साइलेज मेकिंग। इट इज ए वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, हाउ टू बी प्रिपेयर साइलेज एंड व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर साइलेज मेकिंग। Now, if all are comfortable, then I give my presentation in Hindi or English mix. Dr. Sharma sir.
ओके डॉक्टर साहब, आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि किसान भी हैं। यस सर। नाउ जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव सर ने बताया था कि ग्रीन फोडर की शॉर्टेज है, लगभग 36% ग्रीन फोडर का इंडिया में जो है शॉर्टेज आती है। ये 36% वेरी करती है, सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अगर अपन रेन फेड कंडीशंस देखें, राजस्थान का जो मोस्टली पार्ट जो है रेन फेड है, तो रेनी सीजन्स में ग्रीन फोडर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू रबी सीजन्स। जो रबी सीजन्स में है उसमें ग्रीन फोडर बहुत अवेलेबल होता है, सिर्फ जो कल्टीवेबल फोडर हैं जैसे लूसन है, बरसीम है, वो अवेलेबल होती है रबी सीजन्स में। और रेन फेड में राजस्थान जैसी सिचुएशन में अगर अपन देखेंगे, बाजरा है, मक्का है, सोरगम है, वो एबंडेंट क्वांटिटीज में प्रोडक्शन होता है। तो उस फोडर को जो कि सरप्लस क्वांटिटी में है, उसको प्रिजर्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है साइलेज मेकिंग। नाउ साइलेज मेकिंग में साइलेज मेकिंग से जो अपने पास में जब शॉर्टेज पीरियड आती है, जब क्रॉप की सोइंग सीजन होती है, लीन पीरियड होता है, उस समय अपन एनिमल्स को एज ए ग्रीन फोडर अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, तो साइलेज के फॉर्म में एनिमल्स को उपलब्ध करा देते हैं हरा चारा। उससे एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है, इवन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन मेंटेन रहता है, इवन प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। जो फोरेज हैं, जो ग्रीन फोडर क्रॉप्स है, उनको हम 3 फॉर्म में कंजर्व कर सकते हैं, हे के रूप में, साइलेज के रूप में, और तीसरा जो है हेलेज के रूप में। हेलेज एक मिक्स फॉर्म होती है जो कि साइलेज और हे का इंटरमीडिएट पार्ट होता है, जिसमें जो मॉइस्चर परसेंट जो होता है वो लगभग 40 to 50% होता है। यद्यपि आज की तारीख में बहुत से प्रूवन मेथड हैं साइलेज बनाने का, पर बेस्ट मेथड वो होता है कि जिसमें ग्रीन फोडर की न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सके। हम देखेंगे कि जब फसल की कटिंग होती है, उस समय से कटिंग के बाद में न्यूट्रिएंट लॉसेस शुरू हो जाते हैं, तो उन लॉसेस को जितना मिनिमाइज करते हैं वो ही एक बेस्ट मेथड कहलाता है, चाहे वो साइलेज फॉर्म हो, चाहे वो हे फॉर्म में हो। नाउ जब अपन कंजर्वेशन करते हैं ग्रीन फोडर का, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत जरूरी है कि एक तो वो क्रॉप सूटेबल है या नहीं है साइलेज मेकिंग के लिए, एक स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, जो भी अगर आप पर टॉवर सिलो बना रहे हैं प्लास्टिक बैग्स में, ये सारी चीजों में करेंगे तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, और वेदर कंडीशंस कैसी हैं। अगर ज्यादा रेनी सीजन है, क्लाउडी डेज है, रेन में अगर इसमें एटमॉस्फेयर में ज्यादा नमी है, तो उस समय साइलेज बनाना सही नहीं रहेगा, सही क्वालिटी का साइलेज नहीं बनता है। तो द सेलेक्टेड कंजर्वेशन टेक्निक शुड, वो टेक्निक सबसे बेस्ट है जिसमें कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन हो। मींस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द ग्रीन फॉडर क्रॉप्स, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट शुड बी कंजर्व एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज आल्सो मिनिमाइज। वो ही एक टेक्निक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। नाउ कम्स टू व्हाट इज नीड टू कंजर्व द फॉडर क्रॉप्स। हम फॉडर क्रॉप्स का कंजर्वेशन क्यों किया जाता है? जैसे एक हमने पहले डिस्कस किया था कि इसका जो फॉडर की जो शॉर्टेज आती है डिफरेंट सीजनल वेरिएशन के कारण, उसको मीट आउट करने के लिए हम फॉडर का स्टोर ये कंजर्व करते हैं। तो साइलेज रिक्वायर लेस स्पेस फॉर द स्टोरेज। अगर अपन कंपेयर करें कि चाहे ग्रीन फॉडर एनिमल्स को खिला रहे हैं या हे के रूप में अगर अपन स्टोर कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर साइलेज बनाते हैं तो स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम लगेगी, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। दूसरा है कि साइलेज के कारण जो डेली रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, जैसे डेली आप अगर ग्रीन फॉडर की कटिंग कर रहे हैं, खेत से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चेपिंग करने में जो डे टू डे लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि साइलेज में ये सारे ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं, एक साथ उसका कटिंग होता है, एक साथ उसको स्टोर करा है, उसके बाद में आपको सिर्फ रेडी टू
ना फीड टू एनिमल्स रहता है, तो इसलिए क्या है कि डेली रूटीन की लेबर भी आपको कम हो जाएगी इसमें। दूसरा है कि फार्मर्स जो हैं साइलेज बनाने से अपनी लैंड का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। मींस अगर वो पूरी क्रॉप लेता है तो एक साल में 2 या 3 क्रॉप ही ले पाता है, और साइलेज के लिए अगर क्रॉप लेता है तो साल में वो 4 से 5 क्रॉप ले सकता है। मोस्टली जो साइलेज बनाने के लिए जो क्रॉप्स ली जाती है उसकी जो मैच्योरिटी है या जो साइलेज बनाने की जो स्टेज है वो 55 से 60 दिन में आ जाती है, तो इसलिए 2 महीने में वो क्रॉप तैयार हो जाती है। तो फार्मर्स का जो लैंड का यूटिलाइजेशन है वो साइलेज मेकिंग के कारण ज्यादा से ज्यादा होता है। तीसरा है कि साइलेज जो बनता है वो बिल्कुल क्लोज कंडीशन में होता है, एयर टाइट कंडीशन में होता है, तो स्टोर में, गोडाउन में जो है फायर का डेंजर भी नहीं रहता है, आग लगने की घटनाएं भी इसमें होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट इसका जो मेन एडवांटेज है कि ये जो स्टोर होता है, साइलेज जो प्रिजर्व होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड जो है इजीली डाइजेस्टिबल होता है, एनिमल्स में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, फोडर की जो है डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने बताया कि 1% अगर फोडर की डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है तो 6 to 8% तक प्रोडक्टिविटी एनिमल्स की बढ़ जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। साइलेज जो है टेस्टी होता है, थोड़ा खट्टा होता है, उसका अच्छी फ्लेवर आती है, इसलिए क्या है कि एनिमल्स की एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती है, फीड इनटेक कैपेसिटी जो है एनिमल्स की बढ़ती है। नाउ दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्केर्सिटी होती है, जैसे अपन रेन फेड एरिया है तो वहां पर क्या है कि ग्रीन फोडर की शॉर्टेज आ जाती है आफ्टर जनवरी, मतलब हार्वेस्ट होते ही रेन फेड एरिया में जो मानसून सीजन में क्रॉप हो जाती है, और समर सीजन में आप देखेंगे, विंटर सीजन में एनिमल्स को जो है ग्रीन फोडर अवेलेबल नहीं होता है। इसी तरह से जो वाटर लॉक्ड एरिया है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल एरिया है, वहां पर जो है रेनी सीजन में अपन ग्रीन फोडर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों एरिया में जो प्रिजर्व फोडर है साइलेज के रूप में जो अपन प्रिजर्व करते हैं, उसकी बड़ी उन एरिया में बड़ी इंपॉर्टेंस है एनिमल्स का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। एक और इसका एडवांटेज है कि जो साइलेज अपन बनाते हैं तो उसमें क्या है कि एडिटिव मिक्स किए जाते हैं, तो उससे क्या है कि ग्रीन फोडर की जो है पैलेटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, प्लस वो जो है कुछ एडिटिव के कारण सप्लीमेंट होकर न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ग्रीन फोडर की साइलेज के रूप में होता है, उसकी बढ़ जाती है। लास्ट और फॉरमोस्ट इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योर। आजकल हम देखते हैं कि जो मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं, कलकत्ता हैं, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, इवन जयपुर के आसपास भी अगर आप देखेंगे बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं, पर उनके पास में लैंड की लिमिटेशन है, वो ग्रीन फोडर ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसे एरिया को वो क्या करते हैं कि ग्रीन फोडर को साइलेज के रूप में परचेज करते हैं। तो जो अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहता है साइलेज बना के उनको सेल कर सकता है। इसके अलावा जो साइलेज में काम आने वाले कुछ इनपुट्स हैं, जैसे इनोकुलेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया के कल्चर्स हैं, वो भी सप्लाई करके या प्लास्टिक बैग सप्लाई करके अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत चांसेस होते हैं साइलेज मेकिंग से। नाउ व्हाट इज दिस साइलेज? नाउ वी कम्स टू साइलेज जो है वो एक एंड प्रोडक्ट है। किसी भी ग्रीन फोडर का एंड प्रोडक्ट होता है जो कि कंजर्व होता है, जिसमें मॉइस्चर का जो परसेंटेज होता है वो 60 to 65% होता है, और उसको कंजर्व और स्टोर किया जाता है एनएरोबिक कंडीशंस में, मींस जी ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में उसको स्टोर किया जाता है, जिसके कारण की फर्मेंटेशन होता है, और उसकी वजह से उसमें एसिडिक जो होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स के कारण उसकी एसिडिटी में इंप्रूवमेंट होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो बैक्टीरिया होता है स्टोरेज में, वो कि उसको स्पॉइलेज नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पॉइल करने वाले को वो ऑक्सीजन लिमिट करने से वो इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरह से जो साइलेज जो बनाया जाता है, इस प्रिंसिपल से उसको ग्रीन फोडर कंजर्वेशन इन फॉर्म ऑफ द साइलेज कहा जाता है। नाउ 3 जो है बड़े क्रूशियल फैक्टर्स हैं
साइलेज बनाने में, या उसको प्रिंसिपल्स भी अपन कह सकते हैं, स्टेप्स कह सकते हैं, जो इन्वॉल्व होती है। मेन प्रिंसिपल होता है कि आपको जल्दी से जल्दी उसमें एयर का रिमूवल करना पड़ता है। एयर के कारण जो साइलेज है वो स्पॉइलेज हो जाता है, उसमें जो सेकेंडरी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके कारण क्या है, आपको रैपिड रिमूवल करना है जब साइलेज बनाते तब। दूसरा है कि उसका पीएच जितना जल्दी हो उतना जल्दी डाउन करना है। लैक्टिक एसिड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, जितना ज्यादा पीएच लो होगा उतनी अच्छी क्वालिटी में साइलेज बनेगा। तीसरा है कि एक बार जब साइलो को खोला है, जो फाइनल साइलेज बन गया है, तो उसको जल्दी से जल्दी एनिमल्स को खिलाना। इसीलिए अपन जब अपन सिलो को देखेंगे उसमें ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि किस कैपेसिटी का बनाए। इसने कैपेसिटी का सिलो बनाया जाए या बंकर्स बनाया जाए कि जो विद इन ए वीक उसको अपन यूटिलाइज कर सकें। अदरवाइज क्या है कि जो अपर लेयर ज्यादा एक्सपोज होगी एयर में, उतना ज्यादा साइलेज स्पॉइलेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन 3 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए साइलेज मेकिंग करनी चाहिए। Now, okay. Sir, my voice is audible, sir. Hello. Yes, हाँ sir. डॉक्टर साहब, आप आ रही है, आपकी आवाज ठीक से आ रही है, आप प्लीज। Yes, okay, thank you. Now, there are 2 types of the fermentation. जब अपन साइलेज बनाते हैं तो उस समय 2 तरह का फर्मेंटेशन होता है। एक होता है प्राइमरी फर्मेंटेशन, जो कि डिजायरेबल होता है, वो बड़ा यूजफुल होता है। दूसरा होता है कि सेकेंडरी फर्मेंटेशन, जो कि अनडिजायरेबल होता है। कुछ ऐसे एसिड्स बन जाते हैं कि जो स्पॉइल कर देते हैं साइलेज को, उसको हम सेकेंडरी या अनडिजायरेबल फर्मेंटेशन बोला जाता है। प्राइमरी फर्मेंटेशन में मेनली जो है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और कभी कभी लैक्टिक एसिड के साथ में जो है एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड और एथनॉल का भी प्रोडक्शन होता है, जो कि डिजायरेबल है, वो कि कंजर्व करने में ग्रीन फोडर को बहुत हेल्पफुल होते हैं और पीएच को डाउन करने में। सेकेंडरी फर्मेंटेशन मेनली जो है क्लोस्ट्रीडिया और एंटेरोबैक्टीरिया के कारण होते हैं, जिसके कारण कि ब्यूटारिक एसिड जो है उसका कंसंट्रेशन साइलेज में बढ़ जाता है, और उसके कारण स्पॉइलेज और बड़ी बीटर स्मेल्स होता है, टेस्ट भी बीटर हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि कोशिश ये अपनी होना चाहिए कि प्राइमरी फर्मेंटेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। नाउ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो प्रिफर्ड होता है ओवर द अदर एसिड प्रोडक्शन ड्यू टू फास्टर एंड लोअर पीएच ड्रॉप डाउन। जो लैक्टिक एसिड है वो दूसरे एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है, उसके कारण क्या है कि साइलेज का जो है फर्मेंटेशन के टाइम में जल्दी से उसका पीएच डाउन हो जाता है। अच्छा फर्मेंटेशन वो माना जाता है कि जिसमें ड्राई मैटर का लॉसेस जो है लेस देन 10% ही होता है, वो सबसे बेस्ट फर्मेंटेशन माना जाता है। नाउ जब अपन साइलेज बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को 1 by 1 डिस्कस करता हूं मैं। पहला स्टेप्स आता है कि किन फोडर क्रॉप्स का साइलेज अच्छा बनता है और किन क्रॉप का जो है साइलेज अच्छा नहीं बनता है। तो उन क्रॉप्स का जो साइलेज अच्छा बनता है कि जिसमें वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, मींस जिसमें अगर शर्करा का परसेंटेज ज्यादा होता है, उन में क्या है कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ज्यादा होता है, पीएच एकदम डाउन होता है, और वो क्रॉप ज्यादा सूटेबल होती है कंपेयर टू लेग्यूमिनस क्रॉप। ये जो क्रॉप्स हैं, जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो जो मेज क्रॉप है, कॉर्न जिसको बोलते हैं, मेज क्रॉप है, ये अच्छी सूटेबल है। बाजरा सूटेबल है, सोरगम सूटेबल है। पर लेग्यूमिनस क्रॉप्स का जो है वो साइलेज अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। दूसरा है कि क्रॉप में जब अपन हार्वेस्ट करते हैं साइलेज बनाने के लिए, तो उसमें 30 से 35%
ड्राई मैटर होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी क्रॉप्स का अपन ऐसे टाइम का अपन सिलेक्शन करें कि जिसमें उसमें खड़ी फसल में 30 से 35% ड्राई मैटर हो। नाउ सोल्यूबल जो वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है उसके कारण फर्मेंटेशन इंक्रीज होता है, और फर्मेंटेशन इंक्रीज होने के कारण उसकी स्टोर कैपेसिटी बढ़ जाती है और साइलेज स्पॉइल भी कम होता है। इसी तरह से जो कुछ ग्रासेस हैं, जैसे राया ग्रास है, स्विस ग्रास है, बर्मुडा ग्रास है, लेग्यूमिनस है, उनका भी अपन साइलेज बना सकते हैं, पर उसमें क्या है कि थोड़ी विल्टिंग ज्यादा करवानी पड़ेगी, जिसके कारण क्या है कि वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स का कंसंट्रेशन कुछ इंक्रीज हो जाए। नाउ अब बात आती है कि हार्वेस्ट स्टेज, किस स्टेज पे क्रॉप का हार्वेस्ट करें जिसकी वजह से कि साइलेज जो है अच्छी क्वालिटी का बने। तो उसका अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो उसका यील्ड ऑप्टिमम हो, मींस उसमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड अपन ले सकते हैं, उस समय क्रॉप की न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा हो, उस क्रॉप की उस स्टेज पे फर्मेंटेबिलिटी ज्यादा हो, तो वो ही, और आपके पास में किस तरह का सिलो अवेलेबल है उस तरह से आपको हार्वेस्टिंग टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो बेस्ट जो हार्वेस्टिंग टाइम है, अगर अपन अल्फा अल्फा क्रॉप्स की बात करते हैं तो जब 10% उसकी फ्लावरिंग स्टेज हो, ड्राई मैटर परसेंटेज जब क्रॉप का 15 to 30 हो, और आफ्टर विल्टिंग 30 से 35% ड्राई मैटर हो, वो स्टेज बेस्ट होती है साइलेज बनाने के लिए। और जो अगर मेज है, मेज का अगर अपने को साइलेज बनाना है तो उसमें 1/4 लाइन मतलब डप स्टेज होती है कि जब भुट्टे में दूध भरना शुरू हो जाता है इसमें सीड में, तो उस समय ये स्टेज सही होती है। ड्राई मैटर उसमें 30 से 30% हो, उसको डायरेक्टली कट करके, चेप करके, डायरेक्टली खेत से अगर अपन कट कर रहे हैं तो चेपिंग करके और उसको डायरेक्टली अपन साइलेज बना सकते हैं। इसमें आपको विल्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है अगर 30 से 35% ड्राई मैटर है उस समय अगर उसको अपन हार्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे जो फॉरेस्ट क्रॉप है जिसमें सोरगम है, सूडान ग्रास है, अदर मिलेट्स हैं, तो उसको डप स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं, उसमें बेस्ट क्वालिटी का साइलेज बनता है। और वो उस समय के अगर उस स्टेज की अगर अपन बात करते हैं तो ड्राई मैटर जो उस क्रॉप में होता है उसमें 30 से 35% होता है, और उसको डायरेक्ट चॉपिंग करके और आप सिलो में भर सकते हैं, साइलेज बना सकते हैं। नाउ मॉइस्चर कंटेंट, उस समय जैसे अपन ने इसमें देखा था कि मॉइस्चर कंटेंट्स कितना हो, तो मॉइस्चर कंटेंट्स उन क्रॉप में जब अपन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उस समय 70% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ड्राई मैटर जो है वो 30% से कम नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर 70% से ज्यादा है तो भी सेकेंडरी फर्मेंटेशन के चांसेस हैं। अगर 30% से ज्यादा ड्राई मैटर अगर आ जाता है, या अगर 40% से अगर ज्यादा ड्राई मैटर अगर होता है, तो उसमें क्या है कि उसको कंप्रेस करने में, साइलेज बनाने में दिक्कत आ सकती है, और उसमें फिर सेकेंडरी फर्मेंटेशन जो होता है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से वो अनडिजायरेबल फर्मेंटेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये कंडीशन अपने को ध्यान रखना है कि ड्राई मैटर 30 से 35% और मॉइस्चर कंटेंट जो है लेस देन 70% हो, वही स्टेज राइट स्टेज होती है साइलेज बनाने की। नाउ पार्टिकल साइज, क्योंकि जब साइलेज बनाते हैं तो प्लांट्स को चेप किया जाता है, चॉप किया जाता है, तो उसकी साइज क्या रखें कि जिसकी वजह से बेस्ट क्वालिटी का साइलेज बनता है। उसकी कट का जो थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ द कट, जिसको कि टीएलसी कहते हैं, कि कितनी उसकी कटिंग किया जाए, तो सबसे डिजायरेबल जो ऑप्टिमम कट है वो 1/2 इंच ही रखना चाहिए। 1/2 इंच से अगर ज्यादा है तो उसको कंप्रेस करने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर साइलेज बनाने में उसका जो कॉम्पेक्शन अगर सही ढंग से नहीं होता है, क्योंकि अगर कट 1 इंच या 1 इंच से ज्यादा है तो उन कट की वजह से उन चेप फोल्डर में जो है कुछ एयर जो है ट्रैप हो जाती है, उस एयर ट्रैप की वजह से उसको एयर को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस समय जब अपन चॉपिंग करें साइलेज बनाते वक्त, तो उसमें अपने को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में जो चेप कट है
फोडर की जो कटिंग की जाती है वो आधा इंच से ज्यादा नहीं हो। नाउ दिस इज द चेप फोडर, जो कि अपन सोरगम का या मेज का, कॉर्न का जो है अपन चेपिंग करें, जो कट साइज है वो आधा इंची ही रखें, जिसकी वजह से कि एयर को जो एक्सट्रूड करने में इजी होगा, कॉम्पैक्शन बहुत इजी होगा। नाउ पैकिंग डेंसिटी, कि जो अपन चेप फोडर है हमारा, जो साइलेज के लिए अपन ने तैयार किया है, उसकी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अटेनिंग ए हाई डेंसिटी इन सिल्लो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द पोरोसिटी एट विच एयर मूव्स इनटू द सिल्लो। अगर डेंसिटी कम रहती है उस कंडीशन में सेकेंडरी फर्मेंटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसको कॉम्पैक्ट किया जाए ताकि जो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है वो एक्सट्रूड हो जाए। इसके जो साइलेज डेंसिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, जो कॉम्पैक्शन है वो ये करती है कि एक तो आप जो फोडर ले रहे हैं उसमें ड्राई मैटर का कंसंट्रेशन कितना है। ड्राई मैटर का जो कंसंट्रेशन है अगर वो 40% से ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, ज्यादा वो कॉम्पैक्शन होगा नहीं। दूसरा है कि उसकी थ्योरेटिकल लेंथ कट क्या है, जो पार्टिकल है जो चेपिंग की गई है उसकी साइज अगर आधा इंच से ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी डेंसिटी को मेंटेन करना बहुत भारी होगा। तीसरा है कि आप उसको जो पैकेज कर रहे हैं उस पैकेजिंग की इंटेंसिटी कितना है, तो इन चीजों के ऊपर जो पैकिंग की जो है डेंसिटी डिपेंड करती है। और डिफरेंट तरह के जो सिल्लोज हैं उन सिल्लोज के में है जो अलग अलग तरह की डेंसिटी है। फिर भी है कि 14 पाउंड पर क्यूबिक फीट अगर अपन साइलेज को इतना कॉम्पैक्ट किया जाए जो चेप फोडर है कि उसकी जो फाइनल डेंसिटी है वो 14 पाउंड पर क्यूबिक फीट आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको जो है बेस्ट कंडीशन का साइलेज बनता है। जब अपन प्लास्टिक बैग्स में साइलेज प्रिपेयर करते हैं तो आप देखिएगा कि ये मैन्युअली जो है उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। जब मैन्युअली कॉम्पैक्ट करें तो उसमें ये कि पूरे साइलेज के पूरे बैग्स में चारों ओर से उसको अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट किया जाए और इतना कॉम्पैक्ट करें कि उसकी जो फाइनल डेंसिटी है वो 14 पाउंड पर क्यूबिक फीट आ जाए। नाउ उसको सिल्लोस को इस तरह से पैकिंग किया जाए कि उसमें बाहर की एयर किसी भी हालत में अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर बाहर की एयर अंदर एंटर कर गई है तो वहां पर जो है स्पॉइलेज होने के, सेकेंडरी फर्मेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अपन ने देखा कि जो प्लास्टिक बैग्स में अपन तैयार करते हैं तो उसमें डबल लेयर सीलिंग्स लगाते हैं। जो पॉलीथीन्स लिया जाता है वो डबल लेयर में होता है ताकि लेस चांसेस हो कि अंदर जो है एयर एंटर नहीं करे। जो इसी तरह से जब अपन साइलेज प्रिपेयर करते हैं तो कुछ एडिटिव्स उसमें मिलाए जाते हैं। उन एडिटिव्स की वजह से क्या है कि एक तो फर्मेंटेशन फास्ट हो जाता है, प्लस जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है साइलेज की बढ़ जाती है। मोस्टली जो एडिटिव्स मिलाए जाते हैं वो एडिटिव्स में अपन मोलासेस मिला सकते हैं, इसी तरह से कॉर्न फ्लोर, व्हीट फ्लोर भी मिला सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट रिच हैं उनको मिलाने से फर्मेंटेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसी तरह से कुछ इनोकुलेंट्स जो मार्केट्स में मिलते हैं उसमें जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ शुगर रिच होते हैं, इसी तरह से बैक्टीरियल कल्चर जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो अपन इनोकुलेंट्स जो है इसमें मिला सकते हैं ताकि उसकी क्वालिटी, साइलेज की क्वालिटी इंप्रूव हो। इसी तरह से जो माइक्रोब जो सेकेंडरी फर्मेंटेशन को जो ये करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उसमें अमोनिया है या कुछ 1% तक अपन उसमें यूरिया मिला सकते हैं जिससे कि सेकेंडरी फर्मेंटेशन वो इनहिबिट कर सकते हैं। नाउ अगर अपन कोई ग्राउंड कॉर्न फ्लोर या दलिया जिसको कहते हैं या व्हीट या बार्ले का मिलाते हैं तो उसकी पर टन जो है लगभग 100 पाउंड जो है उसको मिलाना पड़ता है। मोलासेस अगर मिला रहे हैं तो वो 60 से 70 पाउंड पर टन साइलेज उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसी तरह से जो इनोकुलेंट
बैक्टीरियल कल्चर एंजाइम्स जो मार्केट में अवेलेबल है, या कुछ एंटी फंगल जो है वो अपन इसमें मिला सकते हैं। कुछ एंजाइम्स कल्चर आता है जो फाइब्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से लिग्निफिकेशन जो है, लिग्निन्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म को, उससे भी इसकी क्वालिटी और फाइबर की डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अमोनिया और यूरिया का मिक्सचर भी उसमें मिलाया जाता है 1% तक, ताकि जो ग्रोथ है, मोल्ड है, उसकी ग्रोथ रुके। इसके अलावा जो नाइट्रोजन कंटेंट्स जो है साइलेज में बढ़ता है, जिससे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू साइलेज की इंप्रूव हो जाती है। इसी तरह से जब साइलेज बनाने की जब अपन प्लानिंग करें, तो उस समय कुछ चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कि पहली चीज तो आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है। क्वांटिटी डिपेंड्स करेगी कि आपके पास में नंबर ऑफ एनिमल्स कितना है, आपकी स्टॉक लाइव स्टॉक कितने हैं आपके अवेलेबल हैं, और कितने दिन तक अपने को इनको साइलेज पर रखना है। जो लीन पीरियड अपने एरिया में कितना लीन पीरियड होगा, उसके हिसाब से आपको सिल्लों की डिजाइन, सिल्लों की कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके साथ ही कि क्या आपके पास में सफिशिएंट ग्रीन फोडर अवेलेबल है, सरप्लस ग्रीन फोडर अवेलेबल है साइलेज बनाने के लिए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब अपन सिल्लों की कैपेसिटी की बात करते हैं, तो 1 क्यूबिक फीट होता है, जो 1 फुट लॉन्ग, 1 फुट वाइड और 1 फुट जो हाइट डेप्थ का होता है, उसमें लगभग 16 केजी चेप्ड ग्रीन फोडर इजीली आ जाता है। इतना साइलेज की कैपेसिटी होती है। तो इस हिसाब से अपने को सिल्लों की कैपेसिटी को डिटरमाइन करना पड़ेगा। आप क्या कितना लाइव स्टॉक अवेलेबल है, कितना आपके पास ग्रीन फोडर अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से आप चाहे बंकर में बनाएं, चाहे टावर सिलो बनाएं, चाहे बैग्स में बनाएं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ जो आजकल जो सिलो टाइप्स जो मैक्सिमम काम में लिया जाता है, प्लास्टिक बैग्स में लिया जाता है। हाँ, फिर भी पुराने जो ट्रेडिशनल सिलो जो अवेलेबल हैं, वो एक टॉवर सिलो है। पूरा स्ट्रक्चर जो है सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। आजकल ये जो डेयरी फार्मर्स हैं वो ज़्यादा इसको यूज़ नहीं, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आता है। इसी तरह से दूसरे टाइप के जो सिलोज हैं, वो बंकर सिलोज हैं। बंकर सिलोज का भी मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो अपर पार्ट है, वो ज़्यादा अपर लेयर जो है साइलेज की, वो ज़्यादा एक्सपोज होती है एयर में, जिसके कारण कि अपर लेयर में जो स्पॉइलेज होने का, साइलेज को खराब होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों जो सिलोज हैं, वो बड़े ट्रेडिशनल सिलोज हैं। आजकल इनको बहुत कम से कम डेयरी फार्मर्स यूज करते हैं। अब जो अभी जो सिलोस के रूप में जो यूज हो रहे हैं, वो प्लास्टिक बैग्स हो रहे हैं। मार्केट में ये बैग्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा क्या है कि ऑटोमेटिक पैकेजिंग, सीलिंग, चेफिंग मशीन भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, लार्ज स्केल में जो साइलेज बना रहे हैं, तो वो इन मशीन्स का यूज कर रहे हैं। फिर भी जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स हैं, जिनको कि मैन्युअली अगर बनाना है, तो उसके लिए प्लास्टिक बैग्स बेस्ट हैं। प्लास्टिक बैग्स भी 50 केजी कैपेसिटी में, 100 केजी कैपेसिटी में, 500 केजी कैपेसिटी साइलेज कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें साइलेज बनाना अभी जो है बेस्ट है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि बंकर सिलो है, वो अपर साइड से ओपन होता है, जिसके कारण कि एयर का जो है अपर साइड जो है उसमें एयर का एक्सपोज ज्यादा होता है। उसकी वजह से जो लॉसेज हैं, स्पॉइलेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आजकल बंकर सिलोज इसमें ज्यादा यूज नहीं होता है। इसी तरह से जो बैग सिलो है,
आजकल बैग सिलो बहुतायत में यूज होता है, ये बड़ा इकोनॉमिक होता है और जितनी कैपेसिटी का है अपने को जितने दिन है उतने बैग्स भर के, प्लस इसको स्टोर करने में भी बहुत इजी है, एक स्टैकिंग जमा के और आप ज्यादा से ज्यादा बैग्स एक किसी रूम में उसको स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत इजी है। तो कॉमर्शियली जो साइलेज है वो आजकल प्लास्टिक बैग्स ही उसको यूज किया जाता है। इसी तरह से जो टावर सिलोज है, टावर सिलोज कंस्ट्रक्शन इसका कॉस्टली होता है, प्लस फिलिंग में इसको बहुत दिक्कत होती है और जब यूज करते हैं साइलेज को तो उसमें भी इसको प्रॉब्लम आती है। तो टावर सिलो भी आजकल यूज में नहीं होते हैं। इसी तरह से जब अपन साइलेज की क्वालिटी की बात करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो साइलेज की क्वालिटी कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि पहला चीज ये देखा जाता है कि जो फाइनल ग्रीन फोडर का जो एंड प्रोडक्ट बना साइलेज के रूप में, उसमें मोल्ड्स की क्या कंडीशन है, फंगस बिल्कुल एब्सेंस होनी चाहिए, तो वो साइलेज बेस्ट माना जाता है कि जिसमें मोल्ड्स कम से कम नेग्लिजिबल हो, उसकी जो स्मेल है एक अच्छी स्मेल हो, टेस्ट उसका थोड़ा सा खट्टा हो, सोर टेस्ट हो। इसी तरह से जो अच्छी क्वालिटी है उसका जो कलर है वो फेट ग्रीन हो, ब्राउनिश कलर हो, वो होगा। अगर साइलेज रोटन हो गया, अगर ब्लैक कलर में है, इसका मतलब ये साइलेज सड़ा हुआ है, वो यूजेबल नहीं है इसका एनिमल्स के लिए। अगर अपन फाइनल प्रोडक्ट जो साइलेज के रूप में है उसका अपन पीएच देखें तो पीएच जो है वो 3.5 टू 4.2 तक हो पीएच, वो बेस्ट क्वालिटी का साइलेज होगा। नाउ इन समरी, silage production is a bacterial driven process in which crop moisture, theoretical length of the cut means TLC and density interpolate to generate the proper anaerobic and acidic condition necessary for producing best quality of the silage. When the proper condition occur, they inhibit the growth of spoilage microorganisms, means the secondary fermentation such from the malts and the yeast. The main objective are to obtain a silo with less than 10% losses of the dry matter. Silage are high in the nutritive value and free of the toxins. Strategies for achieving this objective under different conditions have been outlined in this presentation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much for excellent presentation, I would say. देखिए, चारे में केवल पैदा करना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जो संरक्षण है वो भी उतना ही जरूरी है जितना उसकी पैदावार है। और आपने इतना डिटेल में और इतना नाइसली इसको प्रेजेंट किया है। लॉट ऑफ एप्रिसिएशन टू यू, सर। एंड वी हैव अनदर स्पीकर फ्रॉम इंडस्ट्री, Mr. Chandrajit Yadav. He is from Silage Agro Private Limited, Rajpura, Punjab. I would like to invite Mr. Chandrajit to share his business experience of silage, maybe. Over to you, Chandrajit. Thank you, Professor Sharma. Thank you very much. Sir, am I audible? Yes, please go ahead. Let me put my screen, sir. Share the screen. Yes. Is the screen visible, sir? Yes, it is visible. Dr. Chandrajit, please try to, complete within 5 minutes. Sure, Professor Sharma. Thank you very much for giving this opportunity to come and share my view. First of all, I would like to thank Professor R.P. Singh, VC Sahab, Professor Srivastav, Dr. Saval, Dr. Sunil, Dr. Yadav, Dr. Nagda, Sharma ji, God Sahab, all the participants, all the dairy farmers. Thank you very much. I will do my presentation in Hindi and English both because I could read in some chat section. कुछ लोगों का expectation था that we should talk in English also. मेरा नाम चंद्रजीत यादव है and I come from a company called Silage Agro Private Limited.
भगवान के आशीर्वाद से हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट साइलेज मैन्युफैक्चरर हैं और हम लोग साइलेज इकोसिस्टम को एक पूरा इनेबल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। हमारी कंपनी का जो मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। आप में से अगर कुछ लोग इसको जॉट डाउन करना चाहें, प्लीज जॉट डाउन कर सकते हैं। सर, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड सर? मैं साइलेज के बारे में कुछ आपको अगर साइलेज एग्रो के बारे में बताऊं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट साइलेज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम हिंदुस्तान में साइलेज को 2014 में बिल्ड साइलेज को 2014 में लेकर के आए और राजपुरा में हमारा प्लांट लगा, सबसे पहला प्लांट। और हम लोग ऑल अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड, ऑल अक्रॉस इंडिया हम लोग डेयरी फार्म्स को और गौशालाओं को साइलेज सप्लाई करते हैं। साइलेज की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन डॉक्टर नगड़ा ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया कि साइलेज कितना महत्वपूर्ण आहार है, साइलेज के क्या क्या फायदे होते हैं और साइलेज किस तरीके से डेयरी फार्मर को और एनिमल को बेनिफिट देता है। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग जो साइलेज बनाते हैं और जो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं ये बिल्कुल तैयार फॉर्म में होता है। किसान इसको खरीद सकता है और खरीद के अपने पशु को एज इट इज खिला सकता है। हम लोग बहुत ही बेहतरीन यूरोपियन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जो मशीनें हैं, हार्वेस्टर से लेकर के बेलिंग मशीन जो है वो बिल्कुल यूरोपियन स्तर की हम लोग मशीन इस्तेमाल करते हैं। जो साइलेज की गांठ है वो साइलेज की गांठ एक बार बनने के बाद 18 महीने तक प्रयोग में लाई जा सकती है अगर उसको अच्छी मशीन से कंप्रेस किया गया हो तो। साइलेज के अंदर कंप्रेशन यानी मशीन से दबाव डालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मशीनों से अगर अच्छी तरीके से दबाव डाला जाए तो 18 महीने तक साइलेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफी किफायती है, दाम में काफी सस्ता होता है, महंगा नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ 5.5 साढ़े 6 रुपए किलो भाड़ा लगा करके राजस्थान में बिकता है। इससे दूध में काफी वृद्धि होती है। जितने भी डेयरी फार्मर साइलेज को खिलाते हैं उन सब के पशु जो हैं उनके दूध का फैट बढ़ता है, दूध की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। गाय, भैंस और बैल, बकरी, शीप जितने भी पशु हैं उनको साइलेज खिलाया जा सकता है। साइलेज खिलाने के 5 सबसे महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। सबसे पहले पशु की सेहत बेहतर हो जाती है। नंबर 2, पशु का दूध बढ़ जाता है। नंबर 3, दूध में फैट बढ़ जाता है। नंबर 4, ये किफायती है, सस्ता है, तो आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं, खिला सकते हैं अपने पशु को। और नंबर 5, ये डेयरी फार्मर्स के लिए एक लेबर समस्या जो काफी बड़ी समस्या है डेयरी फार्म्स पे, उसको भी सॉल्व करता है क्योंकि ये पैक्ड फॉर्म के अंदर आता है। इंडिया के अंदर जो डेयरी फार्मर्स हैं उसमें गाय और भैंस, ये 2 तरीके के पशुओं को ज्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही साइलेज खा सकती हैं और अपने हेल्थ और दूध को बेटर कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 में हमने कंपनी स्थापित की। 2015 में हम लोगों ने न्यूट्री मील ब्रांड से हम लोगों ने साइलेज बेचना शुरू किया। हम तकरीबन 3 लाख टन की हमारी एनुअल कैपेसिटी है साइलेज बनाने की और उसको सप्लाई करने की डेयरी फार्मर्स को, कोऑपरेटिव्स को और लार्ज कॉर्पोरेट्स को, गौशालाओं को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। 4 तरीके का हम लोग साइलेज बनाते हैं। सबसे पहले मक्के का साइलेज जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, कॉर्न साइलेज। नंबर 2, व्हीट साइलेज, गेहूं का साइलेज। नंबर 3, शुगर केन, गन्ने का साइलेज। नंबर 4, ओट साइलेज, जई का साइलेज। हम लोग ये 4 तरीके का साइलेज बनाते हैं। 100 किलो, 400 किलो और 500 किलो की पैकिंग में उपलब्ध रहता है और ऑल अक्रॉस इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू नागालैंड, कोई भी इसको खरीद सकता है। हर जगह पर सप्लाई इसकी
संभव है। हम लोग आज कुछ बड़ी कंपनियों के साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ टॉप क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो अमूल हमारे टॉप क्लाइंट हैं, बनास डेयरी, अमूल की जितनी भी कॉपरेटिव्स हैं, नेस्ले, फ्लरिश, रूफिल, गोदरेज, पतंजलि, अक्षय पात्रा गौशाला, ये सब हमारे कुछ क्लाइंट हैं जो हमारे से साइलेज लेते हैं और आगे अपने किसानों को या तो सप्लाई करते हैं या अपनी डेयरी पर डायरेक्टली खिलाते हैं। हम लोग साइलेज जो सप्लाई करते हैं साथियों, वो हम बेल्ड फॉर्म में सप्लाई करते हैं, यानी 100 किलो, 400 किलो और 500 किलो की बेल है जो हम लोग बनाते हैं और ट्रक और जीपों के थ्रू हम लोग सारे जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं उनके पास पहुंचाते हैं। हम लोग आई बेलर कॉम्पैक्टर मशीन्स भी बनाते हैं। जो आई बेलर मशीन आपके सामने स्क्रीन पर होगी, आप देख सकते हैं, ये 100 किलो की बेल बनाने में सक्षम है। हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो बहुत ही बढ़िया टॉप क्वालिटी मशीनों के साथ हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें हम लोग हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, टॉप यूरोपियन मशीनरी यानी कि जो बेलर मशीन्स हैं ऑर्कल की, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा डॉक्टर नगड़ा ने आपको बताया, हम इसमें इनोकुलेंट डालते हैं ताकि इसको और साइलेज को न्यूट्रिशियस बनाया जा सके पशुओं के लिए। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, इसीलिए साइलेज एग्रो जो है वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे डेयरी फार्मर्स के लिए। हम तकरीबन हमारे फिलहाल 4 प्लांट हैं, 3 पंजाब में हैं, एक यूपी के अंदर है, जहां से हम लोग ऑल अक्रॉस इंडिया साइलेज को सप्लाई करते हैं। हम लोग एंड टू एंड मैनेजमेंट देते हैं, एग्रोनॉमी की सपोर्ट देते हैं, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं, जो बीज बोने से लेकर के और काटने तक की जिम्मेवारी और उसको सुझाव, नॉलेज का जो आदान प्रदान है वो हम किसानों के साथ में करते हैं। तकरीबन हम 7,000 एकड़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं और फसल उगवाने से लेकर के काटने तक हम लोग किसानों की हेल्प करते हैं। हम लोग फार्म एडवाइजरी और सर्विसेज देते हैं ताकि किसान बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। जैसे डॉक्टर नड्डा ने बताया कि वी आर यंग एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग एक बहुत छोटी सी टीम है, 4 लोग हम लोग मिल करके साइलेज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और हमारी पूरी टीम है काफी बड़ी, हम लोग साइलेज बना करके सप्लाई करते हैं। हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोगों ने 2015 में कंपनी का प्रोडक्शन, 2014 में कंपनी बनाई, 2015 में हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हम लोगों ने 5 प्लांट हमारे, जैसा मैंने आपको बताया, 4 प्लांट अभी फंक्शनल है, 5वां प्लांट हमारा फंक्शनल होने जा रहा है। हम लोग तकरीबन अब पहले 6,000 एकड़ में सोर्सिंग करते थे, अभी 7,000 एकड़ में सोर्सिंग कर रहे हैं। तकरीबन 2 लाख गौ माताओं को हम लोग चारा प्रोवाइड करवाते हैं। हमने 2.5 लाख टन अभी तक बना चुके हैं और 3 लाख टन तक की हमारे पास में कैपेसिटी है, और 2 टन से लेकर के 30 टन यानी 20 क्विंटल से लेकर 300 क्विंटल तक की हम लोग डोर डिलीवरी सारे डेयरी फार्मर्स को करते हैं। कुछ फायदे हमारी कंपनी से साइलेज लेने के ये हैं कि एक तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं तो हमें पता है कि क्या बीजा जा रहा है और क्या काटा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये हमारी बेस्ट है। नंबर 2, हम लोग बेस्ट इन क्लास मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग, जैसा मैंने बताया, 3 मल्टीपल SKUs में साइलेज बनाते हैं, 100 किलो, 400 किलो और 500 किलो में। तो जिसकी जैसी खपत है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है, वो हम सप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का साइलेज बनाते हैं हम लोग, जिसका ड्राई मैटर तकरीबन 32% के आसपास का रहता है, स्टार्च उसमें 30% के आसपास का मिलता है और क्रूड प्रोटीन 8% के आसपास का उसमें प्रोवाइड हम लोग करवाते हैं। हमारी जो टीम है वो काफी यंग टीम है, काफी प्रोफेशनल टीम है और कस्टमर्स को हम बेस्ट सर्विस देते हैं। आप हमारा सोशल मीडिया पेज है साइलेज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का फेसबुक पेज, उस पे आप हमारे कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं। यूट्यूब हमारा, गूगल के ऊपर आप जाकर के चेक कर सकते हैं।
कि हम लोग कैसे साइलेज बनाते हैं और कैसे सभी डेयरी फार्मर्स की हम लोग हेल्प करते हैं। हम लोग इंडिया की स्टार्टअप इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिकॉग्नाइज्ड संस्था है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे स्तर पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग स्टेट और सेंट्रल लेवल के ऊपर काम करते हैं। कुछ फायदे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कि पिट साइलेज डालने का और बेल्ड साइलेज डालने के क्या फायदे हैं। ट्रेडिशनली साइलेज जो है वो पिट फॉर्म के अंदर डलता हुआ आ रहा था। किसान आज भी पिट फॉर्म के अंदर साइलेज डालते हैं, लेकिन पिट फॉर्म से हम लोगों ने साइलेज को चेंज किया बेल्ड फॉर्म में। उसके कुछ फायदे हैं जो मैं फायदे आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर हम पिट में डालते हैं तो कंप्रेशन इतना नहीं जा पाता, या तो हम अपने पैरों से उसको दबाने की कोशिश करते हैं, या उस पे ट्रैक्टर चलाते हैं, या उस पे ऊंट या बैल, जो भी चीज हमारे पास में अवेलेबल होती है उससे उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उससे उतना अच्छा दबाव नहीं आ पाता। इसकी बजाय जब हम बेल्ड साइलेज बनाते हैं तो मशीनों से उस पर दबाव डालते हैं ताकि उसकी प्रॉपर फर्मेंटेशन हो सके, बेस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू आ सके। पिट साइलेज के अंदर जो वेट लॉस है ड्यू टू मॉइस्चर और सीपेज जो है वो काफी ज्यादा होता है, तकरीबन 25 से 30% का वेट लॉस होता है। बेल्ड फॉर्म के अंदर वो किसान का वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि जब हम आपको बेचते हैं तब उसका वेट नापा जाता है, तो आपका कोई उसमें लॉस नहीं होता। पिट साइलेज की बहुत कम शेल्फ लाइफ होती है, तकरीबन अगर छोटी गांठ की मैं बात करूं तो 1 महीने से लेकर के और तकरीबन 6 महीने तक की शेल्फ लाइफ होती है। बेल्ड साइलेज की जो शेल्फ लाइफ है वो तकरीबन 18 महीने होती है। पिट में आप लिमिटेड सप्लाई ले सकते हैं। अगर आपके पास में 100 गाय हैं या 100 भैंस हैं या ज्यादा हैं तो आप पूरे साल साइलेज नहीं खिला सकते, क्योंकि आप कितना बनाएंगे, 8 महीने 9 महीने का बना लेंगे, बाकी महीनों के लिए फिर आपको ट्रेडिशनल तरीके पे जाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल फॉडर सिस्टम पे। जबकि अगर आप बेल्ड फॉर्म पे लेते हैं तो आपकी जब मर्जी आए जब आप खरीद सकते हैं, पूरे साल साइलेज अवेलेबल रहता है। जो हमारा साइलेज है वो लैब टेस्टेड होता है, आप चाहें तो उसकी जांच करवा सकते हैं लैब में कि जो मापदंड हमने आपको पैरामीटर्स बताए हैं वो पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एफ्लाटॉक्सिन लेवल, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है किसानों के पशुओं के अंदर, बेल्ड फॉर्म के अंदर अगर साइलेज लेते हैं तो एफ्लाटॉक्सिन उसका बहुत ही कम रहता है। इसीलिए हाई क्वालिटी साइलेज जो रहता है वो बेल्ड साइलेज रहता है। और पिट साइलेज जो है उसके कुछ चैलेंजेस हैं, अगर आप अपना डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो बेल्ड साइलेज इज द बेस्ट वे टू मेक साइलेज और अपने एनिमल्स को देने के लिए बेल्ड साइलेज जो है वो काफी अच्छा तरीका है। ये एक मैं छोटा सा स्क्रीन पे आपके साथ में शेयर करूंगा, जो हम लोगों ने बनास डेयरी, जो कि गुजरात की एक बहुत ही बड़ी कोऑपरेटिव है, उसके साथ में हम लोगों ने जो काम किया। बनास डेयरी के साथ हम लोगों ने बनास डेयरी से ऑर्डर लेके और हमने उनके जितने डेयरी फार्मर्स हैं उनको इस तरीके से ट्रक्स में बेल्स डाल करके, ट्रैक्टर्स में बेल्स डाल करके उनको हमने उनके कलेक्शन सेंटर्स पर बांसवाड़ा और आसपास के एरिया के अंदर हम लोगों ने सप्लाई किया। ये सप्लाई हम राजपुरा और हमारे बांसवाड़ा प्लांट से करते थे, राजस्थान में जो है। हमने नेस्ले के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में काफी काम किया है। बहुत फायदे हैं। नेस्ले तो डेयरी फार्मर्स को अपने सजेस्ट करता है कि आप बेल्ड साइलेज के ऊपर जाएं, जिसके लिए कंपनी इतनी जागरूक है कि वो लोग, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन कम होता है इसलिए वो लोग अपने डेयरी फार्मर्स को सब्सिडी और बाकी सब चीजें भी सजेस्ट करते हैं कि फार्मर जो हैं वो बेल्ड साइलेज पर मूव हो जाएं, ताकि एफ्लाटॉक्सिन जो इशू है, एक हमारे दूध के अंदर एक इशू आता है एफ्लाटॉक्सिन का, उसको कम किया जा सके। बहुत सारे फायदे हैं। बड़े लार्ज संस्थाओं को एक क्वालिटी अच्छी जाती है, डोर स्टेप पे डिलीवरी होती है और बहुत ही अच्छे प्राइस के ऊपर हम लोग पूरे साल सप्लाई करते हैं। फार्मर्स का फायदा है कि एफ्लाटॉक्सिन कम रहता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, दाम अच्छा मिलता है। तो ओवरऑल जब भी हम लोग सप्लाई करते हैं तो जो किसान हैं
उसको काफी पूरे इस इकोसिस्टम के थ्रू फायदा होता है, चाहे हम उसकी फसल खरीदते हो, चाहे साइलेज बनाते हो, और चाहे साइलेज डेयरी फार्मर को सप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हम किसान को ही सर्व करते हैं। एक तरफ फसल खरीदना, दूसरी तरफ बनाना, और तीसरी तरफ उसको साइलेज सप्लाई करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चंद्रजीत जी फॉर शेयरिंग योर बिजनेस एक्सपीरियंस विद द पार्टिसिपेंट्स। और इसमें बहुत सारे हमारे किसान भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो चंद्रजीत जी से एक मैसेज ले सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि फॉडर को उस तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है। फॉडर में अपार संभावनाएं हैं बिजनेस की। आप लोग भी इस तरह का कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ में आगे आ सकते हैं और अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में मतलब उस तरह से डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। फ्रेंड्स, thank you Chanji ji for sharing your valuable experience of business on silage. Now I would like to invite our next speaker, and our next speaker is Dr. R.K. Sawal साहब। दोस्तों, डॉक्टर R.K. सावल साहब जो हैं वो प्रधान वैज्ञानिक हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल में, जो यही बीकानेर में स्थित है। और आपने 2 साल से ज्यादा वहाँ का जो अनुसंधान, ये जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल है, उसके आप डायरेक्टर भी रहे हैं। और एनआरसी कैमल ज्वाइन करने से पहले आपने जो अपनी सेवाएं हैं वो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल स्टेशन है यही बीकानेर में, वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं। और आपने एनिमल न्यूट्रिशन में आपका काम है, उसी के वैज्ञानिक हैं। और आपने कैमल शीप के ऊपर आपका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में बहुत बड़ा काम है। और पिछले 30 वर्षों से आप एनिमल न्यूट्रिशन पे ही काम कर रहे हैं। और मैंने जब आपको रिक्वेस्ट की तो आप सहर्ष आपने मेरा रिक्वेस्ट को स्वीकार की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अपना जो अनुभव है फॉडर सप्लीमेंट्स पे ही डॉक्टर साहब बात करेंगे, तो मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सर, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है सर? प्लीज चेक योर माइक। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी स्क्रीन शेयरिंग तो स्टार्ट हो गई सर, पर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। प्लीज चेक सर, माइक हो सकता है माइक में कोई दिक्कत हो। ऐसा तो नहीं।
दूसरी जगह स्टूडेंट डॉक्टर साहब, कोई अगर दूसरा सिस्टम हो आपके पास में तो वहां से जुड़ जाइए। या ऑडियो सेटिंग में ऐसा तो नहीं है कहीं आपने उसको 0 पे कर रखा हो? आवाज बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, सर स्क्रीन को शेयर कीजिए। सावल साहब स्क्रीन शेयर कीजिए, नीचे से स्क्रीन शेयर कीजिए। सर आवाज ही नहीं आ पा रही है। और आवाज जो है तेज करिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, यस। अच्छा, हाँ फुल स्क्रीन करिए। क्या लगाते हैं? एनबी 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 है ना, एनबी एनबी पाटिल। ये तो एके पटेल है। ये तो एके पटेल है। महावाया कौन है? दिस एडमिनिस्ट्रेशन पे चीफ है वो गया कोई। ठीक है, नहीं पता नहीं आया है कि नहीं आया है। उसका कोई वो आया है, रिप्रेजेंटेटिव आया। अब देखते हैं कौन आया है, वो बता दे तो है नहीं ना। अभी कभी कभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं सावल साहब।
Hello. Hello. Participants, sorry for technical disturbance. If any queries from any participants, please raise your hand. We are mute from our side. Please raise your hand for asking any queries and Mr. Asutosh, Mariam Mehboob, please unmute yourself. Mariam. Please unmute. Kuldeep Kumar, please unmute yourself. Hello. Yes, sir. आवाज आ रही है, sir. Am I audible? Yes, sir. Audible. Hello. Please go ahead. Mr. Kuldeep, please go ahead. You are audible. Okay, so I'm Kuldeep Sharma from Bikaner, Rajasthan. My question is, in a condition like Bikaner, what could be a model where across the year for green fodder availability can be made by a farmer? What are the crops actually selection for this model where across the year the green fodder can be made available? कुलदीप जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ एरिड जोन में जो हमारा खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन को अगर हमें कवर करना है तो एक तो हमारे यहाँ पेरेनियल क्रॉप है नेपियर बाजरा हाइब्रिड, हमें उसको अपने क्रॉपिंग सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट राउंड द ईयर फॉडर सप्लाई एक्सेप्ट कोल्ड। जब ज्यादा ठंडा होगी तो नेपियर बाजरा हाइब्रिड का जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अदरवाइज गर्मी में थोड़ा सा कम बढ़ेगा, बरसात में बहुत तेजी से बढ़ेगा, यू विल गेट राउंड द ईयर। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा ये सीजन है, जो खरीफ सीजन है, इसमें हमारा बाजरे की जो बाजरा यहाँ की मेन क्रॉप है, क्योंकि यहाँ सैंडी सॉइल है तो बाजरा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। जहां थोड़ी अच्छी जमीन है वहां आप ज्वार ले सकते हैं, और जहां अच्छी जमीन है वहां मक्का भी ले सकते हैं, लेकिन जहां सैंडी सॉइल है वहां बाजरा को हम प्रीफर करेंगे। साथ में उसका जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए उसके साथ में हम जो हमारा काउपी है, चवला जिसको हम यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं, उसको भी लगाएं। तो अगर हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं और सोल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, तो ये तो हमारा इस सीजन के लिए हो जाएगा। उसके साथ में अगर हम खरीफ में जाना है, रबी में जाना है, तो रबी में जो हमारी मेन क्रॉप है, जो सीरियल फॉडर है, उसमें जई है और जौ है। जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी वेलकम एड्रेस में बोला था कि हमें अभी ऐसी फसलों पर भी ध्यान देना है कि जो ड्यूअल पर्पज है। तो जो जौ है वो भी रेतीली जमीन में बहुत अच्छा होता है और फास्ट ग्रोइंग है। आप एक्सक्लूसिवली फॉडर के लिए भी उसको उगा सकते हैं, सिंगल कट उसमें, और आप अपना जो क्रॉपिंग सीक्वेंस है जिसमें आप ग्रेन भी लेना चाहते हैं, तो अगर ग्रेन लेना चाहते हैं तो वो 50 से 52 दिन के अवस्था पर अप टू 55 डेज भी आप जा सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। उसके लिए जो हमारी वैरायटीज हैं वो डॉक्टर रॉय ने भी उसमें बताया था कि जो आरडी 2035 है, आरडी 2715 है,
और RD 2552 है। ये एक वैरायटी और है जो आजाद के नाम से है, जो करनाल से निकली हुई है, वो भी ड्यूअल पर्पज या फॉडर के लिए है। तो ये 4 वैरायटी हैं जिनको आप उपयोग में ले सकते हैं। इसी तरह से जो ओट है, जो जई है, जई को भी रबी के लिए बहुत अच्छी क्रॉप है। और जई के लिए जो अगर आपको लेना है तो एक RO19, एक राहोरी की वैरायटी है, राहोरी ओट 19 के नाम से, बहुत अच्छी है। और हमारे जो झांसी से कई वैरायटी डेवलप हुई हैं, जिसमें JHO 2000-4 है, वो बहुत अच्छी वैरायटी है। UPO 212 एक पंतनगर की वैरायटी है, बहुत अच्छी है। OL 125 एक वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वैरायटी हैं जिनको आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप समर में जाते हैं तो समर में आप जाएंगे तो आपको बाजरा ही सबसे अच्छा है। फिर वही आएगा कि जहां अच्छी कंडीशन है आप मल्टीकट ज्वार भी ले सकते हैं। तो बाजरा को अगर आप लेना है तो हमारे यहाँ से भी वैरायटी है, लेकिन अगर क्योंकि समर में जाना है तो आप मल्टीकट प्रीफर कीजिए। और मल्टीकट की जब बात करते हैं तो हमारा जो जॉइंट बाजरा है वो एक नेशनल चेक है, बहुत अच्छा है। और राज बाजरा चरी 2 एक और वैरायटी है, वो भी मल्टीकट है, वो भी बहुत अच्छी है। और अगर काउपी का लेना है तो काउपी से कुछ वैरायटीज हमारे झांसी से भी निकली हुई है और कुछ पंतनगर से भी निकली हुई है। और इसके अलावा कुछ कलेक्शंस भी हैं, जैसे EC 4216 जो डॉक्टर रॉय ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था। तो इन वैरायटीज को भी हम लोग उगा सकते हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमारी जो फॉडर का रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है ग्रेन क्रॉप से। तो जो फॉडर हमें बाजरा की उसकी जो ये आपका चवले की वही वैरायटी लेनी है जिनका वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है, जिनका लेट मैच्योरिंग है। जबकि ग्रेन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो अर्ली मैच्योरिंग हो, जल्दी पकने वाली हो, लेकिन हमें देरी से पकने वाली होंगी और जिनका बायोमास ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से जो आपका जो कब काटना है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि जो चारा है, चारे में 4 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक है कि चारे की पैदावार ज्यादा हो, तो जो पैदावार ज्यादा हो तो उसके लिए हमें वहां के लिए उपयुक्त जो वैरायटीज हैं उनका चयन करना है, समय पर बुआई करनी है, समय पर निदान करना है, समय पर उनको पानी देना है, पूरा फर्टिलाइजेशन देना है। इसका मतलब हमारी जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए ताकि हम जो पोटेंशियल यील्ड है उसको हार्वेस्ट कर पाए। इसके साथ में आता है कि जो उसकी पैलेटेबिलिटी है, स्वादिष्ट, चारा स्वादिष्ट भी होना चाहिए। तो स्वादिष्टता और उसके साथ साथ उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और न्यूट्रिटिव वैल्यू ये भी अच्छा होना चाहिए। तो इस सबको देखते हुए ये देखा गया है कि जो जब क्रॉप है जो फ्लावरिंग स्टेज पर आती है तो ये हम अगर चारों एस्पेक्ट को देखें तो जो फ्लावरिंग स्टेज है ये फॉडर हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट स्टेज है, ताकि हमें अच्छा खासा चारा भी मिल जाता है और उसकी पैलेटेबिलिटी भी अच्छी होती है, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। तो इस तरह से आप उसमें अपना ये कर सकते हैं। और जो हमारा रबी सीजन है उसके लिए जो हमारे लेग्यूम्स है उसमें यहाँ जो ये क्षेत्र है यहाँ पर रिजका बहुत अच्छी क्रॉप है, आप उसको ले सकते हैं। और कुछ मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तमाम वैल्यू एडिशन और इस सब तरह का वो है, तो अपने जैसे जो हमारा मेथी है, मेथी के भी कुछ ऐसी रेसिस हैं, ऐसी वैरायटीज हैं जिनका वेजिटेटिव होता है, उनका मेथी को भी अपने पशुओं को खिलाते हैं तो वो एक जी काम करेगा। तो ये इस तरह का आप क्रॉप सीक्वेंस अपना सकते हैं राउंड द ईयर फॉडर प्रोडक्शन के लिए। और कोई? जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिटेल्ड आंसर सर, थैंक यू। थैंक यू कुलदीप जी। नेक्स्ट सरिता यादव। Yes, sir. Very good afternoon, sir. I'm Sarita Yadav from Bihar. So I know this season is going on Arid zone, but I wanted to talk about Bihar. So I wanted to know some variety name of fodder crop that we can grow for our animal in between season gap. Like after Rabi crop, there is almost 3 months of gap between Kharif crops. Then what we should grow in between this? बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका।
देखिए जैसा मैंने बताया कि जो आपका समर सीजन है, जो जायद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए आप मक्का ले सकते हैं जो 60 दिन में तैयार हो जाता है। और मक्का की जैसा डॉक्टर साहब ने अपने उसमें बताया कि जो अफ्रीकन टॉल है वो तो एक वैरायटी है ही, J1006 है जो PAU लुधियाना से है, और प्रताप मक्का 6 है जो हमारे यहाँ जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है उदयपुर में, वहां से डेवलप की गई है, और एक अभी रिसेंट वैरायटी है जो अभी नोटिफाई हुई है पिछले साल। तो आप इन वैरायटीज को आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बायोमास जो दूसरी वैरायटीज हैं हमारे ग्रेन प्रोडक्शन के, उनसे बायोमास हमें ज्यादा मिलेगा, तो आप इन वैरायटीज को उगा सकते हैं। इसी तरह से आप, क्योंकि बिहार का जो कंडीशंस है वो वहाँ की सॉइल भी अच्छी है, तो आप मल्टीकट ज्वार जो है सोरगम, उसको उगा सकते हैं। और उनके लिए भी आप प्रीफर कीजिए कि अगर आपको मल्टीकट ज्वार मिल सकती है, तो जैसे CSH24MF एक हाइब्रिड है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप उसको लगाइएगा, आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। और CSH24MF Please repeat. I'm sorry for interruption. Go ahead, sir. मैडम आपका शायद सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है। So I'm saying go ahead. You were saying something. आ नहीं पा रही, उनका शायद सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है। Sir, I am also ready now, sir. You are ready, sir? Okay. Then please go ahead, sir. Now Dr. Sawan is ready, because there was some problem in the computer. हाँ, कोई और ये पढ़ा? हाँ. So friends, good afternoon to all of you. Respected Vice Chancellor Dr. R.P. Singh, my seniors Dr. Shrivastava, honorable member of the chair selection board, and Dr. Nagda, my earliest speakers, Dr. Sharma, my organizing secretary of this seminar. Really, I feel sorry that the system could not work. So for another 10-15 minutes, now I have changed, and I'll continue with my speech. So the topic given to me was on fodder supplements. So because the fodder supplements, the thing is that, sir, I'll speak in Hindi because some of the farmers are also attached, and the title also, in the title also I have given the same thing. अच्छा है सर, थोड़ा किसानों को, किसान भी काफी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ठीक रहेगा अगर आप हिंदी में बात करें। नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड, हाँ, चारा पूरक। एक्चुअली क्या है कि ये कैसे हम जो है इस चारे को अपने इस मरु क्षेत्र के हिसाब से हम देखें तो जो चारा सप्लीमेंट है, तो देखो जो हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके लिए तो वो एक चारा एक पूरक ही है, क्योंकि उनको अक्सर आप देखते होंगे कि जितने किसान भाई हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं या गाय चराते हैं, तो वो क्या है कि चारा सप्लीमेंट जो है उसको शाम को जो है या सुबह के समय अपने पशुओं को देते हैं ताकि जो है उनकी उत्पादकता बनी रहे। तो ये जो चारा उत्पादन मतलब सप्लीमेंट है उसको जो है, और दूसरा जो सप्लीमेंट है वो बड़े पशुओं को है जो दूध उत्पादन वाले हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि दूध उत्पादन के लिए जो है वो पूरा का पूरा जो पैकेज है, यानी कि उसके लिए उसको हरा चारा भी चाहिए, सूखा चारा भी चाहिए, और उसको जो है दाना भी चाहिए। तो ऐसे में अपने इस मरु क्षेत्र में या अपने क्या ऐसे विकल्प हैं, क्योंकि अक्सर हम जो है उसको भी सप्लीमेंट ही मानते हैं जो चारे हैं। तो अक्सर इसकी महत्वता यहाँ पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अपने यहाँ जो है मरु प्रदेश है, कोई 5 सालों में से कोई एक आध साल ही ऐसा होता है जब जहाँ बारिश जो है ठीक होती है। तो अगर हम देखें
तो पिछले इतने वर्षों में जो है जो चरागाह के ऊपर भूमि थी या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स था या हमारे जो नेचुरल रेंज लैंड्स थे, उनमें बहुत बहुत बदलाव आया है और बहुत एक्चुअली कमी आई है। कमी आपको जो है मेरे पहले से बोलने वाले जो स्पीकर्स थे उन्होंने बताया कि या तो एनक्रोचमेंट है या उस जो लैंड थी उसको जो है कि कई अन्य कारणों के लिए यूज किया गया। तो फिर भी एक बहुत बड़ा अच्छी सोच है, आप उसको रियलाइज करेंगे कि भेड़ बकरी अगर हम देखें जो छोटे पशु हैं 3.5% प्रति वर्ष की उससे जो रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम ये देखें कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हमारे कहाँ पर हैं तो कितने घट गए हैं, ठीक है ना। और इस समय अगर हम देखें तो हमारे जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हैं, क्योंकि मेरा इसके ऊपर काफी देर से काम है, मैंने पिछले 15-16 वर्ष से मैं इस पे काम किया, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की जो प्रोडक्टिविटी है इट हैज डिक्रीज फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.75 क्विंटल्स पर हेक्टेयर टू जस्ट नाउ अगर हम देखें तो इट इज अराउंड लेस देन अबाउट 0.15 हेक्टेयर क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी कि 15 से 20 किलो से लेकर अभी उसकी प्रोडक्टिविटी आपको जो है 1.5 से 2 क्विंटल तक मिल सकती है किसी अच्छी जगह पे हो तो। उसके बावजूद भी जो हमारे पशु हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। किसान अपनी जगह देना नहीं चाहता, किसान जो है उसने अपनी जो लैंड थी उसको जो है पूरा का पूरा एनक्रोच कर लिया। पहले वो बहुत सारी जमीन जो थी वो छोड़ता था अपने पशुओं के चरने के लिए, और जो भी बारिश के समय में चारा उगता था उसको जो है या तो अपने यहाँ इकट्ठा करता था या फिर अपने पशुओं को उसके अंदर अलाउ करता था। और जो गांव का कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है या पंचायती जमीन है उसमें भी जो है पशु पलते थे। अब वो जो जमीन है उसके अंदर जो है आपको विलायती बबूल मिलेगी, और अगर आप देखिए तो विलायती बबूल की जो पॉपुलेशन है इट हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली, यानी कि उसकी जो है नंबर कितना बढ़ गया है 5418। अब अक्सर ये लोग सोचते हैं कि पशुओं के लिए ये हानिकारक है। ये कृषि के लिए हानिकारक जरूर हो सकता है पर पशुओं के लिए हानिकारक नहीं है। पर पशुओं के लिए आप ये देखिए कि एक झाड़ी के ऊपर लगभग जो है 20 किलो तक जो है आपको फलियां मिलेंगी, और ये फलियां जो हैं ये बिल्कुल मक्का के बराबर की तुलना में एनर्जी और प्रोटीन मिलती है। लगभग इसमें 7% प्रोटीन होती है, 7% ही मक्का में के आसपास होती है। एनर्जी लेवल जो है मक्का में करीब 85 से 90% होता है, इसमें 85, इसमें भी जो है 5% कम रहता है। पर इसकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी कहीं ज्यादा है, इसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं। और अक्सर आप देखोगे कि भेड़ बकरियां जो है इन्हीं के ऊपर जो है निर्वाह करती हैं, और इसके अतिरिक्त उनको बहुत कम दूसरा चारा मिलता है। तो क्योंकि सारे पशुपालकों ने जो है इसको अपनी अपनी जो जमीन थी, इसको नेक्स्ट करो, हाँ जी, अगर हम देखें तो पूरे वर्ष में अगर हम देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे इसमें अवेलेबल हैं, क्या कहते हैं मिलते हैं। जैसे कि कई तरीके के घास हैं, सेवण है, धामन है, और क्या कहते हैं मुरट है, लामपड़ा है, कई ऐसे घास मिलते हैं। उसके सिवा इसमें जो है अगर हम झाड़ियों को देखें तो जो ऐसी बहुत सारी झाड़ियां हैं, जो मुराल है, बेरी है, ये अक्सर अवेलेबल रहती हैं, केर है, और वृक्षों से जो है ना पत्ती लगभग जो है पूरा वर्ष मिलती है जनवरी फरवरी को छोड़ के, जिसमें जो है आपका खेजड़ी है, ठीक है ना, जाल है, ऐसे बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनसे आपको पत्तियां मिल सकती हैं। पर इनकी जो है धीरे धीरे इनकी क्वालिटी में बड़ा फर्क पड़ता है। ये एक बहुत अच्छे रिसोर्स हैं जो मैंने आपको सर दिखाए। एक तो सिरस जो है इस मरुभ क्षेत्र का बहुत अच्छा वृक्ष है, जिसमें जो है लगभग जो है 12% प्रोटीन उसकी फली में मिलती है। पत्तियां तो जानवर कम खाते हैं पर फली जो है काफी होती है, और एक वृक्ष के ऊपर लगभग 1.5-2 क्विंटल से लेके करीब 3 क्विंटल तक जो है फलियां मिल जाती हैं। ऐसे में जो है इनको आराम से पशुपालक जो है खासकर मार्च अप्रैल के महीने में फलियां ये पक जाती हैं और इनको जो है इकट्ठा किया जा सकता है। इनके बीज के अंदर लगभग 32% प्रोटीन होता है, पर अगर हम इसको पूरे को ऐसे चूरा कर लें
तो ये एक संपूर्ण दाने के रूप में जो है सप्लीमेंट के रूप में हमें मिल सकता है। ऐसी जो है हमारी खिचड़ी की फलियां हैं, विलायती बबूल की फलियां हैं। खिचड़ी की फलियों में भी लगभग 13 से 14% प्रोटीन मिल जाता है आपको। और एक आप देख रहे हैं इसके अंदर एक तो बेरी है। अब खेजड़ी के जो पत्तियां जिनको अपन अक्सर किसान भाई हार्वेस्ट करते हैं, तो एक बरानी क्षेत्र में अगर हम हार्वेस्ट करें तो लगभग 5 किलो पत्ती मिलती है। और अगर थोड़ा सा नहरी क्षेत्र हो या कहीं कोई पानी का स्रोत हो तो एक पेड़ से लगभग हमें जो है 15 से 20 किलो तक भी पत्ती मिल जाती है। ऐसी जो है अगर हम बेरी को देखें तो बेरी जो है छोटी जो बेरी अक्सर जो है लोग पहले काट लिया करते थे और अपने यहाँ जो है उसमें झांसड़ी को जो है इस्तेमाल किया करते थे फेंसिंग के रूप में। एक बेरी के ऊपर जो है लगभग 500 ग्राम पत्ती निकल आती है। और इसे जो है अक्सर पशु जो है बहुत अच्छी तरह चाव से खाते हैं, क्योंकि ये फरवरी मार्च के महीने में फूट जाती है और फिर पूरा साल तक इसमें पत्तियां लगभग मिलती रहती हैं। और इसके सिवा केर है। केर को जो है अक्सर लोग कहते हैं कि पशु नहीं खाते हैं, तो पशु जो है जब सर्दियों के अंदर इसके जो टर्मिनल एंडिंग्स हैं वो बिल्कुल ड्राई होने लगते हैं, तो उस सूखे हुए, क्योंकि उसमें कड़वाहट कम हो जाती है, तो ऐसे में क्या ऊंट, भेड़, बकरी, गाय भी इसको जो है इसके टर्मिनल एंड्स को खाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। और ऊपर एक सबसे मैंने आपको दिखाया एक जो है कैक्टस के ऊपर जो है अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि कैक्टस जो है एक बहुत अच्छा सोर्स जो है, विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए जो है एक बहुत अच्छा स्रोत चारा उत्पादन का मिल रहा है। और इसमें लगभग 7 से 8,000 क्विंटल चारा हो सकता है। और इसको जो है हमने पशुओं को खिला के देखा, अपने ऊँटों के ऊपर भी हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। और जो है इसको हम चारे के अंदर जो है हरे में भी खिलाया जा सकता है, और इसको जो है इसको जो है सुखाकर दाने के अंदर भी डाला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट कम है, 4% ही है। और पर ये एक बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम और फास्फोरस का। तो ऐसे में क्या है कि अगर क्या कहते हैं पशु को कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो रही हो, तो विशेषकर उस समय पे जो है आप कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने अभी जो है अभी हमारे संस्थान में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू है। हम इसको जो है पाउडर फॉर्म में, जब भी जैसे सीजन में हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम इसको सुखा लेते हैं। सुखाकर जो है हम इसको दाने के रूप में भी यूज करने लगे हैं। तो मक्की के कंपैरिजन में मक्की को अपन 1/4 तक रिप्लेस कर सकते हैं, और एक सस्ता स्रोत जो है किसान जो है अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा स्रोत पश्चिमी राजस्थान के लिए है, क्योंकि इसको जो है अपन हर जगह पे उगा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है विकल्प है जो चारे के रूप में लिया जा सकता है। ऐसी आप देखेंगे कि एक तो मुराली है जो बहुत अच्छी एक यहाँ की झाड़ी है, जिसे जो है उसके मुराली के ऊपर भी लगभग 500 से 600 ग्राम पत्ती एक झाड़ी से मिल जाती है। और अगर हम इसको हार्वेस्ट करें, जैसे अपन बेरी को हार्वेस्ट करते हैं, तो इतनी पत्ती जो है अपन स्टोर कर सकते हैं और ऐसे समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास चारा नहीं उपलब्ध है। तो ये और दूसरा क्या है कि जो सबसे बड़ी जो थी जो फोग कैलिगोनम पॉलीगोनाइडिस, जो हमारे यहाँ की एक बहुत अच्छी विरासत है भी, और आने वाले समय में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, तो इसको भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर किसान भाइयों ने अपने यहाँ पे खेतों में से फोग को निकाल दिया, जबकि फोग जो है बहुत अच्छा चारा भी, हरे फॉर्म में भी चारा इसका बहुत अच्छा था। और अगर अक्सर जो पुराने किसान भाई हैं वो इसको जो है काट के रख लिया करते थे, जिसे अपन लोकल लैंग्वेज में लासू के नाम से बोलते हैं। तो इसमें लगभग 7% प्रोटीन मिल जाती थी। तो अभी भी कुछ जगह पे इसको जो है छांग लेते हैं, और छांग के जो है काट के इसके बाद दोबारा सीजन में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नीचे आप देखिए, एक ये है क्या, बुई जो है एरवा सुडोमेंटोसा जिसको अपन बोलते हैं। और ये अक्सर किसान भाई कंप्लेंट करते हैं कि जो है जब ये हरी होती है तो पशुओं के जो है ना पेट चलने लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बुई है, ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको जो है बाई नेचर जब वो रॉ फॉर्म में होते हैं या ग्रीन फॉर्म में होते हैं, उस टाइम पे पशु जब खाता है तो इसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं।
पर जब बुई जो है नेचुरल ड्राई हो जाती है, यानी कि पूरा ब्लूम स्टेज के आने के बाद ड्राई होती है अपने आप ही खेतों में, तो इसे जो है पशु इसके फूल को छोड़ता तक नहीं, इसके पत्ती को भी नहीं छोड़ता। तो आप ये अगर किसान भाई जो है इसको हार्वेस्ट कर लें तो हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि ये जो बुई है ये आप देखेंगे कि जितने भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है वहां पे खूब उगती है, क्योंकि खेतों में तो उग नहीं सकती, खेतों में तो किसान अपनी इच्छा अनुसार जो है उसकी वीडिंग कर देता है। पर जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है उसके अंदर जो है वहां से ये इसको कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करके और सुखा के और फिर जो है पशुओं को ऐसे समय पे दिया जा सकता है जिस समय पे जो है अन्य चारे अवेलेबल नहीं होंगे। ये एक लाइफ साइकिल मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हमने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें हमने ये देखा कि जो ड्राई मैटर यानी कि जो सूखा चारा है वो उसकी उपलब्धता जो है पाश्चर के अंदर कितनी रहती है। तो आप ये देखेंगे कि पाश्चर के अंदर जो है सबसे ज्यादा उपलब्धता जो है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में रहती है, और बाकी जो है उसके बाद जो है उपलब्धता घटने लगती है और मई जून में आके तो बिल्कुल ही घट जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि अक्सर पशु जो है वो पहले तो पत्तियों को खाता है, फिर स्टेम्स को खाता है और फिर बाद में उसको जो है ना खींचने लगता है। तो मैं आपका इसका आगे इसको बताना चाहूंगा। इसमें आप देखेंगे कि जो है ना क्या कहते हैं, जो ड्राई मैटर है, एक तो वो पहले तो वो उसकी अवेलेबिलिटी जो है बिल्कुल, यानी कि सूखा उसकी जो अवेलेबिलिटी है बिल्कुल ही घट गई है, मई जून में आके बिल्कुल सूखापन आ गया। नहीं, इसके बाद ये आप देखिए, इसमें अब मैंने आपको दर्शाने की कोशिश करी है कि हमारे पास जो पाश्चर है उसके अंदर बहुत सारे घास हैं, जिसमें सेवण है, धामन है, मुरट है, लामपड़ा है, ऐसे बहुत सारे घास हैं। अगर हम इनकी पॉपुलेशन देखें तो जो पॉपुलेशन है वो जैसे जैसे क्या कहते हैं बरसात के बाद, यानी कि जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में पूरी उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम पे होती है, और उसके बाद इनका नंबर जो है घट जाता है कि जितने भी छोटे घास हैं उनको जो है अक्सर पशु खा लेते हैं, और जो ऐसे स्टर्डी घास हैं जैसे सेवण है या धामन है या बूर है, इनको जो है पशु जो है कम खाते हैं, पर मतलब सेवन को तो काफी खाते हैं, पर इनकी जो पॉपुलेशन बनी रहती है। और अक्सर आप देखेंगे कि ठूंठ जो है हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जब तक नेक्स्ट सीजन नहीं आता। तो इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि जो प्रोटीन कंटेंट है, जैसे आपका झाड़ियां हैं, इनमें जब पत्तियां सूख भी जाती हैं उस समय भी इनका जो है प्रोटीन की मात्रा इनमें काफी अच्छी रहती है। जैसे इवन बेरी है, तो बेरी में आप देखिए 11.2% है कैलिगोनम पॉलीगोनाइटिस, यानी कि फोग के अंदर भी लगभग 12% प्रोटीन है, और प्रोसोपिस सिनेरेरी है, यानी कि खेजड़ी के अंदर भी जो है लगभग 10% प्रोटीन होती है, और आपके जो मुराड़ी है उसमें भी लगभग 9.5% प्रोटीन होती है। तो इनमें अगर हम जो है पत्ते सुखा भी लें तो भी इनमें जो है अपन को बहुत अच्छा एक चारा मिल सकता है, या सूखे हुए पत्ते अगर हम इकट्ठे कर लेते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा चारा मिल सकता है। अभी नीचे मैंने एक दर्शाने की कोशिश करी है कि पाश्चर की जो यील्ड है वो सीजन में कैसे इफेक्ट करती है। आप देखिए मॉनसून सीजन के अंदर जो है ड्राई मैटर ज्यादा अवेलेबल है, यानी कि 62 मतलब कम अवेलेबल है, पर ऑटम के अंदर ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखेंगे कि इनके अंदर जो है चूंकि जो चारा जब उगता है तो पत्ती का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है। अब जैसे जैसे ड्राई होने लगता है तो पत्ती का प्रोपोर्शन घट जाता है और स्टेम्स का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या है कि ड्राई मैटर जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक्चुअली उसमें उस टाइम पे बढ़ जाती है, पर प्रोटीन कंटेंट जो है घट जाता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर प्रोटीन ज्यादा रहती है, स्टेम्स के अंदर प्रोटीन कम रहती है। तो ऐसे टाइम पे जो है इसलिए दर्शाने की कोशिश करिए ताकि हम उस टाइम पे इसको जो है सप्लीमेंट कर सकें। ये जो है इसमें अगर आप घास देखेंगे तो जो है आपका सेवण है, धामन है, इनमें बहुत सारे ऐसे घास हैं जो जिनका जो है नंबर वो बहुत कम हो जाता है। जैसे लामपड़ा घास है, ठीक है ना, ट्राइबुलस स्पीशीज है। अब ट्राइबुलस यानी कि कांटी जो है आपको मानसून के अंदर ज्यादा मिलेगी और उस टाइम पे कम मिलेगी, ठीक है। इनमें मैंने एक दर्शाने की कोशिश करी है कि जो अपनी वो है इनमें ड्राई मैटर कितना अवेलेबल रहता है। अब एक जो झाड़ी है
जैसे फोक की एक झाड़ी है तो आपको लगभग जो है 4 किलो के आसपास जो है मतलब 1.5 किलो ड्राई मैटर जो है एक झाड़ी में से मिल जाता है। ऐसे जो है बेरी में आपको जो है करीब 480 ग्राम, और जो है बेरीपाला में उसमें मुराली में जो है 414 ग्राम, और जो है खेजड़ी है अगर वो बरानी है तो लगभग जो है 4 किलो पत्ती आपको एक उसमें मिलती है। ऐसी नीचे आपको दर्शाने की कोशिश करिए कि कितनी इसमें से जो है पॉड निकलती है। जैसे खेजड़ी अपन छांगते हैं, और बरानी क्षेत्र में अगर हम देखें तो पॉड का जो वेट है लगभग आपको 1 किलो के आसपास मिलेगा एक उसमें, और उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है काफी हाई होता है 14.7। ऐसे में क्या है कि जो इनकी फलियां हैं या जो खोखे जिनको अपन बोलते हैं, उन खोखों को जो है किसान इकट्ठा कर सकता है और जो है बहुत अच्छा उसके लिए एक दाने के रूप में जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये आपको एक दर्शाने की कोशिश करी है कि देखो जब जैसे जैसे गर्मी आती है तो जानवरों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, क्योंकि उसको जो है कम अवेलेबल रहता है। तो इसमें आप देखिए कि ऊपर दिखाया हुआ है डिग एंड पुल, ठीक है ना सर। डिग एंड पुल में जो है और उसके बाद निबल है। तो डिग एंड पुल मतलब जैसे जैसे गर्मी आती आती है तो जानवर जो है जड़ से खींचने लगता है पौधों को, जड़ से पौधों को खींचने लगता है। तो क्योंकि उसकी जो उसको मिलता नहीं है कहीं पर भी, इसलिए उसको मिलता है। तो ऐसे क्या है कि एक है निबल। निबल के अंदर एक्चुअली क्या है कि जानवर की प्रेफरेंस जो है वो उसकी कम रहती है, क्योंकि सिलेक्शन उस टाइम पे नहीं, सिलेक्शन जो है उसके दिमाग में ज्यादा नहीं होता। उसको ये लगता है कि मैं किस तरह से अपना पेट भरूं। तो पेट भरने के चक्कर में वो जो है उनको जो है छोटे घास जो हैं या छोटी जड़ी बूटियां हैं उनको जो है वो खींचने लगता है। तो इसीलिए अपन ये कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, जिस टाइम पे मतलब अक्सर जो है जब नेक्स्ट फॉलोइंग सीजन आता है, अगर उससे पहले सीडिंग हो जाए तो जो है नए घास मिल सकते हैं। वरना क्या है कि पुराने पास्चर के अंदर जो है जो छोटे घास हैं या ऐसे घास हैं जिन्होंने पहली बार जैसे सीडिंग हुई और फुटाव हुआ, यानी जैसे मान लिया सेवन का फुटाव हुआ और अगर पशु ने उसको पूरा खींच लिया तो कैसे अगले साल वो उस चीज के लिए अवेलेबल नहीं होगा और ड्राई मैटर कम अवेलेबल रहेगा। तो ये एक्चुअली ये जो है इसमें कई टाइप का बिहेवियर जो है अपन आप देखेंगे कि जैसे सिलेक्टेड बाइट्स हैं। अब ये सिलेक्टेड बाइट्स जो हैं ये पशु किस पे चॉइस करता है? पशु चॉइस करता है या तो झाड़ियों के ऊपर, और या फिर क्या है कि जैसे फरवरी माह के अंदर आप देखेंगे कि अक्सर पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर जो है बारिश आती है। लगभग 1 mm के आसपास या 2 mm के आसपास बारिश आ जाती है। तो ऐसे में क्या है कुछ पत्तियां फूटने लगती हैं। तो उस टाइम पे जो है ना जानवर चॉइस से सिलेक्शन करता है। तो जो सिलेक्शन चॉइस वाला जो पार्ट है ये उस टाइम ये जो है धीरे धीरे घटने लगता है जैसे गर्मी आती है। इसमें एक मैंने प्रेफरेंस इंडेक्स सर बनाने की कोशिश करी है। आप देखेंगे कि एरिस्टिडिया यानी कि लामपड़ा की जो प्रेफरेंस है वो लगभग 32% है। क्योंकि जब हम पूरे उसको देखें पास्चर के अंदर कितनी बार क्या खाया कैसे खाया, तो जो है चॉइस के अगर हम हिसाब से देखें तो 7 का नंबर जो है तीसरा आता है करीब 9-9.5%। वो इसलिए क्योंकि 7 जो है अक्सर जो है जो पशु होता है वो ऐसी चीज को ज्यादा लाइक करता है जो सॉफ्ट है और जिसको जो है वो आसानी से खींच सकता है, खा सकता है। तो इस ऐसे में जो प्रेफरेंस जो उसकी रहती है वो लामपड़ा घास की रहती है, और बाद में जो है वो जो है सेवन घास को या दामन घास को लाइक करता है। तो उसमें जो है ताकि क्योंकि उसके ऊपर क्योंकि जो उसकी स्टेम्स जो होती हैं वो जब वो खाता है तो उसको थोड़ी हार्ड स्टेम्स हो जाती हैं क्योंकि फुटाव कम होता है। तो ये इस तरह से हम जो है इसका एक प्रेफरेंस इंडेक्स निकालते हैं ताकि जो है हम ये आगे लोगों को कह सकें कि या अपने रेंजर्स को कह सकें या अपने एग्रोनॉमिस्ट को या जो रेंज मैनेजमेंट में काम करते हैं उनको हम कह सकें कि जो है किस टाइप की जो स्पीशीज हैं वो पशु अक्सर जो है प्रेफर करते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं। क्योंकि इसमें ग्रेजिंग 2 टाइप की है। जो छोटे पशु हैं भेड़ और बकरी,
वो अक्सर जो है अगर आप देखेंगे कि लामड़ा घास प्रेफर करते हैं। और जो बड़े पशु हैं अगर आप उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे ग्रेजिंग करके देखेंगे तो जो गाय और भैंसे हैं वो आपको जो है ज्यादातर मोटी घासें यानी कि सेवन, धामन, इनके ऊपर जो है मुंह मारती ज्यादा नजर आएंगी। और जो छोटे पशु हैं वो इनके ऊपर ज्यादा करते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर हम एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स रखते हैं जिसके अंदर दोनों टाइप के स्पीशीज अगर को ग्रेज करने को अलाउ करते हैं तो हमें जो है हर टाइप की स्पीशी को जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो है एक बैलेंस भी बना रहे और दोनों टाइप के, दोनों तरह के पशु, जो छोटे पशु हैं और जो बड़े पशु हैं, दोनों को अपनी तरफ से जो है पूरा आहार मिल सके। ये एक मैंने दर्शाने की कोशिश करी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो जैसे मौसमी चारे होते हैं तो दो तीन ऐसे चारे हैं जो एक्चुअली ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। आपने खुद देखा होगा, एक बोरहविया है और लामड़ा घास है और ट्रेबुलस स्पीशीज यानी कि कांटी। ये तीन ऐसी मेजर स्पीशीज हैं जो एरिड जोन में अवेलेबल रहती हैं। और इनको अगर हम देखेंगे तो टाइम के साथ यानी कि जैसे जैसे बरसात पड़ती है, बरसात का जो पानी अवेलेबल रहता है तो उसमें जो है ये इनमें ड्राई मैटर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मैं इसलिए ये दर्शाना चाहता हूँ क्योंकि पशुपालक जो है इसको ऐसे टाइम पे हार्वेस्ट कर सकता है जब इसमें ड्राई मैटर अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास, जब बिल्कुल सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में इसमें लगभग जो है ड्राई मैटर काफी अवेलेबल रहता है। ऐसे में क्या है कि अपने खेतों में से उसे जो है वो इकट्ठा कर सकता है और ऐसे टाइम पे इस्तेमाल कर सकता है जब इसकी आवश्यकता हो। नहीं, इससे पहले हाँ इसके जस्ट बाद हाँ, ये आपको एक दर्शाने की कोशिश करी है कि आप देखिए एक एक तीनों में से अगर हम देखें तो इसमें जो है प्रोटीन कंटेंट कितना हाई है। मतलब एक पशुपालक जो है अगर उसको इस्तेमाल कर सकता है लगभग एरिस्टिडिया यानी कि लामड़ा घास में करीब 5.5%, 5.8, कांटी के अंदर लगभग 10% और बोरहविया जिसको अपन लासुंडी बोलते हैं या एक बेल टाइप सा पौधा निकलता है, इसमें लगभग 11% प्रोटीन जो है अवेलेबल रहती है। अब ये जो मौसमी चारे हैं इनको जो है अपन कभी भी एकत्रित कर, मतलब उस समय पे अगर किसान एकत्रित कर ले तो विशेषकर जो है इस मरु प्रदेश में जो है उसके चारे के लिए बहुत अच्छी समस्या जो है सॉल्व हो सकती है। और अपन इसको कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छे जो है फॉडर सप्लीमेंट है जिसको जो है पशुपालक अगर इस्तेमाल करे तो जो है बिल्कुल क्या कहते हैं ऐसे टाइम पे दे सकता है जब जो है उसको एक तो जब मतलब क्या कहते हैं पशुओं को अपन अक्सर जो है जून जुलाई में और जनवरी फरवरी में जब ब्रीडिंग होती है तो ऐसे में क्या है कि अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो ट्राइबुलस स्पीशीज है यानी कि कांटी के अंदर कुछ एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से भेड़ बकरियों के अंदर, गाय भैंस के अंदर जो है अगर जब ये खाती हैं तो इस टाइम पे क्या कहते हैं मतलब रिप्रोडक्शन रेट जो है अच्छा इंप्रूव कर जाता है और वो मौसम भी ऐसा रहता है। ऐसी जो है फरवरी के अंदर जो है जब फुटाव होता है, जब थोड़ी सी बारिश होती है लगभग फर्स्ट सेकंड वीक में, उस टाइम आप देखेंगे कि कांटी फूट जाती है। और बाई नेचर जो है चूंकि इसके अंदर एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स रहते हैं तो आप देखेंगे कि पशुओं के अंदर बहुत फास्ट जो है ब्रीडिंग होती है तो इनके जो है रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। तो किसान भाई इसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर कहीं ज्यादा अवेलेबल हो, लगा हुआ हो तो कांटी जो है ऐसे टाइम पे हार्वेस्ट की जा सकती है जब कांटे के अंदर मतलब कांटी जो है हरी हो और कांटा जो है उसके अंदर पूरा बना ना हो। क्योंकि कांटी जो है दो टाइप की है, एक ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस और ट्राइबुलस एलेटस, क्योंकि दोनों में जो है एक में तो कांटे नहीं होते और एक में थोड़े से कांटे होते हैं। पर अगर हम कांटे पड़ने से पहले इसको हार्वेस्ट कर लें तो ये एक बहुत अच्छा चारा का विकल्प हो सकता है। इसके सिवा अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है जो इसके अंदर नहीं दर्शाया उसमें जो है आपने देखा होगा कि सेवन है और सेवन और धामन दोनों घास जो है इनको जो है हम अपन समय पर हार्वेस्ट कर सकते हैं
और बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो करते भी हैं और करके अपने यहाँ इसको जो है स्टैकिंग कर लेते हैं। और चूंकि इसके अंदर जो है लगभग 7 से 8% प्रोटीन होती है जब अपन इसको हार्वेस्ट करते हैं, तो एक ये नेचुरल मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस राशन जो हम पशुओं के लिए बनाते हैं उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा पूरक है। और इसके जब हम इसको सेवन घास को देते हैं तो हम एक छोटा सा दाना जो है बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने पहले दिखाया, एक तो बबूल की फली है यानी कि विलायती बबूल की फली जो मीठी होती है, एक सेवन की सिरस की फली है, और खेजड़ी यानी कि लूम। अगर हम तीनों को जो है एक तिहाई जोड़ लें, इकट्ठा कर लें, तो एक ये बहुत अच्छा दाना बन सकता है, जिसे जो है पशुपालक कम से कम 5 से 6 किलो दूध उत्पादन के लिए अगर हम देखें तो 300 ग्राम दाना जो है प्रति किलो दूध दे सकता है। और ये जो 2-3 चीजें हैं, इनको ना तो उसे खरीदना पड़ता है, ना उसे कहीं बाहर से लेके आना पड़ता है, उसे केवल अपने जो खेत है उसी के अंदर से जो है ये स्रोत इकट्ठे किए जा सकते हैं, क्योंकि सिरस भी जो है पश्चिमी राजस्थान का में बहुत अवेलेबल है। और जो है खेजड़ी तो मैं मानता हूं कि हर पशुपालक के यहाँ लगी हुई है, किसी के यहाँ 50 पेड़ हैं, किसी के यहाँ 100 पेड़ हैं, जितनी भी जमीन के हिसाब से लोग लगाते हैं। और जो विलायती बबूल है वो भी हर जगह पे उपलब्ध है, पर केवल इतना ही करने की जरूरत है कि उसकी फलियों को जो है आप समय से इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके जो है आप जो है एक पशु आहार जिसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगता उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जो है अगर हम इसमें देखें, क्योंकि अक्सर पशुपालकों को ये दिक्कत रहती है कि पशु जो है कहीं ना कहीं पत्थर चाटते रहते हैं, तो जो नेचुरल स्रोत हैं उनको जो है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो है लाना है, एक आपका जो है कैक्टस है, एक जो है खेजड़ी है, इसके अंदर बहुत अच्छे जो है कैल्शियम फास्फोरस कंटेंट बहुत अच्छा होता है। दूसरा एक ऐसा वृक्ष है जो यहाँ पे अवेलेबल रहता है, जिसको बोलते हैं अपन जाल। अब जाल जो है वो अक्सर बाकी पशु नहीं खाते, केवल ऊंट खाता है, पर हम इसके पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हैं और हमने अपने फार्म पे इकट्ठा करके इनको खिलाने की बहुत कोशिश करी। बहुत अच्छे मतलब पशु जो है उसको आराम से खा लेता है। एक इस पश्चिमी राजस्थान में आर्डू के नाम से एक वृक्ष होता है, इसके चौड़े पत्ते होते हैं, इसमें भी लगभग 13 से 14% प्रोटीन होती है पत्तों में। तो ये एक बहुत अच्छा एक फॉडर सप्लीमेंट है, और हमने इनके पत्तों को इकट्ठा करके और जो है अपने यहाँ पे हमने पशु आहार यानी कि दाने के अंदर भी हमने इसको सुखा के डाला है। वैसे तो ये पशुपालक जो हैं जितने भी वेस्टर्न बेल्ट है, अपनी चूरू है, गंगानगर है, अजमेर है, जयपुर है, इसके आसपास के बहुत सारे पशुपालक जो हैं आर्डू के पत्तों को जो है शाम को जो है अपने पशुओं को सप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो भेड़ बकरी है, चाहे वो गाय भैंस है, ऐसे सप्लीमेंट करते हैं। हाँ, अगर किसान के यहाँ ये लगा हुआ है, और कई बार तो बहुत अच्छे पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, क्योंकि ये अक्सर रिजुविनेट होता रहता है, तो हम पत्तों को हार्वेस्ट करके ड्राई करके रख सकते हैं और उनको उस सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास कोई और प्रोटीन सोर्स नहीं है। क्योंकि आर्डू के पत्ते जो हैं, चूंकि 13-14% प्रोटीन होती है, पत्ता बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन कंटेंट बहुत कम होता है, टेनिन कंटेंट भी बहुत कम होता है। इसको जो है अगर हम यहाँ की जो लोकल वो है बाजरा है उसके साथ जो है अगर हम जोड़ के बनाएं तो एक अच्छा पशु आहार बन सकता है। ऐसे में यहाँ इस जो पश्चिमी राजस्थान में उसमें जो है बहुत सारे और ऐसे चारे के विकल्प हैं जिनको जो है पशुपालक इस्तेमाल कर सकता है। जो अभी लेटेस्ट आ रहा है कि जैसे मक्का है, हम यहाँ बाजरा लगाते हैं, तो बाजरे को जो है जब अपन हार्वेस्ट करते हैं, अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि उनको जो है काट के और खड़ा कर देते हैं तो और फिर जो है उसे अगर अपन चैफ करके रख लें, उसे अपन जो है यूरिया से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और नहीं हो तो उसको जो है उसी समय यूरिया से ट्रीट करके और उसे जो है बेल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा अभी आपको जो है पिछले मेरे स्पीकर ने साइलेज के ऊपर बेल बनाते हुए दिखाया, ये चीज जो है मक्का के ऊपर, बाजरा के ऊपर पॉपुलर हो रही है। और ताकि जो है, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक ऐसे थे जो काट लेते हैं बाजरे को
और उस टाइम पे उसका ऊपर से बीज वाला पार्ट तो काट लेते हैं, उससे सुखा लेते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा जो पौधा है उसे जो चूंकि उसके अंदर मिठास काफी होती है तो उसको ऐसे ही रख लेते हैं, और उसे समय आने पर उसको जो है चैफ करते हैं। कुछ पशुपालक तो चैफ भी नहीं करते और केवल डायरेक्ट सीधे जो है पशु के आगे डाल देते हैं। ऐसे में क्या है कि पशु जो है वो केवल पत्ती खाता है और डंडियां छोड़ देता है, यानी कि वेस्टेज अपनी बहुत ज्यादा होती है। तो इसे जो है अगर हम उसी समय उसको जो है हार्वेस्ट करके रख लें, जिस टाइम पे हम उसको जो है हार्वेस्ट करके चैफ करके रख लें, तो हम इसको जो है एज ए सप्लीमेंट यानी कि चारे का पूरक जो है उसके रूप में हम जो है पशु को दे सकते हैं और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा और कष्ट करें तो जो है इसको जो है यूरिया से ट्रीट कर सकते हैं। यूरिया से ट्रीट करने के बाद इसको जो है एक बैग्स के अंदर हम डाल के रख सकते हैं और जो है समय आने पर इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ पशुपालक जो है, अक्सर आपने देखा होगा कि चूंकि वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं डेयरी फार्मिंग में, तो वो अपने यहाँ पे चारा उगाते हैं। अब चारा उगाते हैं, अब एक सीजन आता है जब उनके पास चारा बहुत ज्यादा होता है, और उस चारे को वो क्या करें। एक तो क्या है कि मेरे पूर्व स्पीकर ने आपको बताया कि आप जो है उसकी साइलेज बना सकते हैं। अब साइलेज जो है वो ऐसी जगह पे बन सकती है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पे टेम्परेचर कम है। अपने यहाँ शुष्क प्रदेश के अंदर जो है साइलेज बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे इसको एक्चुअली मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर जो है काफी लो चाहिए, या फिर क्या है कि आप इसको जो है शेड के अंदर जो है अगर आप बनाते हैं तो टेम्परेचर लो रहेगा और थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि किसान भाई चूंकि इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते या कई बारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं होते, तो जो है इसको जो है काट के हम जो है तुरंत जैसे साइलेज बनाई वैसे ही जो है हम इसको काट के अगर हम इसके ऊपर यूरिया का छिड़काव करते हैं 3% यूरिया या 2%, 2 से 3% यूरिया, तो उसको जो है चैफ करने के बाद आप डालिए। और जो है जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि आप जो है बैग्स के अंदर बना सकते हैं, तो ऐसे ही बैग्स के अंदर जो है आप यूरिया ट्रीटेड कोई भी कड़वी या चारा आप तैयार कर सकते हैं। और इस जो जब चूंकि यूरिया जब हम डालते हैं तो ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, आपकी कोई एबनॉर्मल फर्मेंटेशन नहीं होती। जब भी आप इसको निकालेंगे, आप जो है इसको पशु के आगे डालिए, 1 या 2 दिन के अंदर पशु जो है उस स्मेल को समझने लगता है और फिर उसको खाना इस्तेमाल कर देता है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में चारे का एक और स्रोत है जिसे पशुपालकों को अपन कह सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि सरसों जो है, अब सरसों के अंदर एरिया जो है बढ़ता जा रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी पशुपालक हैं वो जो है उस सरसों की जो नीचे वाली लकड़ी होती है, सरसों निकालने के बाद जो है उसकी जो स्ट्रॉ है उसे जो है वो भट्टों में भेज देते हैं या उसे खुद जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने यहाँ अपने रहते जो है हमने पशुपालकों के यहाँ जब उस स्ट्रॉ को हमने यूरिया ट्रीट किया और पशुपालकों ने उसको खिलाया और उनको जो है अच्छे परिणाम मिले, दूध में भी और जो है भेड़ बकरी में भी। तो ऐसे में हम जो है कोई चीज जो है भट्टों में भेज रहे हैं, तो उससे तो 100 दर्जे अच्छा है कि हम उस स्रोत को अगर हम अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल करें, तो जो है एक बहुत अच्छा विकल्प जो है तैयार हो सकता है कि जो है उसको जब हार्वेस्टिंग होती है तो कुछ जो भी उसकी स्ट्रॉ निकलती है, उस स्ट्रॉ को हम जो है 3% 4% यूरिया से ट्रीट करें, यानी कि 1 क्विंटल स्ट्रॉ में लगभग 25 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया डाल के और उसे ऊपर छिड़काव करें और उसे जो है गड्ढे में डाल दें। तो गड्ढे जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर में लगभग 1 क्विंटल जो है आ जाता है चारा, उसे दबा दें और फिर जो है ब्लैक शीट से दबा के उसको बंद कर दें। आप 20 से 21 दिन के बाद उस चारे को आप खिला सकते हैं। और जो है पशु जो है शुरू में तो थोड़ा सा कम खाता है, पर लगभग 3 से 4 दिन के बाद इस स्ट्रॉ को खाना लग जाता है। और चूंकि स्ट्रॉ का कलर जो है वो ब्राउनिश हो जाता है, यानी कि पहले तो बहुत हार्ड होती है पर ट्रीटमेंट के बाद वो स्ट्रॉ बड़े सॉफ्ट हो जाती है। तो इस जो ट्रीटेड स्ट्रॉ है उसको जो है एक अच्छा मतलब खाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितने अपने यहाँ के जो स्ट्रॉ हैं उसको जो है एक बड़ा अच्छा विकल्प है कि हम उनको जो है फेंकने की बजाय उसको जो है किसी अन्य काम के में इस्तेमाल करने की बजाय एक पशु चारे के रूप में, पशु सप्लीमेंट के रूप में, चारे के सप्लीमेंट के रूप में
अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो अपने पशुपालकों की समस्या जो है काफी कम होगी, क्योंकि आप देखते हो कि पशु का चारा, जबकि जो मेरे पूरे वक्ता ने कहा कि लगभग 6 रुपए किलो तो ये अपनी साइलेज दे रहे हैं। और अगर हम ये देखें अगर आज के रेट में, तो हमें जो है ग्वार फलगटी या मूंगफली का चारा वो भी लगभग 9 से 10 रुपए किलो मिल रहा है। तो एक पशुपालक जो है अब अगर 100 किलो मतलब 100 रुपए से ऊपर तो चारे के ऊपर खर्च करता है प्रतिदिन, और लगभग जो है 25 से 30 रुपए दाने के ऊपर खर्च करता है अगर जो है एक पशु 4 से 5 किलो दूध दे रहा है। तो ऐसे में क्या है कि अगर 125 रुपया खर्च होता है और आपको जो है 4 या 5 किलो दूध मिलता है, तो आप खुद देख लीजिए मोटे तौर पे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, और इसी कॉस्ट पे जो है हम वहां से किसानों के यहाँ से उठा रहे हैं। तो अगर हम किसान के यहाँ कुछ चारे के विकल्प पैदा करेंगे या उनको एक ऐसी चीज सुझाएंगे जिससे उनका जो है चारे के ऊपर खर्च कम हो जाए, तो मुझे उम्मीद है पक्का कि जो है पशुपालक पशुपालन में और ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, और चूंकि उनको जो है उसमें आमदनी होगी, आमदनी का एक स्रोत बढ़ेगा। तो इसके साथ जो है मैं आपको उसके क्या कहते हैं, चूंकि ये एक बहुत बड़ा अपने लिए फॉडर सप्लीमेंट जो है, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ा विषय है पशुपालकों के लिए कि चारे के ऊपर खर्च कैसे कम किया जाए। और इसीलिए जो है मैं मानता हूं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने फीड सप्लीमेंट्स के ऊपर जो है बोलने के लिए मौका दिया। और मैं इस चीज को अगर हम ये देखें कि कम अवधि में जो एक तो मानसून के जो हमारे चारे हैं उनको अपन कैसे इकट्ठा करें, और जो हमारे यहाँ के लोकल चारे हैं जिनको अपन जो है एक अच्छे तरतीब से अगर अपन इस्तेमाल करें, चाहे वो बाजरा है या मक्का है, या कुछ क्षेत्रों में मक्का होने लगा है, सरसों की वो होने लगी है, या अपने पास जो है एक और भी चारा ज्यादा होता है जिसको अपन बोलते हैं जो चने की खार है। पशु उससे थोड़ा कम चाव से खाते हैं, पर यूरिया ट्रीट करके चने की खार को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, और जो है उसे गाय भैंस में दूध उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अपने यहाँ विशेषकर अपन को खास जरूरत झाड़ी और वृक्षों के उत्पादन को बढ़ाने की है। देखो जमीन तो जो है किसान छोड़ेगा नहीं अपने अपने जो है बीज कुछ भी उगाने के लिए। तो अगर हम जो है झाड़ियों का और वृक्षों से उत्पादन अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा विकल्प होगा कि जो है अपन पशुपालक को एक सस्ता और जो है अच्छा चारा उसके पास अवेलेबल रहेगा अपने पशुओं को खिलाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इसको विराम देता हूं और आशा करता हूं कि इसमें से शायद कुछ अपन कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट भी कहूंगा मैं, यहाँ के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये टॉक थी। थैंक यू वेरी मच। काफी लिमिटेशन भी आई बीच में, लेकिन आपने ये सब थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच बैक साहब, बहुत अच्छा। नाउ may I invite to डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर साहब जुड़े हैं? यस यस। हाँ फ्रेंड्स, डॉक्टर सुनील कुमार जी को बहुत पहले ही बोलना था, और मैं बहुत बड़ा आपके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि आप फिर बिजी हैं, तो इसलिए मैं आपका ज्यादा से ज्यादा समय ले सकें। दोस्तों, डॉक्टर सुनील कुमार जी जो है वो प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान के, और IGFRI झांसी में जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो डिवीजन है उसके डिवीजन हेड है। और आपका बहुत बड़ा काम है, आपने जो IGFRI के साथ साथ जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो फॉरेज क्रॉप्स का है उसमें भी आप जो एग्रोनॉमी डिसिप्लिन होता है उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में आप लंबे समय तक उस एक्रिप से जुड़े हुए रहे हैं, और बहुत बड़ा अनुभव है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपने डेवलप की हैं, और आपके अचीवमेंट्स को देखते हुए जो आपकी कंडक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको कई बार कई लेवल पे पुरस्कृत भी किया गया है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा।
मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम मैं देर से आया तब भी आपने मुझे समायोजित किया। क्षमा चाहता हूं क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। डॉक्टर पीएल गौतम उसके चेयरमैन है एंड बीइंग हेड ऑफ द डिवीजन आई कैन नॉट स्किप दैट मीटिंग। It could not held last year, so this was very important meeting for our institute. So sorry for that, but anyway, I will try to cover much of the information what I wanted to share with you all. Sir, we are very grateful. Despite of all busyness, you have spared your time to us. My slide is visible. It is coming, Dr. Sir. Okay. So सर्वप्रथम मैं बीकानेर यूनिवर्सिटी राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह साहब, माननीय मेंबर एसआरबी प्रोफेसर एके श्रीवास्तव साहब और सभी हमारे वरिष्ठ साथी सबको प्रणाम करते हुए और सभी जो इसमें जुड़े हुए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे आपके सारे जो प्रेजेंटेशन हुए ज्यादातर हिंदी में इंग्लिश में मिक्स थे। मुझे लगता है कुछ किसान भी जुड़े हुए हैं। किसान जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा ही होगा क्योंकि हम लोग भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं और आजकल जो भी वेबिनार हो रहे हैं जहां पर किसान जुड़ते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो मटेरियल होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वो इंग्लिश में या हिंदी में दोनों में हो और कम से कम हिंदी में हम बात करें। तो जो मेरा विषय है वो डायरेक्टली मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इतने सीनियर और नॉलेजेबल जो एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने जैसे प्रोफेसर एके श्रीवास्तव ने जो सिनेरियो प्रेजेंट किया वो तो हम लोगों के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। एंड फॉर क्वाइट सम टाइम आई वाज आल्सो means attending that session and noted few points for my knowledge and further research. तो उसको मैं ज्यादा आगे ना करते हुए, आपको सभी को पता है कि चारा की क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है, चारे के साथ प्रॉब्लम क्या है। इट इज एन ऑफ द बेबी। हम सभी चारे की बात करते हैं लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो मुफ्त पशुओं के लिए है। हम लोग चारा जो पैदा करते हैं उनको जो अवेलेबल होता है उतना खिला देते हैं और मार्केट को ध्यान में रखते हुए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शर्मा जी? डॉक्टर साहब, ये स्लाइड अभी आई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग बट इट इज नॉट विजिबल सो फार। ओके, This slide is visible? नहीं, अभी नहीं आ पाई है डॉक्टर साहब। उस तरह का वो लिखा हुआ ही आ रहा है कि मैं डॉक्टर सुनील तिवारी एचओडी आईजीएफआरआई हैज स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग है। एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए डॉक्टर साहब, शेयरिंग बंद करके वापस। Now it is okay? नो, No. नॉट सो फार। अब कीजिए डॉक्टर साहब, एक बार वापस शेयर स्क्रीन पे जाके। Yes, now it is fine. Now it is fine. Yes. Okay. हाँ, अब ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज। ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक। ओके, तो मैं ये कह रहा था, बहुत सारी बैकग्राउंड प्रोफेसर के श्रीवास्तव जी ने, जो कि
हमारे नेशनल लीडर हैं और एक्सपर्ट हैं। फिर डॉक्टर एके रॉय जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने बहुत सारी बैकग्राउंड बताई, सारी जो इम्पोर्टेंस बताई, डेफिसिट के बारे में बात की। दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा, काफी जो डेवलपमेंट हो रहा है। नंबर एक कि फॉडर की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है। हेलो हेलो Yes, you are audible और विजिबल भी है, आप प्लीज आगे बढ़िए। इट इज ओके, फाइन। हाँ हाँ, इट इज फाइन सर, इट इज फाइन, ओके, प्लीज गो अहेड। तो दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा कि जब हम लोग एक तो हम कह रहे हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम, या जो हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है कंजम्पशन का, एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बट देयर इज ए कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। उन सबको ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें कि जो फॉडर प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम है, या वो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम जहां फॉडर का इन्वॉल्वमेंट है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो ज्यादा इकोनॉमिक है, ज्यादा सस्टेनेबल है, और इन व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज या चेंजिंग क्लाइमेट ये ज्यादा उस वल्नरेबिलिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा ये है कि हमारी जो क्रॉस ब्रेड एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ रही है, फीमेल लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनकी फॉडर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और उनसे यदि हमें प्रोडक्शन लेना है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन लेना है, तो वी हैव टू इंश्योर fodder throughout the year. Every day we need to provide them green and lush green fodder, यानी उनको हमेशा प्रतिदिन के आधार पे हमें हरा चारा देना है। उसको करने के लिए हमारे पास जो पद्धतियां हैं, चाहे वो हम सूखे क्षेत्र के हों, एरिड के हों, जैसे राजस्थान गुजरात का कुछ पार्ट, या जो हम लोगों का अर्ध शुष्क है जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का कुछ पार्ट, या हमारे चाहे वो कोस्टल एरिया हो, जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र तट के क्षेत्र हैं, वहां सब जगह अब ये रियलाइज किया जाने लगा है कि जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है जहां पर लाइव स्टॉक हैं, वहां पर फॉडर को बढ़ाया जाए, फॉडर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। यानी जिस तरह से हम अन्न की फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अब फॉडर सिक्योरिटी की भी बात की जाने लगी है। और इसी को देखते हुए जो हमारा संस्थान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान करीब 60 वर्ष पूरे कर रहा है, और पिछले 5 वर्षों से हमारा विशेष ध्यान, आज की भी मीटिंग में हमारा विशेष ध्यान जो आकर्षित किया गया कि हम किसानों के बीच अपनी तकनीकी को ले जाएं, विभिन्न माध्यमों से ले जाएं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हेल्थ हो, या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन हो, या राज्य सरकारें हो, इनके साथ जुड़ के हम अपनी तकनीक को कैसे आगे ले जाएं। और पिछले 5-6 वर्षों के पहले हम लोगों ने 100 केवी के साथ जुड़ने की कोशिश की। उनके जो अनुभव है उनके आधार पर मैं बता सकता हूं कि उससे बहुत फायदा हुआ। राजस्थान के भी करीब 10 केवी के जुड़े हुए थे, जो जोधपुर अटारी है आपके, उसके माध्यम से। इस बार हम लोग ने 200 केवी के माध्यम से जुड़ने का प्रयास, एक प्रपोजल डाला है। लेकिन आज की मीटिंग में जो डॉक्टर पीएल गौतम साहब थे, उन्होंने कहा कि इस चीज को आप पूरे केवीके में जितने भी केवीके हैं मोर देन 620, उनसे ऊपर भी आप जाके सब जगह पहुंचना है आपको, और केवीके के माध्यम से अपनी फॉडर टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना है। वैसे तो जो इम्पोर्टेंट कल्टीवेटेड फॉरेजेज, इनके बारे में डॉक्टर रॉय ने बताया ही होगा। ये जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, शंकर नेपियर, गिनी घास, इन सब के बारे में उन्होंने बताया होगा। ये लुबिया है, बरसीम, लुसन जिसको रिस्का भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण चारा फसलें हैं। ये जो मैंने फसलें दिखाई, ये वो फसलें हैं जिनको हम चारा के रूप में, फसल के रूप में उगाते हैं। जिस तरह हम धान, गेहूं, मक्का या आलू, चना या सब्जी वाली फसलें या गन्ना वाली फसल जो भी हम उगाते हैं, इसी तरह ये मुख्य चारा फसलें हैं। और ये कुछ क्षेत्रों में, जैसे जो हमारा जहां पर जाड़ा होता है वहां पर बरसीम उगाते हैं, लेकिन जहां जाड़ा नहीं होता है वहां पर हम लोग रिजका उगाते हैं। खरीफ में हमारे पास ज्वार, बाजरा, मक्का सभी जानते हैं, लोबिया है, ग्वार है, और इसी तरह जो हमारा समर सीजन है उसमें बाजरा विशेषकर उगाया जाता है। मैंने देखा डॉक्टर रॉय का प्रेजेंटेशन, उन्होंने वैरायटी के बारे में भी जिक्र किया, मैं इसको स्किप करता हूं। लेकिन अब मैं आता हूं कि यदि आपको अच्छा चारा उत्पादन करना है, चारा जो आपका जो भी क्षेत्रफल है, पहली बात तो मैं, चूंकि किसान भाई भी जुड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा जब आपके पास 1 या 2 या इससे भी ज्यादा जानवर हैं, उसको देखते हुए आप अपने लिए जितना फूड ग्रेन के लिए अन्न
या सब्जी या फल या अन्य चीजें के लिए आप स्थान नियत करते हैं, कुछ क्षेत्रफल उसके लिए नियत करते हैं, उसी तरह चारा के लिए भी करना चाहिए। और वो समय आ गया है कि अब हम लोग 5 से 10% जो हमारी जमीन है जो जिसमें चाहिए, चाहे वो कल्टीवेटेड हो और चाहे वो नॉन कल्टीवेटेड हो। तो सबसे पहला ध्यान जो हमें देना चाहिए कि अच्छी वैरायटी लें, इनका अच्छा ड्राई मैटर का उनका अक्यूमुलेशन हो और पत्तियों का लीफ एरिया जो वैरायटीज हो वो ज्यादा पैलेटेबल हो, उनकी डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा हो, बेटर न्यूट्रिशन हो और एंटी क्वालिटी फैक्टर जैसे उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जिनसे खाने से जानवरों को दिक्कत हो सकती है, जैसे एससीएन की बात की जाती है, मिमोसिन की बात की जाती है। यद्यपि जो भी वैरायटी जो प्रचलन में है जिनको हम लोग रिलीज करते हैं, किसानों तक पहुंचाते हैं, उनमें प्राय इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारे किसान भाई जो भी बीज लें वो एक नोटिफाइड एरिया से लें और उसका विश्वस्त सूत्र लें, या तो केवीके से लें या किसी अनुसंधान संस्थान से खरीदें या विश्वविद्यालय से खरीदें, क्योंकि वो आपका जो वैरायटी होगी वो वेल टेस्टेड होगी और पूरी तरह वो सही होगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि आप किस तरह अपनी फसल का प्रबंधन करें, तो उसमें आपका जुताई से लेके कटाई तक सारी क्रियाएं आती हैं फसल प्रबंधन के लिए, जिसमें मैं पहले बता चुका हूं कि रिलायबल सोर्स से आप बीज खरीदें और जो बुआई का जो तकनीक अपनाते हैं उसको प्राय देखा जाता है कि छिटकाव विधि से किसान या जो भी हम लोग फॉडर के बारे में बात करते हैं छिटकाव विधि से बो देते हैं, उसको भी लाइन में बोएं, पंक्ति से पंक्ति में बोएं। इससे क्या होगा, एक तो उनका अच्छी पैदावार होगी, उनको अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और उसमें आप जो इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी खरपतवार नियंत्रण है, सिंचाई है, या आपको बीच में यदि बहु कटाई वाली कोई फसल है उसमें जब कटाई करेंगे उसके बाद उसमें आप जो फर्टिलाइजर डालेंगे उसको आसानी से डाल सकते हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंस है बढ़ेगी और उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। इसी तरह ये भी कहा गया है कि बैलेंसिंग फीड राशन यानी जो भी आप चारा खिलाते हैं उसमें सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है। तो जैसे आप पुआल भूसा खिलाते हैं उसके साथ आप चूनी चोकर या अन्य पोषक तत्व डालते हैं, लेकिन यदि आप हरा चारा होता है तो ज्यादा अच्छा होता है और प्राय ये कहा जाता है कि 30 से 35% हरा चारा पशु की पोषण में होना चाहिए, उसकी डाइट में होना चाहिए। और यदि और अच्छा है यदि घास या मक्का ज्वार बाजरा के साथ दलहनी चारा यदि आप उसको अंतर फसल के रूप में बोएं, इंटरक्रॉपिंग के रूप में बोएं और दोनों को मिला के काटे तो वो एक संतुलित आहार बनता है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जरूरत है कि जब भी हम अपनी चारा फसलों को बोएं उनको भी ध्यान रखें कि खरपतवार शुरू की अवस्था में विशेषकर 4 से 5 सप्ताह के जो स्टेज है उस समय वो उनसे दूर रहे, खरपतवार से दूर रहे। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी पोषक तत्व प्रबंध। आपकी जो चारा फसलें हैं चूंकि वो बायोमास उनसे लगातार आप लेते रहते हैं और बहु कटाई वाले जो चारा फसलें उनमें विशेषकर, तो उसमें आपको गोबर की खाद कम से कम साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार तो डालना ही चाहिए। फिर इसके बाद जो मल्टी कट जो आपकी बहु कटाई वाली जो प्रजातियां हैं, जो फसलें हैं, उनकी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है उसको ज्यादा होती है, इसलिए आपको प्रति कटाई के साथ पहले तो आप बेसल डोज में जो डालेंगे रिकमेंडेड डोज है, इसके बाद जितनी कटाई लेते हैं उस कटाई के बाद 25 से 30 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देनी होती है। दूसरा यह है कि यदि आप नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो सही रहता है तो आपकी फसलों में एससीएन एक जो विषैला तत्व होता है विशेषकर ज्वार में, यदि सूखे का मौसम आ गया और पानी का साधन नहीं है वहां पर उसकी एससीएन की टॉक्सिसिटी होती है। ऐसी फसल को सीधे चराई से बचाना चाहिए और पानी लगाने के बाद सिंचाई के बाद ही उसको खिलाना चाहिए। फिर भी बहुत आवश्यक है तो उसको काट के आप शाम को रख दें और उसको पानी में भिगो दें ताकि उसकी टॉक्सिसिटी चली जाए। विशेषकर जो लेग्यूम फसलें हैं, चारा वाली जो दलहनी फसलें हैं, उसमें फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी लेग्यूम फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, उसमें जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उनको फास्फोरस उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे आप बरसीम बोते हैं या रिचका बोते हैं उसमें फास्फोरस की अमाउंट डालना बहुत जरूरी है, रिकमेंडेड डोज। विशेषकर बरसीम में या रिचका में हम लोग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस की संस्तुति करते हैं।
ग्रास और लेग्यूम मिक्सचर, आप राजस्थान में विशेषकर जो चारा घासें हैं या घासें हैं उनमें पोटेशियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारे शोध से देखा गया है कि ऐसी चारा फसलों में या चारा घासों में यदि हम पोटेशियम का प्रयोग करते हैं उसको बेसल एप्लीकेशन में, और विशेषकर यदि सीड प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसका प्रभाव अधिक दिखता है। आजकल हम लोग बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं और हमारे संस्थान में बायो फर्टिलाइजर या जो मिक्स कल्चर है या स्ट्रेन है जिसको कंसोर्टिया बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, उन सबको मिला के हम लोग चारा फसलों में भी इसके प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। और इससे 25 से 30% आपको आपकी जो नाइट्रोजन की या फास्फोरस की रिक्वायरमेंट कम होती है। और एक दो स्ट्रेंथ हम लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स हैं जिनसे 50% तक फास्फोरस की रिक्वायरमेंट कम की जा सकती है। अभी वो टेस्टिंग स्टेज में है और जल्दी ही उसको हम अपने किसान भाइयों के बीच उसको ले जाएंगे। जहां तक जल प्रबंधन की बात है, वैसे तो ये कहा जाता है कि चारा फसलों के लिए बहुत ज्यादा इनपुट हम लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, जो भी किसान भाई डेयरी के हैं, जो पशुपालक हैं और वो मार्केट से जुड़े हुए हैं और अपने पशुओं से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और पशुओं की जो फीडिंग कास्ट है उसको कम करना चाहते हैं, तो जो भी रिकमेंडेड चाहे वो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट हो चाहे वाटर रिक्वायरमेंट हो, उन सबका ध्यान रखते हुए आपको उसको अप्लाई करना है। विशेषकर ये भी देखना है कि जो कुछ जमीनों की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा होती है, जैसे आपकी सैंडी सॉइल है वहां पर आपको ज्यादा पानी देना होता है, ज्यादा कम इंटरवल में आपको पानी देना होता है। और दो महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा कि मक्का, लोबिया और टियोजेंटी मक्सरी जिसको कहते हैं, ये वेरी सेंसिटिव टू वाटर डेफिसिट, यानी 9 से 10 दिन के बीच यदि इनमें पानी न दिया गया तो इनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। और जो कम सेंसिटिव है, यानी जैसे ज्वार, बाजरा और संकर नेपियर, 12 से 15 दिन तक भी आप पानी नहीं देंगे तो इन फसलों को उगा सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि वो किसान भाई या वो पशुपालक जिनके यहाँ पानी की समस्या है या उनको लगता है इस दौरान हम पानी की समस्या हो सकती है, तो कुछ एरिया में वो ज्वार, बाजरा या संकर नेपियर लगाएं और कुछ एरिया में अपना मक्का या लोबिया या मक्सरी लगा सकते हैं। जहां तक हार्वेस्टिंग शेड्यूल की बात है कि हम लोग कब इनकी कटाई करें, उसमें ये बताया गया है, इसके पहले भी मुझे लगता है बताया होगा पूर्व वक्ताओं ने कि 50% फ्लावरिंग स्टेज है जो हमको बताती है कि उस समय हमारे फॉडर की जो क्वालिटी होती है अच्छी होती है, उसका जो उत्पादन अच्छा होता है और हम किसी तरह से क्वालिटी और क्वांटिटी यानी उनकी गुणवत्ता और उनके उत्पादन दोनों में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। एक ऐसी स्टेज है 50% फ्लावरिंग आपके खेत में, यदि 50% फ्लावरिंग यदि हो गई है आपकी फसल की, तो उसका आप चारा के लिए, कटाई के लिए उपयुक्त समझ सकते हैं। लेकिन जो बहु कटाई वाली जो प्रजातियां हैं, जो फसलें हैं, उनमें दूसरा नियम लागू होता है कि उनको 55 से 60 या 60 से 65 दिन पे पहली कटाई लेते हैं और 8 से 10 सेंटीमीटर आप उसके स्टबल्स होते हैं, जो ठूंठ बचते हैं, उनको आपको रखना होगा, क्योंकि आपको दोबारा भी उससे चारा लेना है तो दूसरा कटा आपको फिर 25 से 30 या 30 से 35 दिन पे मिल जाएगा। अब मैं आता हूं फॉडर प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। IFI जो कि एक पुराना संस्थान है और पूरी तरह फॉडर प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ मॉडल डेवलप किए हैं जिनको हम लोग राउंड ईयर फॉडर प्रोडक्शन कहते हैं, यानी हर वर्ष भर यानी साल भर हरा चारा हम कैसे प्राप्त करें। इरिगेटेड सिस्टम में जिसको हम ओवरलैपिंग यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल के बाद चौथी फसल, उसके उदाहरण में आगे स्लाइड में दिखाऊंगा। और रेंज फेड सिस्टम यानी जहां पर वर्षा आधारित पद्धति को अपनाना है, जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है या बहुत कम है, वहां पर अन्न और चारा की यानी जहां पर फूड ग्रेन क्रॉप्स भी लेंगे और आप चारा भी लेंगे, और उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि बहुवर्षीय चारा या घासें या जो वार्षिक या उस सीजन के फूड फॉडर क्रॉप्स के साथ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन यानी मृदा का, मिट्टी का और पानी का संरक्षण करते हुए आपके खेत में कैसे हम अन्न चारा उत्पादन लें, इसके बारे में बात की जाएगी। और इरिगेटेड सिस्टम में हम लोग देखे हैं कि 7 से 8 जानवर पाल सकते हैं, 8 से 10 लीटर लेने वाले, और रेनफेड में यानी जहां वर्षाधारित है वहां 3 से 4 जानवर पाले जा सकते हैं। और इस तरह के मॉडल जो कि आगे मैं दिखाऊंगा, इनको राजस्थान जैसे राज्य में भी रेप्लिकेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं भी बताना चाहूंगा कि इस संस्थान ने को एक जिम्मेदारी दी गई है
ऑनरेबल DG-ICAR द्वारा कि सभी राज्यों के लिए फॉडर स्टेट फॉडर प्लान बनाएं। मुझे खुशी है कि लास्ट ईयर स्टेट फॉडर प्लान का डिस्कशन हम लोगों ने राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उनके साथियों के साथ किया गया, और उसको देखते हुए एक फॉडर प्लान डेवलप हुआ और उसको सबमिट किया गया। और ये प्लान स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरी मशीनरी के द्वारा लागू किया जाएगा। हमें उम्मीद है हम लोग एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर उनके साथ जुड़े रहेंगे, और मुझे उम्मीद है जो भी यहाँ पर डेयरी ओनर्स हैं, लाइवस्टॉक कीपर्स हैं, या रिसर्चर्स हैं, या फील्ड लेवल एक्सपर्ट्स हैं, वो जरूर इस सिस्टम से, इस जानकारी के द्वारा जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। और आगे भी इस तरह की जब कोई चर्चा आएगी हम जुड़ना चाहेंगे आपसे। तो पहला जो मॉडल है फॉडर प्रोडक्शन सिस्टम इरिगेटेड लैंड के लिए, इसको हम लोग पेरिनियल ग्रास बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। शंकर नेपियर के साथ काउपी हम लोग खरीफ में लगाते हैं, और उसके बाद बरसीम और सरसों लगाते हैं। ये एक फोटो है हमारा खरीफ सीजन का। आप ये देख रहे होंगे कि ये शंकर नेपियर की लाइनें लगी हुई हैं, बीच में 3 मीटर का स्पेस है, यहाँ पर ट्रैक्टर चल सकता है, इसे जुताई बुआई की जा सकती है, इंटरकल्चर ऑपरेशन किए जा सकते हैं। और ये बेस्ट एग्जांपल है राउंड ईयर फॉडर प्रोडक्शन का। ये ग्रास है यानी सीरियल है, ये लेग्यूम है, दोनों को मिक्स करके जब हम खिलाते हैं तो बैलेंस फीडिंग बनती है, बैलेंस राशन बनता है, और इसका प्रोडक्शन पोटेंशियल है 273 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। और ये जो रेशियो आप देख रहे हैं 67-33, ये पूरे इंडिया के लिए है। केवल कुछ ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर ज्यादा बरसात होती है वहां शायद ये इसकी विशेषकर लेगुम की प्रॉब्लम आती है। और इसको 7 से 8 एसयू इसमें पाले जा सकते हैं। दूसरा सिस्टम है फॉडर प्रोडक्शन सिस्टम इन इरिगेटेड लैंड। ये सीजनल क्रॉप्स के, कुछ किसान ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी जमीन को, वो पहला जो सिस्टम बताया वो 3-4 साल तक चल सकता है, उसमें उसको यदि वो नहीं देना चाहते हैं, जमीन उनके पास नहीं है, तो 1 साल के लिए आप उस सीजन के लिए भी एनुअल सिस्टम है, जिसमें सोरगम मल्टी कट के साथ काउपी लगाते हैं, इसके बाद बरसीम, और फिर फॉलोड बाय मेज प्लस काउपी। इस सिस्टम का पोटेंशियल 197 टन पर हेक्टेयर ग्रीन फॉडर है। इसका भी रेशियो ऑलमोस्ट उतना ही आता है, 67 सीरियल और 33 लेगुम का, और इसमें 5 से 6 जानवर आसानी से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। रेनफेड सिस्टम की मैं जो बात कर रहा था, राजस्थान जैसे राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पेरिनियल बेस्ड फॉडर फूड प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पेनिसिटम TSH जो त्रिशंकर घास है, एक जो पहले हम लोगों ने बात की वो शंकर नेपियर थी, ये त्रिशंकर घास है। इसमें नेपियर और ज्वार के 2 कॉम्बिनेशंस का इसका ट्राई स्पेसिफिक हाइब्रिड है। इसकी विशेषता ये है कि ये पानी इसमें कम लगता है, सूखे क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है, केवल बरसात की पानी से हो जाता है, और यदि पानी नहीं भी है तो ये डॉर्मेंट रहेगा, फिर पानी मिलने पे ये फिर से हरा हो जाएगा। इसमें आप ये देख रहे हैं यहाँ भी ट्रैक्टर पाथ है, और हम लोगों ने फूड और ग्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन लगाया है। इसमें सोरगम फॉडर प्लस काउपी फॉलोड बाय बार्ले। मैं पहले बताऊंगा बार्ले हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर जब मॉइस्चर आपका खरीफ के बाद नहीं बचता है, लेकिन हम लोगों ने इसको दूसरे सिस्टम से भी यूज किया कि यहाँ पर मॉइस्चर रहे। इसकी जो वीड मल्च है या मल्चिंग के द्वारा उस मॉइस्चर को बचाए रखा गया। और बार्ले जैसी क्रॉप इसको हम डुअल पर्पस फॉडर भी कहते हैं, इसको हमने ग्रो किया। इस तरह इस जो एरिया जहां पर हम केवल सिंगल क्रॉप ले रहे थे रेनफेड एरिया से खरीफ में, वो हम लोग डबल क्रॉपिंग भी पॉसिबल है। और ये आप जब TSH लगाते हैं तो इसको बेड में लगाते हैं। ये फर्रो है TSH, और इसके साथ में सेस्बेनिया को हमने लगाया, सुबबुल भी हमने लगाया, लेकिन हमारे यहाँ सेस्बेनिया बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हम लोगों का ये भी एक आग्रह है कि जहां जहां सुबबुल चलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेस्बेनिया भी एक अच्छा फॉडर यहाँ पर हम लोगों ने पाया है। और इस प्रोडक्शन पोटेंशियल में 78.5 टन पर हेक्टेयर ग्रीन फॉडर, 20 टन पर हेक्टेयर ड्राई फॉडर और 2 टन पर हेक्टेयर ग्रेन मिलता है। और ये विशेषकर छोटे और मझोले किसानों के लिए उपयुक्त है, और इससे 3-4 जानवर सस्टेन कर सकते हैं। और ये भी हमने देखा है कि इट फेड 100% ड्राई मैटर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट डाइट, and 8-9 ACU if fed 1/3 dry matter based fodder diet. It means यदि हम थोड़ा सा कंपनसेट करते हैं, थोड़ा ड्राई फॉडर भी खिलाते हैं, तो ये नंबर 8 से 9 तक जाता है। इसका फॉडर प्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छा है, विशेषकर TSH का और सेस्बेनिया। एक दूसरी जो बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा राय साहब का भी सुना था, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात वो कर रहे थे, और ये रियल मॉडल हम लोगों ने अपने फील्ड में डेवलप किया है। और इस मॉडल के बेस पे और हमारे जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के बेस पे हमारे इंस्टीट्यूट को बसंतराव नाइक अवार्ड भी मिला है। मैं इसको यहाँ विशेषकर एम्फेसिस करना चाहूंगा। ये मॉडल ये है जो अभी पहले मैंने आपको दिखाया, यहाँ वहां पर जो हम लोगों ने क्रॉप्स ग्रो की, वहां पर हम लोगों ने डिस्मेंथस यूज नहीं किया था,
वहां हमने चिकपी यूज नहीं किया था और हमने फार्म पॉन्ड नहीं यूज किया था। उसका कारण ये था कि सेकंड क्रॉप हम केवल उस बेस पे ले रहे थे, ये कंजर्व मॉइस्चर है। लेकिन कई बार देखते हैं कि ड्राई सीजन आता है या मॉइस्चर नहीं बचता है, तो प्री सोइंग इरिगेशन देके हम सेकंड क्रॉप बार्ले या चिकपी ले सकते हैं, या लाइफ सेविंग इरिगेशन भी इसको बीच में हम दे सकते हैं। तो एक फार्म पॉइंट 20 into 20 मीटर एंड 2.5 मीटर डेप्थ का हम लोगों ने बनाया और इसको पंप करके हमने सिंचाई किया, और ये सारे कॉम्बिनेशन यूज किए कि लैंड कॉन्फ़िगरेशन यूज किया, ब्रॉड बेड 1.5 मीटर की पर 2.2 मीटर का, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हम लोगों ने ट्राई स्पेसिफिक हाइब्रिड सेसबेनिया, सुपरबुल एंड डेस्मेंथस यूज किया, क्रॉप सोरगम और काउपी यूज किया, फूड क्रॉप चिकपी एंड बार्ले यूज किया, और जो एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम लोगों ने यूज की, रेसिड्यू रिटेंशन, वीड मल्च और लिटर फॉल प्लस फार्म पॉन्ड। तो इस माध्यम से हमने देखा कि हम लोग अपनी जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है उसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। अराउंड योर बॉर्डर प्रोडक्शन सिस्टम, इरिगेटेड लैंड ऑफ राजस्थान, बहुत सारे वहां पर आपको पता ही होगा कि AICRP एंड फॉडर क्रॉप्स है बीकानेर में एक सेंटर है जो एस्टेब्लिश है, और वो काफी पुराना सेंटर है। वहां पर जो शोध हुआ उसके बेस पे जो कुछ मॉडल, कुछ प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप किए गए जो साल भर हरा चारा दे सकते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में, कैनाल इरिगेटेड क्षेत्र में, या जहां पर सिंचाई के साधन है। और आप देख सकते हैं कि मल्टी कट पर मिलेट प्लस काउपी फॉलोड बाय ओट प्लस मस्टर्ड और बार्ले प्लस मस्टर्ड, या मल्टी कट सोरगम फॉलोड बाय ओट प्लस मस्टर्ड, बार्ले प्लस मस्टर्ड। तो काफी अच्छा पोटेंशियल है और काफी अच्छा स्कोप है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है। ये कुछ प्रोडक्शन सिस्टम है, जस्ट फोटोग्राफ है, हमारे किसान भाई साथ में जुड़े हुए हैं। ये सारी फोटोग्राफ आप ही के यहाँ की है, आपके क्षेत्र की है। दूसरी चीज मैं करना चाहूंगा, नॉन कन्वेंशनल फीड रिसोर्सेज की बात आजकल हम लोग कह रहे हैं, और जो कांटा रहित नागफनी एक गैर परंपरागत चारा जिसकी हम बात आजकल करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि काड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, और हमारे संस्थान ने करीब 5-6 वर्षों से इसमें शोध शुरू किया हुआ है, और हम लोग कम से कम 10 स्टेट में पहुंच चुके हैं, और इसकी बहुत डिमांड है। मैं बताना चाहूंगा, ये कांटा रहित नागफनी, इसमें कोई कांटे नहीं होते। प्राय हम जो जानते हैं नागफनी वो बाढ़ के रूप में, फेंस के रूप में उपयोग में आती है। ये इसकी जो पत्तियां हैं ये बहुत रसीली हैं, 90 से 92% पानी होता है, और इसमें 4.5 से 5.5% होता है। शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर गर्मी के सीजन में, यदि आप लगा देते हैं करीब 15 से 18 माह बाद, इससे हरी पत्तियां इतनी मिल जाती हैं कि कम से कम 100 मीटर यदि आप लंबा कोई पैच जहाँ पे मेड़ पे आप लगाते हैं, तो 2-3 महीने के लिए एक गाय या एक भैंस को आप 30% रिप्लेसमेंट बेसिस पे, यानी डॉक्टर साहब अभी आवाज चली गई है आपकी, वहाँ शायद सिस्टम में एक बार थोड़ा देख लीजिए। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है, डॉक्टर सुनील कुमार जी। डॉक्टर साहब यू आर नॉट ऑडेबल। क्या हो गया होगा, सिग्नल वीक है कैसे? Like somebody is suggesting that you can restart your PPT.
Sir ji, please check your mic setting in audio setting. Mr. Prem Prakash Khatri, please unmute yourself and ask question. प्रेम जी, Prem Prakash जी Khatri. नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। दोस्तों, नमस्कार जब डॉक्टर तक साहब, नमस्कार। हाँ, जब तक एक्चुअली डॉक्टर सुनील कुमार जी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर पाते हैं, हाँ जी। प्रेम खत्री जी जो हमारा कैटल फीड है उसके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आप 2 मिनट अपना जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा सा 2 बात करें, कैटल फीड, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ये, और आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और दूसरे किसान हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है ताकि आपसे कुछ सीख पाए। प्रेम जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद SKR मैनेजमेंट को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। ये बहुत अच्छी नेशनल ऑनलाइन वेबिनार है, मोर इफेक्टिव, मोर इंफॉर्मेटिव, मोर लर्निंग है। विशेषकर डॉक्टर RK सावल का जो बहुत कितने शब्दों से मैं इनको धन्यवाद, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी बातें कही हैं, और विशेषकर वो लोकल एरिया में क्लाइमेट के हिसाब से उन्होंने बात करी है, जो कि इजीली अवेलेबिलिटी है सबको। एक पशुपालक हो चाहे किसान हो, सबको खर्चा कम करना होता है और मैक्सिमम बेनिफिट संसाधनों का उठाना होता है, जो डॉक्टर सावल ने बहुत अच्छे तरीके से कही। उनको खूब खूब साधुवाद। बदलते परिवेश में खेती भी है, जमीन हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक पशुपालन एक ऐसी चीज है जो कहीं भी काम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ग्रामीण स्तर हो, शहरी स्तर पे भी जितना भी आपके पास जमीन हो उस पे भी हम ये काम कर सकते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और पशुपालन और खेती वैसे तो एक दूसरे के पूरक हैं, और आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो एसी में बैठकर काम करना चाहती है, तो वो एक पशुपालन जो है ये काम बड़े आराम से वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़े भाग्यशाली ये है कि साहब उनके पास लैपटॉप से इजीली गूगल और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट्स और उनको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन वगैरह भी मिल जाती है। और जैसे अभी ये नेशनल वेबिनार गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। और हम अपने टॉपिक पर आता हूँ कि अपने जब हमने एक प्रोग्राम बना रखा है पशुपालकों की आय बढ़ाओ अभियान, और एक पशुपालक को क्या चाहिए? मोर इनकम, सिर्फ मोर इनकम, और कोई इसकी सोच नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो इनकम कमाना चाहता है, कम से कम खर्चा करना चाहता है। तो हमने उसी को नाड़ पकड़ी, उनकी वही नब्ज पकड़ के हमने काम किया है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको थोड़ा सा बैक चलें। प्राचीन पशुपालन आज से 1000 साल पहले क्या था भारत में? कोई साइंस नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, कोई यूरिया नहीं थी, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी भारत सोने की चिड़िया था। तो ऐसा उस टाइम क्या था? उन्नत पशुपालन और उन्नत खेती। उस पशुपालन में क्या चीजें थी? वही चीजें आज उसको हम भूल गए हैं, उसी को हमने पकड़ा और उसको कॉमर्शियल रूप दिया है। मसलन आपके घर में सब चीजें पड़ी हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, नमक आपके पास है, मीठा सोडा आपके पास है, मेथी आपके पास है, अजवाइन आपके पास है, गुड़ आपके पास है, हल्दी आपके पास है, इसबगोल है, अलसी है, जो है मूंग है, चना है, मक्की है, सोयाबीन है। इन सब चीजों को हमने एक क्या नाम है अनुपात में, और कुछ हर्बल आइटम्स हैं जैसे शतावरी, अश्वगंधा, जीवंती, आंवला, बदलते मौसम के अनुसार लौंग है, इनको हमने यूज करके और एक पाउडर बनाया। उस पाउडर को जो भी आप डाइट खिला रहे हो
उसके अंदर मिक्स करके दिया और बहुत बड़े चमत्कारिक परिणाम मिले और 1 महीने के अंदर हमने 20 से 40% तक पशुपालकों की इनकम बढ़ा दी है, 20 से 40%। और वो भी इनकम कैसे? अच्छा, फिर उनका डाइट प्लान भी हमने कोई चेंज नहीं किया, जो जैसा खिला रहा है सब ओके है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं सभी पशुपालक जितने भी हैं, किसान हैं और चाहे डेयरी ओनर है, वो अपनी तरफ से बेस्ट खिलाता है। कोई भी अपने, क्योंकि जिससे इनकम होती है कोई भी हल्की चीज नहीं खिलाना चाहता। वो मजबूर कब होता है कि साहब उसको मुनाफा कम हो और खर्चा ज्यादा हो, तब वो सस्ते रॉ मटेरियल की तरफ जाता है। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये SKRAU यूनिवर्सिटी में, जैसे इस वेबिनार में डॉक्टर सावल ने बताया था हमें फलियों के बारे में, कुछ पत्तियों के बारे में, कुछ जैसे हमने आपको बता रहे हैं घर में सामान उपलब्ध के बारे में, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पशुपालकों के बीच में हमने जो आय बढ़ाने में, उनको आज यूनिवर्सिटी टेक्निकल साइंटिफिक बेस पे बात करती है, लेकिन मैदान में जब जाते हैं तो उनको लोकल भाषा जल्दी समझ आती है। तो ये काम एक कॉर्पोरेट घराने के यानी एक व्यापारिक आदमी बहुत इजीली समझता है। दूसरा, पशुपालक की प्रॉब्लम आती है कि वो सिटी में या डिपार्टमेंट में जाता है तो कभी अधिकारी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कोई छुट्टी पर है, सरकारी छुट्टियां बहुत होती हैं। तो एक व्यापारी जो होता है वो डेस्क पर हमेशा तैयार मिलता है, तो उनको इजी अप्रोच में सप्लाई और उनकी डिमांड जो भी होती है वो सुनवाई हो जाती है। पशुपालक मेन जो चाहता है वो कहता है साहब हमारा फीड का सस्ता हो, कॉस्ट कटिंग हो, परिणाम देने वाला माल हो, इजी अप्रोच हो। पशुपालकों की सबसे बड़ी चीज है, अच्छा आज क्या है, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक पशु क्या नाम है, डेयरी की तरफ रुझान दुनिया का बढ़ चुका है। और इस पर डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो आजकल के पढ़े लिखे नवयुवक जो इस लाइन की तरफ जुड़ रहे हैं, वो जॉब देने वाले बन रहे हैं, लेने वाले नहीं बन रहे। इस लाइन की यही एक खासियत है कि ये रोजगार पैदा कर रही है, यानी कि जो एक बार इस लाइन में जुड़ गया तो उसको कुछ आदमी हेल्पर्स के रूप में जब वो जॉब देने वाला, यानी कि वो अपने काम का खुद बॉस होगा और खुद लीडर होगा, किसी के अंडर में नहीं होगा। और आज साइंटिफिक वैसे इतनी टेक्नोलॉजी और यूट्यूब चैनल से भी हमें, और ये यूनिवर्सिटी से भी, और अपने क्या कहते हैं राजूवास यहाँ पर जैसे वेटनरी कॉलेज है जगह जगह पर इंडिया में, ये सब गवर्नमेंट अब तो पशुपालन विभाग बन गया, पशुपालन के आयोग बन गए, बहुत एक लहर सी चल पड़ी है। सिर्फ जरूरत है तो इसको गति देने की और समझने की। और सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान जो हो रहा है, अभी भी कई लोग क्या है कि पैसों को महत्व देते हैं, क्वालिटी को नहीं देते, तो वो नकली माल की तरफ चले जाते हैं, तो वो दोनों का नुकसान करते हैं, विश्वास का भी और अपने पशुओं का भी। इस वक्त ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के जो है वो जो हमें कमी महसूस हो रही है कि खेती ऑर्गेनिक की तरफ तो बढ़े, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है, वो एक जगह उपलब्ध नहीं है। आज अगर मुझे यूनिवर्सिटी हेल्प करे, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बाई प्रोडक्ट मुझे कहीं से भी साल भर मिल जाए, तो मैं आपको ऑर्गेनिक पशुआहार सस्ती रेट में देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। मेरे पास बायर हैं ऑर्गेनिक कैटल फीड लेने वाले, ऑर्गेनिक पशुआहार लेने वाले बहुत बायर हैं, लेकिन इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो खेती है वो सारी बिखरी हुई है और सीड फॉर्म में ही वो मार्केट में सप्लाई है। जैसे गेहूं है, ऑर्गेनिक की तरफ रुझान है तो लोग वो सीधा ही खरीद लेते हैं, तो उसका बाई प्रोडक्ट गेहूं का चोकर नहीं बन पा रहा। दाल है तो सीधी बिक रही है तो उसकी चूरी नहीं बन पा रही। बाई प्रोडक्ट बिना हमारी मिल नहीं चलेगी। हमें साल भर यूनिट चलाने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। अगर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी हमें मदद करे या और कोई ऐसी संस्था करे, तो मेरे जैसे कई यूनिट में आपको और भी जुड़वा दूंगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया बेस पर आपको एक बहुत बड़ा मार्केट दे सकता हूँ। लेकिन ये बिखरा हुआ है, हम चाहते हैं कि ऐसा सहयोग मिले हमें यूनिवर्सिटी से। और ये जो कमी है, ध्यान SKRAU का विशेष ये जो है ना, एक बहुत बढ़िया योगदान महसूस होगा आज की यूनिट का, आज के प्रोग्राम का, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो। और प्राचीन पशुपालन पद्धति जो थी और आज की आधुनिक पशुपालन, दोनों को साथ में जोड़ें, कम खर्चे में है। अगर आपसे नहीं होती है तो आप हमारी हेल्प लें, मैंने नीचे अपना नंबर भी दे दिया है, नहीं है तो यूनिवर्सिटी में भी उपलब्ध है, समय समय पर ये बुलाते भी रहते हैं। और हमेशा और भी कई वेबिनार है, मैं जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय गोवंश की वैसे भी जुड़ा हुआ हूँ, और भी संस्थाओं से रोज वेबिनार डेली 5 से 7 होती है, कहीं ना कहीं मेरी स्पीच चलती रहती है। आप जुड़ें और इस टाइम ऑर्गेनिक खेती तरफ जो पिछले 70 सालों में क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं, आगे क्या करना है, गया हुआ टाइम नहीं आ सकता, आगे क्या करना है, हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं,
इस पर विचार करें और इसी के आधार पर ऑर्गेनिक अपने खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी गौर करें, और इसमें इनकम बढ़ाने में जो हमारी मदद चाहिए मैं हर समय आपके साथ तैयार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स या किसान अभी इससे जुड़े हुए हैं, ये एक्चुअली इसीलिए उनका प्रेम जी का जो अनुभव है वो साझा कराया कि उद्यमिता विकास की अपार संभावनाएं हैं, और उसमें भी कैटल फीड एक बहुत तेजी से मतलब आगे बढ़ने वाला एक क्षेत्र है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो किसान हैं, वो जो नौकरी ढूंढने के लिए, जैसा प्रेम जी ने कहा, तमाम इधर उधर परेशान हो रहे हैं, तो वो भी अपना उस तरह का एक काम शुरू करके और अपने आप को एक आगे बढ़ा सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर सुनील कुमार जी ने फिर वो कनेक्ट हो गए हैं और स्क्रीन शेयर की है। डॉक्टर साहब, हाँ, यू आर वेल कनेक्टेड, but I think still you are not audible. Still you are not. Some problem is there in your system. लेकिन किसान भाई ये देख सकते हैं कि जो हमारे क्रॉप्स है, क्रॉपिंग पैटर्न है, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा अपने स्लाइड्स तो मूव कर ही सकते हैं, क्योंकि स्लाइड्स विजिबल हैं पूरी तरह से। तो जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम है, उसको जो फॉरेज बेस्ड, क्योंकि वो एक अकेला एक ऐसा संस्थान है जो केवल फॉडर पे काम कर रहा है, और डॉक्टर सुनील कुमार जी जो क्रॉप मैनेजमेंट डिवीजन है उसके हेड हैं, उसके मुखिया हैं। आपका एक पूरी बड़ी टीम है जो अलग अलग एस्पेक्ट पे फॉडर मैनेजमेंट पे काम कर रही है। तो इट इज ए मैसेज कि आप जो हमारा पेरेनियल क्रॉप है, ये जो नेपियर बाजरा हाइब्रिड, उसके साथ में हम लेग्यूम को किस तरह से एले फॉर्म में, ये जो तरीका है अभी खेती का, ये एले क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें हम एक जो हमारी नेपियर घास है उसका हेज बनाते हैं, और जो बीच का जो पोर्शन है उसमें जुताई बुआई करके हम जो लेग्यूम्स हैं, रबी सीजन में रबी की लेग्यूम और खरीफ सीजन में खरीफ की लेग्यूम को हम लेग्यूमिनस चारे को हम लोग उगा सकते हैं। आगे मूव नहीं हो पा रही है। आज डॉक्टर साहब सुबह से बहुत बिजी थे, और उस सब बिजनेस के बावजूद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर कोई किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अरविंद जी से। अरविंद जी प्लीज, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वी कैन टेक क्वेश्चंस। थैंक यू सर। डॉक्टर रामचंद्र राम केके, प्लीज सर अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर रामचंद्र, यस सर। हेलो, हाँ ऑडिबल। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर प्लीज रेज योर क्वेरी। ये एक्चुअली आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो मैं चाहूँगा कि वो जो गोट जो फार्मिंग में जो जनरली कौन कौन से अपन ट्री प्लांट्स यूज कर सकते हैं जो कि सुटेबल होंगे छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में, ट्री प्लांट्स फीडिंग एस्पेक्ट में, ट्री फॉडर प्लांट। देखिए, जो छत्तीसगढ़ है ये तो आपका काफी हाई रेनफॉल वाला जोन है, और जो ट्रीज है, ट्रीज और श्रब्स जो है, ये एक तरह का फॉडर रिसोर्सेस है जो ऑफ सीजन में भी हम लोगों को फॉडर प्रोवाइड करते हैं। और ये किसका कहीं से कुछ प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? जो फॉडर प्रोवाइड करते हैं लीन सीजन में भी, और जो वहाँ के लोकल ट्रीज हैं। देखिए, एक यहाँ पर जो राजस्थान है, यहाँ पर एक कहावत है कि जो
ऊंट है, ऊंट आंकड़े को नहीं खाता है, जो आंख होता है उसको नहीं खाता है, आंकड़े को छोड़ के सभी फसलों को खाता है। और जो बकरी है, बकरी तो आंकड़े को भी खा जाती है। तो जो पैलेटेबिलिटी रेटिंग अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बकरी है, जो दूसरे उस तरह के एनिमल्स है, जो बकरी तो वहां भी होती है, तो उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। सभी तरह के जो फॉडर्स हैं वो उपयोग में आते हैं। जो राजस्थान वाली बात है, यहाँ की जो एरिड जोन का है, उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो खेजड़ी है वो एक तरह का मल्टीपर्पज ट्री है, उसका एक एक बहुत ही वैल्यूएबल है। नीम है, नीम हर जगह होता है, नीम आपके वहां भी होगा, यहाँ भी होता है, हिल्स में भी होता है। तो जो नीम है वो ड्यूरिंग विंटर सीजन उसकी पैलेटेबिलिटी हो जाती है। अभी इस सीजन में पशु नहीं खा पाएंगे, लेकिन विंटर में खा लेंगे। और बाकी जो भी वहां पर ट्रीज हैं, क्योंकि आप वहां पे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ राजस्थान बेस्ड है जोन में, उस तरह का हम लोगों को वहां का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जो आपका बेर है, जो बेर में जो तीन तरह की स्पीसीज है, जिजीफस निमिलेरिया, जिजीफस मॉरिशियाना, जिजीफस, तो जो ये स्पीसीज है ये भी फॉडर के लिए है। अकेशिया की तमाम स्पीसीज हैं, अकेशिया की बहुत बड़ा जीनस है अकेशिया की, उनको सब हम लोग यूज कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल हो? प्रवीण प्रसाद जी। हाँ डॉक्टर साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम लोग ना बेसिकली यूपी के हैं, तो हम लोग जैसे राइस का जो स्ट्रॉ होता है उसको हम कट करते हैं 1 इंच में, और उसके अंदर हम लोग जैसे अपना जो ऑयल केक होता है वो थोड़ा मिक्स करते हैं फर्मेंटेड करके, और अजोला को हम लोग डालते हैं। अजोला जो वाटर का वहाँ पे अच्छा सोर्स है, तो अजोला हमारे को हर हमेशा मिलता रहता है। So what you feel कि this much feed is okay for a cow, or we go with another also, because the protein level जो है जैसे अजोला में तो काफी है ना सर, जो बोला है जिस तरीके से मैंने समझा है, तो it is enough for healthy cow and हमारे को milk and other things अच्छा वो दे, क्योंकि अभी तक तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट कई बार हम लोग मिल्क मिक्सचर डालते हैं जिस समय ना, कभी जब गाभिन हो जाती है गाय और होने वाली होती है, जिस समय हम लोग वो करवाते हैं, तो आपका क्या राय है सर इसके लिए? डॉक्टर आर के सावंत साहब, आर यू कनेक्टेड? डॉक्टर सावंत प्लीज। डॉक्टर सावंत तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन। और डॉक्टर नागदा, I think he is also not connected. डॉक्टर साहब हैं? नागदा साहब हैं? यस सर। एक सेकंड। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ यस सर। तो अगर आप रेस्पॉन्ड कर पाए अपने आप को कनेक्ट करके। यस सर, जैसा आपने बताया था कि अजोला की फीडिंग कर रहे हैं, साथ में स्ट्रो भी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो फीड आप कंसंट्रेट में दे रहे हैं, एटलीस्ट 18% जो है उसमें सीपी का होना बहुत जरूरी है। मींस 16 to 18% अगर डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन है, तो आई थिंक अच्छा वो राशन जो है उनके हाँ नागदा साहब बोल दो। ठीक है सर, वो उनके लिए बेस्ट है। तो आप जो भी प्रोपोर्शन ले रहे हैं, एक बार ये एश्योर कर ले कि उसमें 18% क्रूड प्रोटीन है या नहीं है, या अगर डीसीपी देखें तो 16 to 18% डीसीपी होना चाहिए। वो एक काऊ के लिए या बफेलो के लिए या गोट के लिए जो है बैलेंस राशन होता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे अजोला है, अजोला को हम लोग जैसे कई बार क्या होता है कि मास प्रोडक्शन होता है, तो हम उसको ड्राई करके भी रख लेते हैं एज ए पाउडर फॉर्म, क्योंकि तो सीजनल होता है, सनलाइट के बेस पे होता है। जब ठंडा हो जाता है तो अजोला का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इस केस में अगर उसका हम प्रोटीन देखते हैं, तो मेजरली जिससे जैसे डिस्कशन किया मैंने कहीं, तो बोलता प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है। बट जब मिनरल मिक्सचर्स कई बार हम लोग देते हैं, जब उसका टाइम आता है ना सर कि अपना 1.5 साल बाद बच्चा लाना है या करना है, तो उस समय मिनरल मिक्सचर खिलाना चालू कर देते हैं 6-7 महीने से ना, जब 200-200 ग्राम फीड में डालते रहते हैं जब तक वो बाउंड नहीं हो। तो व्हाट यू, इसके अलावा भी कुछ हमारे को, क्योंकि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज जो इस वेबिनार में इतनी चीजें बताई गई हैं, क्योंकि जो अपना फूडर के बारे में,
तो दिस फूड जो है दैट इज इनफ ना सर, इसके अलावा तो हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मेरी क्वेरी है सर, दिस इज द थिंग, क्योंकि अजोला में बोलते हैं 20% तक का प्रोटीन मिलता है। नहीं, प्रोटीन 20% है। मेन चीज है अजोला आप किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉ के साथ सर, स्ट्रॉ के साथ करते हैं। जो राइस का स्ट्रॉ होता है ना सर, 1 इंच का हम लोग कटिंग करके उसके अंदर अजोला को डाल दिया जाता है, और हम उसको ऑयल केक नहीं होता, फर्मेंटेड कर देते एक दिन पहले ऑयल केक, और ऑयल केक का भी पेस्ट उसको छिड़कते रहते हैं टाइम, जिससे कि वो उसको च्यूई करके ठीक से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करके निकाले। उसके साथ में सर क्या है कि आपको कुछ सीरियल ग्रेन्स जो है, अगर आपको बैलेंस राशन करना, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन ठीक है आप अजोला से मीट आउट कर रहे हैं, पर कार्बोहाइड्रेट की जहां तक बात आती है तो उसके साथ में क्या है, कुछ सीरियल ग्रेन्स जैसे मेज का दलिया है, व्हीट दलिया है, या फिर जो अवेलेबल हो जाते हैं बार्ले, तो उसका दलिया भी उसके साथ ऐड करें, तब जाके वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बैलेंस बनेगा, और एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा उसका। थैंक यू सर जी। नेक्स्ट योगेश। योगेश जी। मिस्टर योगेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कृष्ण घोष। कृष्ण घोष। Good afternoon, sir. Good afternoon. Question that water requirement for bajra is less than that of sorghum, and again bajra is more drought tolerant than sorghum. Then why sorghum is called camel crop, not bajra? Sorghum is called camel crop. Why it's not called bajra? अब ये तो आपका उस तरह का एक कुछ फॉडर मैनेजमेंट संबंधी कुछ बात कीजिए। ये एक्चुअली जो sorghum है, इट इज particularly preferred under relatively high rainfall condition as well as under high soil fertility condition also. But this bajra is cultivated widely under poor soil conditions as well as under high heavy soil conditions also. So the bajra has wide adaptability under various agroecological situations as compared to sorghum cultivation. Okay. और कोई? If there is no, then now I would like to invite my colleague Dr. A.S. Godara for extending vote of thanks. Over to you, Dr. Godara, please. थैंक यू सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes. सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित इस वेबिनार के सफल संपादन उपरांत मुझे वेबिनार से जुड़े सभी मेहमानों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करने का अवसर मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय प्रोफेसर आरपी सिंह साहब, माननीय कुलपति स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जो इस वेबिनार के संरक्षक भी हैं, का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर अपने आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। श्रीमान, आपकी ही प्रेरणा से इस वेबिनार का सफल आयोजन संभव हो पाया। धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में मैं वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव साहब, सदस्य कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद हमारे वेबिनार से जुड़ने के निवेदन को स्वीकार कर इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई एवं अपने विद्वत उद्बोधन से हमें लाभान्वित किया। श्रीमान, हम आपके इस सहयोग के लिए आभारी हैं। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चारा फसलें एवं उपयोगिता, भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी के परियोजना समन्वयक
एवं इस वेबिनार के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर AK राय साहब, जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही इस वेबिनार का आयोजन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हम आपके विशिष्ट उद्बोधन के लिए आभारी हैं श्रीमान। इस वेबिनार में डॉक्टर ND यादव, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर RK नागदा एवं डॉक्टर RK सावल ने विषय वस्तु पर अपने अनुभवों को प्रतिभागियों के मध्य साझा किया एवं चारा प्रबंधन की विभिन्न विद्याओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। मैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम कार्यों से समय निकालकर इस वेबिनार में जुड़कर वेबिनार को सफल बनाया। आप सभी को पुनः धन्यवाद। साइलेज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के श्री संदीप यादव जी एवं प्रेम एग्रो प्रोडक्ट के श्री प्रेम प्रकाश खत्री जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने अपना अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किया और उनको लाभान्वित किया। मैं इस वेबिनार के संयोजक प्रोफेसर NK शर्मा साहब, आयोजन समिति के सचिव इंजीनियर जितेंद्र कुमार गौड़, डॉक्टर उपेंद्र मील व डॉक्टर अरविंद झाजड़िया तथा आयोजन समिति के सदस्यों अमरदीप, अभिनव गौतम एवं मयूर कच्छावा का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से वेबिनार का सफलतापूर्वक संचालन एवं संपादन हो सका। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से किसान भाइयों को, जिन्होंने इस वेबिनार से जुड़कर चारा प्रबंधन जैसे ज्वलंत विषय में रुचि लेकर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाया। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। सभी को नमस्कार।